हेलो सलाम नमस्ते, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं गुड गेम नेशन कैंपस शोडाउन में, जहां पे एक सेकंड के लिए जो मेरे को कास्टर हैं जो ओपी एज, वो भी डर गए कि बीबी की आवाज नहीं आ रही और ये वेलकम दे रहा है। बड़े यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ग्रैंड फिनाले डे 2। मेरा नाम है मसब्जुमा एके Blackbear2oP, and once again I'll introduce my OP caster who is like mainly known for his English casting, but today I'm gonna make him cast in Hindi for sure. Edge, how are you feeling, brother? I am feeling great. Thank you so much for that fabulous, intro, BB. But it's an honor. Wait a sec. What is it? What's wrong again? Your accent is too good, bro. Oh, You're from India. oh no. Are you from India? Yes, sir. I am. I mean, it's just that I have this weird accent. I got this. It happens. I get that a lot. But let me tell you one thing, BB. Yes, I'll give you. I mean, here's the thing. I'll give you this accent. I mean, I'll let you. I'll teach you this if you teach me how to speak in Hindi, like how to cast in Hindi. Is that a fair deal? But I don't want competition, to be honest, Edge. I think I'm good. I'm gonna teach you some stuff definitely. But today, I want to know आपने कल के दिन, because it's I'm gonna speak in Hindi and English. So tell me one thing. आपने कल का पूरा stream देखा, and those colleges, all those teams, they gave their best, and there were few players and teams जिन्होंने कमाल कर दिया. So Edge, what do you think कि आज day 2 of the grand finale, what's gonna happen? देखिए, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि it was really fabulous, the way that these teams were playing and these players. I mean, we do see, as soon as we see these BGMI, there are some pro teams, there are some really big names in the scene as well. But the one thing that I really look forward to every time coming in from Good Game Nation, especially, is that they support these, these new and upcoming players. And अभी तो ये college में है, ठीक है. You never really know. Maybe in a year, maybe in 2 years, they might be one of the biggest players in India. You never really know. That is exactly what I'm looking forward to. Kal ke matches mazedar the, but let me tell you what I'm looking forward to today. Right? I love snipers, so I want a little sniper action. Same. दूर से Edge, long distance high five. Yesterday I gave fist bump to Shadow, and I'll just give you a long distance high five. Edge. One thing is for sure, आज के दिन पे हमें एक नेक्स्ट लेवल गेम देखने को मिलने वाला है. Why? कल दो टीम्स स्पेशली, एक का था नाम टीम फ्लॉसी एंड एक थी आपकी टीम सेलेस्टियल. 80 पॉइंट्स, सेम प्लेसमेंट पॉइंट्स, सेम फिनिश पॉइंट्स, एंड उन दोनों को तो देखना है. बट व्हाट आई रियली वांट टू सी इज दैट डेफिनेटली द बोल्ट एक्शन शॉट्स, द डीएमआर एक्शन, कार फट रहे हैं इधर उधर. बट दो 16 टीम्स जो नीचे ऑलरेडी, नीचे की टीम अगर ऊपर आती है तो एक ना chaos होगा. एंड डे 2 आई विल से इट्स द डे ऑफ chaos, क्योंकि कल तो हमें ये बात पता चल जाना है कि कौन इस पूरे कैंपस शोडाउन का विनर होने वाला है. सो आई एम रियली एक्साइटेड, एंड आई एम एक्साइटेड एज वेल फॉर यू, बिकॉज ये हिंदी इंग्लिश की जोड़ी मुझे देखनी है कितना ज्यादा आगे चलती है. I mean, it might be great, or at the same time, it might be, मतलब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है. it's either going to be one of these two things, for sure. It's gonna be funny. It's gonna be entertaining, that's for sure. Kasi I'll tell you one thing. As you said that we never know what if we'll see some of these players playing for some T1 orgs or maybe going international. But today I'm here just to have fun. Just not to make fun. Maybe I can make fun of yours if you'll allow me. But to make fun of you and to entertain the audience, and just like I just want to see some really good gameplay. That is true. I mean, we wanna have fun. We wanna have that banner going on, but at the same time, we do like to see some really good plays coming in, and that's exactly what I'm looking forward to as well. I want to see some grenades being thrown in. I want to see some players getting run over by a vehicle. Maybe just some of those. I mean, this happens every single time. Someone just falling off on Edge, right? Just dying out of nowhere. ऐसे हवा में से गिर जाते हैं, and we are like, कहाँ पे हो गया? ये क्या हो गया? मतलब that usually doesn't happen. कैसे हो गया especially? क्या सोच रहे थे players? बिल्कुल. बट अब इसी के साथ चलते हैं एज इस शो को, जो हमारा फाइनल डे 2 है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. एक बार चलते हैं और देखते हैं सारे जो शेड्यूल है, हमारा प्राइस पूल है, सारी चीजों पे एक बार हम लोग अच्छे से नजर मारते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे नए व्यूअर्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे. सो प्राइस पूल ओवरऑल हमारे गुड गेम नेशन प्रेजेंस कैंपस शोडाउन का है 1.5 लाख रुपए का मैसिव प्राइस पूल गाइस. 1.5 लाख रुपीस जहां पे जीतने वाली टीम को मिलने वाला है 30,000, सेकंड पे 20 एंड देन 15-10. वन थिंग एज, 16 टीम्स हैं, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे
जो 11 से 16 13 थे को कहीं उन्हें भी 2.5 मिल रहा है. So आपको क्या लगता है ये उस 2.5 का क्या करेंगे? मतलब 2500 का मतलब ये लोग कुछ भी करे बट दैट्स नॉट द मेन थिंग राइट. सब लोग यहाँ पे 30,000 के लिए ट्राई कर रहे हैं. दैट इज द मोस्ट Indeed. इंपॉर्टेंट. आई मीन you're gonna get home with like at least 2500 in your bank account. Now, मतलब कुछ तो मिल रहा है but everyone's gonna बिल्कुल. be trying for that 30,000. But let me tell you one thing. जितना Yeah. भी मिले इन लोगों को, I'm pretty sure they're gonna, go ahead. Maybe I don't know if they're kind of, one of those nerds that play the games. Books कुछ खरीद लेंगे या you can just go have fun. I थोड़ा पार्टी वार्टी I कर लेंगे. disagree, Edge. बुक तो नहीं खरीदेंगे, ये बात तो पक्की है. I'm I mean, sorry, my friend, my amigo, agree to disagree. Books तो नहीं खरीदे जाएंगे क्योंकि I'll tell you one funny story of mine. That is, I've done my MBA. I used to take money from my father. Not so proud of, even though I was in master, but I used to take money for the perks and I used to spend it here and there. But now, one more thing, Edge, apart from the prize pool, all the 16 teams, they are getting some amount from the prize pool, but there are 3 more titles: MVP, most finishes, best IGL. So what do you think about that? that is the most prestigious ones, if you ask me. These three. MVP is my personal favorite because every time I play, I mean, I do play some of the, I play a little bit of this and that tournaments, like, those minor tournaments that happen. And every time I'm like, even if I don't win it, I want to be the MVP. So I want to see who the MVP is going to be, and I want to see the competition going in as well. And most finishes, well, whoever gets it is going to be, one of the aggressive players are going to be getting it, right? Indeed. But best Yep. IGL. Now, players, yeah, there are four players in a team. I mean, at max, there are like a couple of teams with 3 and 2. But the IGL is the brains of the team, right? These players, they have the skills, everyone, but IGL is making sure that they use those brains and come out on top. So मुझे देखना है कि ये मतलब कौन कर रहा है पीछे से. I mean, as we know, if someone watches cricket, Dhoni is supposed to be the best IGL. Judge, I really don't want to interrupt you, but from the English when you switch to Hindi, that पीछे से कौन कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा हमारे भाई लोग खुश हो गए होंगे वो सुन के. But yes, आपने बिल्कुल सही कहा. IGL is like, अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो it's like the main, it's the core, and देखते हैं किसे मिलता है. बट मैप शेड्यूल की अगर हम बात करें तो कल की तरह बिल्कुल सेम शेड्यूल है. 5 मैचेस, 2 मैप्स ऑफ एरांगल, एंड उसके बाद फिर मीरामार, सैनहॉक एंड वीकेंडी हमें देखने को मिलेगा. कल एक चीज कहूंगा एज जो इन टीमों को पता नहीं था. We have seen lots of initial fights over the drop spot. So do you think the teams जो अभी bottom पे हैं, they're gonna repeat the same thing? They're gonna go for the initial fight, or they'll just go for the passive approach that let's save the manpower for the for the end, and like पूरा एक all out gameplay there? What do you think? देखिए, I mean, कल हाँ first day of the grand finals था, so it's understandable. But I'm pretty sure that these teams have watched. कल का stream देखा होगा इन लोगों ने, and I'm pretty sure मतलब analyze किया होगा. So if someone's watching us right now, guys, I mean, go for the initial fights, but make sure you survive. Right? अगर एक बंदा down हो गया, 2 player down हो गया, make sure that you go back. Don't take those aggressive fights. Just get back, because the thing is, it's not a best of 1. Right? It's 3 days, and it's like what, best of 18. Sorry, best of 15. I'm sorry. So every map is going to be crucial. And every day you cast 6 matches. You're a big caster, I know that. So No, I'm so sorry. That wasn't the thing. Yeah. I said it's totally sarcasm. You got me. I get it. I got it, obviously. But now I feel bad, actually. I'm kidding. But here's the thing. What I wanted to tell you, BB. Yeah, ये जो मैं बताना चाहता था कि I want that consistency to be there. I mean, एक match chicken dinner मिल जाए. I mean, you don't have to get it every single time. That's what I'm saying. You can get that, a couple of finishes. You can get a good placement points. Let's say 4th or 5th position. All throughout the 15 matches, you might just come out on top and take away the 30,000 rupees. That's how it works. राइट ओके, चलते हैं अब सीधा कल के एक बार स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं. कल के जो हमारे 5 मैचेस हुए इन 16 टीम्स का एक बार स्कोर कार्ड पे प्लेसमेंट देखते हैं. नन अदर देन सेलेस्टियल सीई फ्रॉम आई थिंक इट्स आईएमएस गाजियाबाद, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो टॉप पे रहता है उसका आपको नाम याद हो जाता है. सेलेस्टियल्स के प्लेयर्स के मुझे नाम भी याद है. कॉलेज का नाम है आईएमएस गाजियाबाद, एंड दे आर. Is that the only reason you remember the name Blackbeard? यूपी से कुछ लेना देना नहीं है. यार कह सकते हो गाजियाबाद है तो ठीक है. गाजियाबाद में जानने वाले ये बात है, लेकिन ठीक है आप यहाँ पे कर लीजिए भैया. 80 पॉइंट्स एंड एक चीज टीम फ्लॉक्सी, ये भी 80 पॉइंट्स हैं.
एंड इन दोनों के बीच का जो कंपटीशन था, जो तुमने अभी एक एज बात कही ना, वो एग्जैक्ट यहाँ पे हुआ था, दैट सेलेस्टियल्स स्टार्टिंग 2 मैचेस बैक टू बैक चिकन डिनर, देन बैक टू बैक 2 मैचेस बहुत वीक परफॉर्मेंस, एंड द लास्ट मैच ऑफ एंगल अगेन उन्होंने बहुत अच्छा खेला. सो एक ओवरऑल सेलेस्टियल ने अच्छा गेम खेला, बट फ्लॉसी, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लॉसी, दे हैव गॉट 2 प्लेयर्स next level aggression, वो घुस के मार रहे थे, and I really want to see the same thing again. And talking about Team United, तीसरे पायदान पे with 54 points, so एक second and third के बीच में we can see a big buffer. What do you think what's going to happen? That is actually a really big difference between, I mean, 26 point ka different hai wahan pe, but I really like the way that Team Celestials and Flossie are going in, right? You can see that rank points 47 जो kill finish points है Flossie के, and then finish points 33 जो rank points है Celestial के finish points है. So there's a little bit of you know sort of synergy चल रहा है इन दोनों के team में. But yeah, if they want to sit on top, they gotta perform RGB, right? So they gotta make sure that they put up a really good performance. But every other team as well, talking about 7 sins sitting on 4th position, they do have a chicken dinner, but look at those finishing points. 18, not a great number, but they have a total of 50. So they're still up there, and we are only done with 1 day. We still have 2 more days left. SVF 13. Now, another team that has really good potential, looking at yesterday's matches, because they did get 1 chicken dinner. Now, you can see, like, past match with him, you can see 5 chicken dinners there. Celestials got 2, 1 on Flossie, 1 on 7 Sis, and SVF, I'm sorry, they have 1 as well. Now, teams, till 5 tak theek hai, but after that, GTBIT, they have a 41 total point. Now, that's a little, you know, worrisome for me. Hitman sitting on 39, 40 bit touch nahi kiya un logon ne BB. And Beyond Esports, well, unfortunately, not crossing my, you know, beyond imagination they have to play today. Right. I'll say one thing कि कल मैंने एक चीज देखी, obviously Team Celestial Flossie उन्होंने एक maintain किया, but what I really want to see is that जो नीचे है ना teams, आज का 5 मैच है, overall इस पूरे ग्रैंड फिनाले में हमें 15 मैचेस देखने को मिलेंगे, 5 हो चुके हैं, आज 5 है. So I'll just say one thing, Edge. Obviously the team who is leading the charts right now with 80 points, let's say, in just 5 matches they secured 80 points. I'll say Team Virtue, the team who is at the back, like सबसे नीचे ही बैठे हुए यार, एक तो एक टिप ऑफ द टंग रहती है, यहाँ फ्लड्स है बट यहाँ कभी कभी नहीं आता, इट्स फाइन. बट आई वाज टॉकिंग अबाउट टीम वर्चू, लेट्स से दे हैव गॉट ओनली 12 पॉइंट्स आफ्टर प्लेइंग 5 मैचेस, बट आज के 5 मैचेस के बाद अगर टीम वर्चू ने भी लेट्स से एक अच्छा गेम खेल दिया, वी माइट बी सीइंग देम लीडिंग द leaderboard after the 10 matches. So this is what I want to see, to be honest. And बहुत जल्दी हमारे पहला मैच स्टार्ट होने वाला है, मैं और एज पहला मैच कास्ट करने वाले हैं. पहला मैच मुझे देखना है किस तरीके से होता है, क्या नीचे की टीम्स आज बाउंस बैक करेंगी, बिकॉज़ जब इतना मेजर आई सी एक तरह से लीग फिनाले है, 15 मैचेस, सो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक, एंड आई थिंक हमें बाउंस बैक आज देखने को मिलेगा फॉर श्योर. For sure, for sure. I mean, usually we have, you know, day to call as the comebacks, but let's see if the teams are going to be making a comeback. The teams at the bottom that I'm talking about, it's going to be the map of Erangel, a classic map of BGMI. This particular map, players have played multiple times. I mean, BB, I mean, आप खुद खेल लिए होंगे ये map at least 200 बार खेल चुके होंगे, I'm pretty sure. I think बहुत कम बोल रहे हैं, more than I'll say 2000 times, because I've been playing it from the beginning, 2019, even though Miramar is my favorite map. But yeah, Erangel for us is like a home map. Everyone can play Erangel. I'll say सबका map है. But अगर फिलहाल के लिए भी हम बात करें, see, Edge हम देख सकते हैं. If we'll see Novo अपने हुए, we can see 2 teams. एक player down भी हो गया Novo पे. Nobody is at military base. अगर हम Primos की बात करें, we can see 2 to 3 teams there जो vehicle लेके ऊपर की ओर जा रहे हैं. In poaching की, okay, चलो 1 से 2 टीम हमें देखने को मिले. Lots of drop clashes once again, and बहुत सारी teams को problem होने वाली है इस चीज से for sure. हाँ जी, वो तो होने वाला है. यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेयर डाउन हो चुका है. सुबह इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, राइट? इज ऑन हिज नीज, एंड I mean, I'm not really sure if there's going to be anyone helping him right now. But look at the player's position as well. I mean, it's still the first zone coming in. They're really far away from the circle. 1,000 meters, that's approximately a kilometer. But you got to be careful as well. We're jumping with 16 teams, 64 players. Pura lobby hai BB यहाँ पे, which is really fun. बिल्कुल सही. अभी मैं आज के दिन पे एक्सपेक्ट कर रहा था एज की
जैसे कि हमने डिस्कस भी किया कि इन टीम्स ने एक दूसरे को रीड किया होगा, हमें देखने को मिलेगा कि मे बी ड्रॉप क्लैशेस ना हो, बट आई थिंक ये टीम्स ये सोच के दोबारा से खेल रही हैं कि एक नया दिन है, नए मैचेस है, तो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द एग्रेशन, एंड अगर पहले दूसरे मैच में एग्रेशन काम नहीं आता देन फिर स्लो गेम खेलेंगे। बट फिलहाल टीम नंबर 13 एक बहुत डीप ट्रबल में, आई थिंक वेलकोनॉक्स इज द लास्ट प्लेयर राइट नाउ, एंड दिस टीम आईएच तक यही टीम फ्लॉसी है, दे आर डायरेक्टली फाइटिंग द टीम जो ऑलरेडी लीडर बोर्ड पे टॉप है, फ्लॉसी वर्सेस वेलकोनॉक्स। लेट्स सी क्या होने वाला है। फ्यूरी ऑलरेडी वी कैन सी जहर इज अलाइव, द टीम पूरे चारों प्लेयर हैं यहाँ पर, एंड आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, मिश्रा वाज आल्सो देयर, मिश्रा ने यहाँ पे डूम्सडे को नॉक एंड फिनिश किया पूरी तरीके से विद हिज शॉटगन, एंड अब वो नॉक होंगे फिलहाल के लिए। एक प्लेयर ऑफ वेलकोनॉक्स जो बचा हुआ था, काफी देर से हम देख रहे थे, वो पीछे की ओर जरूर गया है। Just one player getting eliminated from this side. Now that is an interesting thing. And there you go. हम लोग बात कर रहे थे कोई गिर के knock हो जाएगा. And we already see there on the finish field there. Unfortunately, not really sure वो कौन थे. But that should not happen. And that's, you know, and now वहाँ पे उनका resources भी use हो जाएंगे, bandages वगैरह वगैरह. That's also another thing that these teams need to keep an eye on, right? You got to make sure you have enough bandages, the enough adrenaline shots, your energy drinks, because बाद में वो सब आपको नहीं मिलने वाले. You can only get it at the start of the match. Make sure you have everything that you need. But as you were talking about, Mr. is bleeding. Volcanox वो उनके टीममेट को छोड़ के जा रहे हैं. Now, this is something that I like. हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि अगर स्टार्टिंग में वो फाइट आपके फेवर में नहीं जा रहा, तो you can just ignore the fight. Make sure you survive. क्योंकि finishing points हाँ important है, but rank points भी, you know, as equal important है वो भी. Obviously, if you have to win this tournament, Campus Showdown, you have to maintain you have to maintain the equilibrium between the finish points and the placement points. For now, I'll say one thing. Even though Team Flossie, they've got 3 finishes and they lost 1 player, no doubt, it's a good deal, but I won't say it's a full deal, because in the end zone you need your manpower. Meanwhile, यहाँ पे रोएंस पे भी बिल्कुल भसड़ मच चुकी है, लड़ाइयां होती हुई हम देख सकते हैं। बिजारो फिलहाल के लिए नॉक करेंगे YZ को, YZ अपने टीममेट से थोड़े से दूर है, रिवाइवल इजी आ सकता है। एक अच्छी बात है, दोनों टीम में कैजुअलिटी हुई है। मधेश यहाँ पे नॉक पड़े हैं, सामने से एक और प्लेयर नॉक पड़ा है, सो इजी रिवाइवल आएगा। बट डू यू थिंक एज YZ, आई कैन सी पवन बहुत ज्यादा पीछे है, क्या YZ को रिवाइवल मिल सकता है यहाँ पे? बिकॉज बिजारो ऊपर आ गया है, एंड अगर पवन आगे की ओर आता है YZ को रिवाइवल देने, तो माइट बी पॉसिबल पवन भी डाउन हो जाए। बट बिजारो वहां पे चांस देने ही नहीं वाले, वहां पे UMP से उनको एलिमिनेट कर देंगे just like that the entire squad as well. Wait a second, there's one squad eliminated already. I don't know which squad that is exactly, but one squad's already gone home, so that means they're going to go home with 0 points. वो भी first match में. Now that is, you know, मतलब थोड़ा टाइम मिलेगा अभी उनके. It's okay, it happens, क्योंकि first game है, they understand, थोड़ा jitters होते हैं सबके players के मनों में, but they need to make sure that next match अभी जो खेलने वाले हैं, they have to put up a better performance. Actually better भी नहीं, बहुत insane रखना पड़ेगा, क्योंकि they have to cover this matchup, right? But also एक और फायदा है उनका, क्योंकि अभी वो देख सकते हैं कि how these players are, ये टीम कैसे खेल रहे हैं, तो they can come up with some counter shots maybe coming into the next match. लेट्स सी, अभी फिलहाल के लिए तो यार दूसरा जोन भी नहीं बना। एक अच्छा जोन हमने देखा ऑलरेडी, नदन ईस्टर्न साइड का जोन है, टीम्स बहुत सारी उसी साइड गई थी, बिकॉज मैं बिल्कुल एक नदन वेस्टर्न साइड देख रहा था। लेट्स टॉक अबाउट जॉर्जोपोल, नदन सिटी, कोई टीम वहां पे नहीं थी। इवन आई विल से एक्सट्रीम पे जाए तो नोबडी वेंट टू जरखी। तो अभी जो पहला जोन है, मोस्ट ऑफ द टीम्स, आई विल से 15 टीम्स रिमेनिंग है, 15 टीम्स में आई विल से 14 और 13 teams, they are already in the zone. They will focus for a good location, a good compound, so that they can hold the compound, just wait, save their manpower, save their utilities, save their all the, I'll say, throwables, and use those things in the final zone, let's say 6th zone or 7th zone, when the real fights will come to them. And I think that's going to be a good approach for now, because lots of teams, apart from 2-3 teams, all the teams, they need to get some points today. And I'll say Edge, जितना इनिशियली पॉइंट ले लो उतना ज्यादा अच्छा। बट फिलहाल टीम नंबर 6 सीधा आएगी वाटर सिटी पे, एंड यहाँ पे वो टीम नंबर 16 के ऊपर इस्लामिन देगी। ऑलरेडी मधेश की टीम फाइट ले चुकी थी, एंड अभी फिलहाल के लिए मैं देख सकता हूँ मधेश को खत्म किया गया। सुदर्शन भी नॉक है, बिजारो की HP बहुत ज्यादा कम, एक एक करके पत्तों की तरह। जिस टीम ने अभी एलिमिनेट किया था एक टीम को,
वो यहाँ पे गिरती हुई नैनी पांडा, लेट्स सी उनको रिवाइवल आता है या नहीं आता, क्योंकि पीछे टोनी जॉक्स 3000 खड़े हुए हैं। एक स्मोक रिवाइवल बिल्कुल आ सकता है, बट एक फाइट यहां से निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है दोनों टीमों के लिए, बिकॉज़ इट्स अ 2v2 राइट नाउ। एज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन? वो grenade on point था Tony Penn. Look at him, he's almost on his knees. And if Tony goes down, that's pretty much the entire squad getting eliminated. Muskan actually trying to find a way to take one down, but वहाँ पे पीछे एक और खड़े हैं, Hyper. Now he's holding an off angle, but gotta be careful. Trigger and Nani, I think both of these players are gonna get eliminated anytime soon क्योंकि उनको revival मिलना मुश्किल है, but Muskan taking a bit of damage there. Tony ने पूरा heal कर लिया, but Bizarro वो ये एंगल होल्ड कर रहे, बट हाइपर वो ग्रेनेड कहाँ से, वो खुद के ग्रेनेड से डैमेज किया क्या उन लोगों ने? I think so, but फिलहाल it's a 2v2 situation between these two teams. Team number 6 और team number 16. जिस तरीके से ये लोग वाटर सिटी में वेट कर रहे हैं, I'll say one thing Edge, फाइट तो अब लेना है, रिवेंज तो अब लेना है अपने कंपेनियंस की मौत का हल से, एंड देखते हैं क्या रूइन से कोई भी एक टीम इन दोनों में बैक ऑफ करेगी, आगे प्लेसमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी करेगी, जोन को प्रायोरिटी करेगी। बट फिलहाल के लिए मुस्कान, उनके पास स्कारल होलोग्राफिक, एंड उन्होंने क्रश के ऊपर डैमेज देने की कोशिश की, सच कुछ कमाल तो नहीं कर पाए, बट हाँ एक अच्छा एंगल होल्ड की हुई है। हाइपर क्रिश नोज दैट के सामने बॉक्सेस के पीछे कोई एक प्लेयर मौजूद है। एक अच्छा नेड अगर हाइपर क्रिश ने इस टाइम पे मुस्कान के ऊपर कर दिया तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, आप यहां से बच के निकल ही नहीं सकते। बट ये फाइट काफी ज्यादा लंबी खिंच गई, एंड मीनवाइल बिज़ारो, उन्हें पता है अब तो सब मर चुके हैं, तो स्मोक करके वो अपने दोस्तों के पेटियों को, हमें कभी कभी कहना पसंद होता है क्रेट्स, इट्स लाइक पेटी, उसको लूट रहे हैं, देखते हैं कितना ज्यादा क्या होने वाला। बट अभी फिलहाल के लिए जस्ट लुक एट देम, टोनी जॉक्स वो हिलने का नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे मैं गलती नहीं करने वाला, मैं अपने अपोनेंट्स को गलती करने दूंगा। लेट्स सी रूइंस की ये फाइट कौन जीत के आगे बढ़ता है, whether it's gonna be टीम नंबर 6 और टीम नंबर 16। और एट द सेम टाइम यहाँ पे दूसरी तरफ एक और फाइट हो रही है। Itachi managed to get one, and look at the entire squad actually. Team Sync, they already got 4 finishes to their name. I think एक player बच गए, that's why the team elimination has now come into play. But इन लोगों को already 4 मिल गए, and 3 of them thanks to Itachi. पता नहीं क्या यूज कर रहे हैं, इनका शारिंगन बहुत पावरफुल है दिखता है। But here's the thing, मांगे क्यों कर रहे हैं, मांगे की सुकियोमी is it? सुकियोमी और मतलब से तो यूज कर रहे हैं, but look at the zone now, baby. Look at the zone shifting towards that northeastern side. Yasnaya abhi bhi andar hai, shelter, there's a little bit of that as well, and that drop is, I mean, koi bhi team wahan pe nahi hai. I mean, sometimes you get really good items in the A drop, and I think ek na ek team agar wahan pe chali gaye, to maybe they might have a slight advantage. Obviously you will get the chest pad, you will get the helmet, but फिलहाल के लिए ruins पे अभी भी एक और फाइट हो रही है। We can see that फिलहाल D-Talk की टीम, yesterday this team did really well, this is team Flossie right now। D-Talk उनको कार से ही गिरा दिया गया। Let's see Polar Onyx अपनी यहाँ पे डासिया लेकर आएंगे, यहाँ पे स्लैम करते पेड़ पे ज्यादा अच्छा रहता, बट फिलहाल के लिए रिवाइवल इज लाइक इजी रिवाइवल यहाँ पे दे दिया जाएगा। आई डोंट थिंक टीम नंबर 7 को इस टाइम पे ओपन पे पुश करना चाहिए, बट पीछे से आई सी टीम नंबर 7 का क्या एक प्लेयर मर्क्यूरी आ रहा है, एंड अगर मर्क्यूरी ने एक ऑफ एंगल ले लिया, ओ माय गॉड, मर्क्यूरी ने देखा राइट साइड में मेरे रिवाइवल चल बिल्कुल नहीं रुके, चलिए फाइनली उन्होंने पत्थर पे रोक लिया, बट जब तक वो रुके बहुत ज्यादा ऑलरेडी यहाँ पे लेट हो चुका है। एक और फाइट, बहुत सारी फाइट हो रही है। वी कैन सी इन द फिनिश फीड हाइपोकिड ने अभी C9 पैंथर पूरी तरीके से खत्म किया। ये फाइट जो है होनी तो ये वाली बात पता चल ही गई है। अच्छा टैप टैप टैप, क्या RBN स्पार्क, RNB स्पार्क वहां से बच के निकल पाएंगे? यस, वो निकल गए 50 HP पे। मिड रेंज फाइट, कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला इस मिड रेंज फाइट का। मैं कहूंगा एज वाई, अगर एक प्लेयर नॉक भी होता है यू कैन इजीली रिवाइव देम एंड बैक आउट, बिकॉज़ एक ओपन जोन है। बट आई विल से इस जगह पे ज्यादा देर फाइट नहीं लेना है, क्योंकि जोन छोटा होगा, जो बाकी की टीम से कोई भी आके आपको थर्ड पार्टी यहाँ पे कर सकता है। हाँ जी, थर्ड पार्टी इज अ मेजर यू नो distraction teams के लिए, and team 7 and 14 they've actually now given each other a little bit of respect. दोनों ने मतलब रहने दिया, फाइट नहीं लिया, and they're actually making sure that they have everything that they need now. थोड़ा heal भी हो रहा है वहाँ पे D-Talk. That was a little unfortunate, but हाँ, Mercury, I thought maybe he might take that fight, but that didn't happen. And right now team 7 Spark is a little low on HP as well. थोड़ा heal भी कर लेना चाहिए, and there you go, it comes into play. But they're making sure that they have everything, as I said, right? And they're making sure they have a good position as well. These two teams are already in the zone. They don't need to make any plays as of now. 13-minute mark about to hit. The second zone still coming in. बहुत time है.
बहुत ज़्यादा players भी अभी. We are still just 2 squad eliminations, 47 Yeah, players still in the server. I'll say Everyone's taking it slow here, baby. yeah, serious gameplay. Chalo, initially, we have seen that lots of drop clashes, but still, सिर्फ 2 team eliminate हुए. That means जो teams है वो अभी भी I can say कि कुछ टीम्स चाहे तो वो फाइट ले सकती हैं, but they're avoiding it. वो सेव कर रहे हैं खुद को. Meanwhile, TD Ghost उन्होंने इताची को डाउन किया. इताची की ये वही टीम है जिसने 4 फिनिशेस निकाले थे जब हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था. इताची के पास 3 फिनिशेस ऑलरेडी थे, बट वो अब हाँ इस जी. लॉबी को छोड़ के जा चुके हैं. कल की अगर मैं बात करूं इस टीम की, स्पेशली डूम्सडे की टीम की, एक बहुत स्ट्रॉन्ग गेम प्ले इन्होंने दिखाया था. स्पेशली IH थग जिस तरीके से टीम गेम प्ले देते हैं. बट अगर हम यसनाया के शहर में आ जाएं तो यहाँ पे हेडीज की टीम मौजूद है. एंड फाइनली आई कैन सी सेलेस्टियल्स यहाँ पे फाइट में आई. उन्होंने जहर FTW को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश किया. तो ओके ठीक है, एक मिड रेंज फाइट, एक फाइट हमें देखने को अब हर तरफ मिल रही है जहां पे प्लेयर्स दे आर रोटेटिंग, दे आर ट्राइंग टू गेट द बेटर ग्राउंड इन द जोन. एंड उसकी वजह से कुछ टीमों को थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर हो रही है. बट जिस तरीके से जोन बन रहा है, मैं कहूंगा एज, अगर यसनाया पॉलियाना का जोन बनता है सो हमें एक चीज तो पक्की है, 7 जोन में भी मे बी 30-40 प्लेयर्स लाइव देखने को मिल जाए. जी हाँ, 30-40 प्लेयर्स अगर 7 जोन में बच गया तो हम, I mean, we can only imagine कितना chaos होने वाला है. But look at this, team 12. Runway trying to take one of the players on the side of team 16 down. M4 long range. It should be able to get him, but there are like multiple players. वो car. Oh no. Oh no, stuck हो गया वहाँ पे. Gotta be careful though. Muskan and Tony. इन दोनों ने पता नहीं कैसे, but they did make it out of their positioning, out of the ruins, and now they're safe. Okay. Thank God. क्योंकि M4 long range पे बहुत अच्छा है, BB. We all know that. Yep. Best weapon in the game, if you ask me. अगर I mean इतना ज़्यादा recoil भी नहीं है, damage भी बहुत है. कोई भी यूज कर सकता है, to be honest. But team 12, they gotta be careful because they're making their way in. But कोई भी यहाँ पे gatekeep नहीं कर रहा, तो they're gonna have a really easy time coming in. But zone कहाँ पे गया ना? That is the question I have in my head. Yep. और वो हमें बहुत जल्दी दिखने वाला है. हमारे अगर शानमुख अगर स्प्रे दे रहा है, आई थिंक शानमुख he is in a prone position right now. आपने स्पॉट कर लिया कि शानमुख की पोजीशन पता चल चुकी है. शानमुख ने जरूर से स्प्रे मिस किया एंड सामने से रणवीर ने भी काफी ज्यादा स्प्रे मिस किया, बट उनके जो दोस्त है उन्होंने शानमुख को इसी के साथ खत्म किया. शानमुख was the last player surviving from his team. Now we have got only 13 teams right now and इस टीम को UP50 रणवीर की जो टीम है, टीम नंबर 12, अभी भी ये लोग जोन के काफी ज्यादा आई थिंक बाहर थे. इनको जल्दी से जोन में जाना होगा. हाइपरकिड दिस प्लेयर कल के दिन हाइपरकिड एंड विल एंड दे प्लेड रियली वेल. बहुत ज्यादा फ्रैग्स निकाले, बहुत ज्यादा फिनिशेस निकाले, बट अभी फिलहाल के लिए इन्हें जोन में जाना है. they've got 50 minutes नो डाउट. मुझे लगता है इनको लूट की थोड़ी सी कमी जरूर थी. जिस प्लेयर को इन्होंने मारा जाके उसको जो भी यूटिलिटीज एंड ऐसी सारी चीजें वो ले ली. बट सी oh my god, just look at the circle edge. It's like totally a hard shift over the northern side where I can see one team, they are holding a very good position. 6 Sense, I think वो 6 Sense ही लिखा हुआ. The great team we can see right now on the northern side of the zone. If they will hold that position, a good angle, वहां से if you have manpower, बहुत ज्यादा फिनिशेस निकाले जा सकते हैं. बट सिंक की टीम वो भी यहाँ पे जा रही है. मीनवाइल सेलेस्टियल यहाँ पे रोटेशन में थोड़ी सी फंस चुकी है. ओपन में पूरी तरीके से प्लेयर नॉक है, रिवाइवल आ रहा है. क्रैक्स का अगर ये नेट सही जगह पे चला गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी. एंड इसी के साथ अननोन को एक ऑफ एंगल से TD गोज डाउन करेंगे. सेलेस्टियल जो इस टाइम पे टेबल टॉप पर है, काफी ज्यादा मुश्किलों में, और अपने 2 प्लेयर्स यहाँ पे वो खोते हुए एज. हम लोग इसी की बात कर रहे थे. The ones at the top, if they get taken down, everyone else at the bottom, they might have a really good chance of coming out on top. And now Celestial, 2 players already bahar. Then the last 2 players surviving are Gujar and Blaziken. Gotta be careful though, because they're not just fighting one team here. They have to make sure that there's no one surrounding them as well. 7 Cents. What a way. They're taking down the big dogs. Tabletoppers ko nikal rahe abhi. But you gotta be careful. Right? Because वो भी, they know how dangerous Celestials are. क्योंकि उन लोगों को सिर्फ not just rank points, but they do have really good finishing points. But as soon as I say that, another player on the side of Celestial goes down. अभी एक ही player बाकी है BB. आई से वो एक प्लेयर बहुत ज्यादा डेडली प्लेयर है गुज्जर. कल के दिन का आई से ओवरऑल पे गुज्जर ने बहुत ज्यादा मैच मतलब गेम्स में बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. अभी हम देख सकते हैं ब्लेजी के नॉक है, मे बी रिवाइवल आ जाए. फिलहाल के लिए अगर हम बिजारू की बात करें, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सामने ऑलरेडी वही पे एक टीम मौजूद है. उन्होंने देखा अपने बगी के स्टेयर को, सीधा उल्टे डायरेक्शन में गोटी कल्टी मार वाली आवाज है. इट्स अ लाइन फ्रॉम अ मूवी. अगर आप कभी बॉलीवुड देखते हैं एज, तो बिकॉज़ आई डोंट थिंक आप ज्यादा बॉलीवुड देखते होंगे. क्यों? पहले इस पे आप आंसर करें मेरा.
I mean, मैं देखता हूँ, but the thing is मेरी हिंदी थोड़ी Yeah. समझ रहे हो ना अब थोड़ा इधर उधर होता है, तो मैं मतलब बात कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, बट इतने ज्यादा आपकी तरह तो मतलब 10% भी नहीं आता मेरे को, बट ट्राई कर रहा हूँ। देखो अभी आपसे थोड़ा सीखने के लिए भी मिल जाएगा मेरे को। इन प्लेयर से भी हम लोग सीख रहे हैं कैसे खेलना है, क्योंकि अभी देखिए वो यू टर्न जो मारा उसने, अभी गाड़ी सीखने के भी मिल रहा है मेरे को यहाँ पे बट टीम सिंक, टीम 5 दे स्पॉटेड द प्लेयर, बट इन्होंने जाने दिया क्योंकि दे नो, दे अंडरस्टैंड, राइट? अभी दे नीड पॉइंट्स, उनके साथ फाइट ले सकते थे, but they only have 2 players surviving and they have 2 vehicles already. Okay, they're going in for that early rotations, I see. But team 6 Bizarro, I really love this play coming in, but एक second, इनका दूसरा टीममेट कहाँ पे है? वो मुझे मिनी मैप पे तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं दिख रहा भी है, नहीं बट रहा। बिजारो एक अच्छा अप्रोच एजेस से, बट फिलहाल एक अच्छा नेट, रणवीर का थक डाउन, ओपन में फ्यूरी इज द लास्ट प्लेयर एंड आई थिंक वो भी खत्म होंगे उसी के साथ एक और टीम का एलिमिनेशन। एंड यहाँ पे एक फिनिश है घोस्ट के पास। मुझे लगता है यहाँ पे ये वेट कर रहे थे कि ब्लेजिकन टीम सेलेस्टियल दे आर स्टिल होल्डिंग द सेम कंपाउंड राइट नाउ एंड 2 मैन स्क्वाड, अगर एंड तक लेट्स से आई से अगर वो जोन वहां पे बनता तो बहुत ज्यादा अच्छा गेम देखने को मिलता, बट फिलहाल के लिए चाहे वो टीम नंबर 2 हो चाहे वो सेलेस्टियल हो, सबको जोन के अंदर जाना है। एजेस पे नो डाउट है, बट प्रॉब्लम हो सकती है आलाप की। अगर हम मीनवाइल बात करें, टेंस को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया। आरएनबी स्पार्क अपनी कार को लेके अपने फ्रेंड मरकरी के पास जरूर से जाएंगे, बट वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा टीम नंबर 7 एक ट्रिकी डिफिकल्ट सिचुएशन में, बिकॉज़ ऑलरेडी मिर्जा नॉक डाउन है, ब्लीड आउट हो रहा है एंड 2 प्लेयर बचे हुए मरकरी एंड स्पार्क, और उनके सामने आई कैन सी 4 मैन स्क्वाड। इट्स गोना बी अ 2v4 जहां पे 3 से 4 कंपाउंड है। अगर आप एक कंपाउंड में भी आगे की ओर बिना देखे जाओगे तो आप नॉक हो गए। मेरे देखते ही देखते वही वाली चीज यहाँ पे हो गई। आलाप ने आराम से अपने एके विद दैट रेड डॉट एक इजी स्प्रे सामने वाले प्लेयर को डाउन किया। आई थिंक अब क्या एक प्लेयर जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है या पूरी तरीके से वो एलिमिनेट हो चुका है? यहाँ पर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पे पूरे बीबी, अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ स्क्वाड एलिमिनेशन उनके लिए। आई मीन थोड़ा मतलब होप दिया था उन लोगों ने हमें कि मे बी 2v4 निकाल सकते हैं, बट देन that was just a really good push coming in. But Bizarro को देखो अभी, he's out in the open. What's happening here? वो प्रोन करके वहाँ पे actually a drop के लिए गए थे, but वहाँ पे if you remember, baby, the same players were facing off against each other. Bizarro, Team 6 and Team 16 once again they're face to face. Muskan, he's gonna get taken down, and Bizarro in a 1v1 situation against Tony. Right now, Tony this time he cannot escape this. He has to take the fight, but Bizarro, he is focused right now. He wants to make sure that he gets that finishing point, but he's getting shot from another area here. Third party now coming into play. Team 14, but using that A-drop as cover. Gotta be careful, Bizarro. He does have a grenade being cooked up, perfectly placed. Let's see if it's gonna drop right on him. Now that's the question. I think he missed it by a margin. Or did he? Oh, actually, he did. But never mind. Abhi humko dikh raha hai. Kish kahan pe hai? But he's really far away. Yeah, I'll say one thing कि जोन के बारे में तरीके से फाइट नहीं लेनी चाहिए। Meanwhile, TF जॉनथन कल के दिन के स्टार प्लेयर, I'll say that ओपन में थोड़ा खड़े होकर एक प्लेयर को नॉक किया, बट यहाँ पे ट्रेड फायर एंड वो भी नॉक डाउन किए गए। जेसीपी 4 में से एक बहुत अच्छी टीम है, मैं कहता हूँ आराम से जॉनथन को रिवाइवल दिया जाएगा। आलाप आगे गुड़ जा रहे, मल्टीपल डायरेक्शंस और पे शॉट्स आते हुए एक प्लेयर को नॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट कर चुके थे, बट उन्होंने अपने फायर बटन से उंगली हटाया, दूसरे डायरेक्शन से गोली, यानी ये पूरी टीम नंबर 1 एक केओटिक सिचुएशन में फंस चुके, जहां पे मल्टीपल डायरेक्शन से दे आर गेटिंग शॉट बाय एवरीवन। एंड लेट्स सी क्या यहां से ये बच के निकल सकते हैं, बिकॉज़ एक प्लेयर का रिवाइवल आ चुका है। जॉनथन, क्या जेसीपी गेमर का रिवाइवल आएगा? एक अच्छा नेट कार में बैठे बैठे यहां पे डेथ स्टॉर्म खत्म, दूसरा नेट आएगा, जॉनथन भी खत्म। क्या ही गेम प्ले यहाँ पे डोप पीयूष के द्वारा। एंड वंस अगेन टीम फ्लॉसी इज बैक इन एक्शन राइट नाउ, जहां पे वो अब बता रहे कि लास्ट जोन आ चुका है, जो कि हमारा जोन है, जहां पे हम अब फिनिशर्स बटोरने वाले हैं। एक टीम तो बाहर हो गए जो टॉप थी, वो सेलेस्टियल, बट फ्लॉसी अभी भी है वहां पे, अभी भी they're still in the picture. They're making sure that they get as many points as they can. And D-Talk, second bit of damage, is already at his knees. He might get eliminated, and there you go. Hyperkid FTW will make sure that he pays the price instantly, confirms that finish and gets a point for his team. But 7 Sins, gotta be careful because they're out in the open, but they do only have to face against 2 players on the side of Team 14. But FP Polar, he managed to take down 1. Harden goes down. It's going to be a 2 versus 3 situation. Mother बहुत damage ले चुके हैं, and he's going to be cooking up a grenade. If that lands exactly on his face, he might just go down. But on the other side of the map, we do see Tony going down as well. We're down to the top 7 teams right now, and Team 7 Sins, they've got to be careful because Play Zone is going to be the culprit once again, taking out another player. Cracks is going to be pushing in really close, and Dope Piyush
takes a bit of damage, but doesn't really matter. Krax is gonna be the one going down, and Krax, he actually gets taken down. This 2v4 might work out, and just like that, Celeste Gujar, जो top player थे, star player थे, unfortunately is gonna get taken out as well. BB, Celeste भी बाहर हो चुके हैं. बिल्कुल, अभी भी मैं कहूंगा एक चीज, अब ये 2v4 का एक वो था सिचुएशन, मुझे पता था कि फ्लॉसी वहां पे होल्ड कर लिए, बिकॉज़ आई हैव सीन देम प्लेइंग यस्टरडे, बट फिलहाल के लिए हमारे पास से यहाँ पे हमारे पहले मैच में 4 टीमें, 12 प्लेयर्स बचे हुए हैं, जहां पे अगर हम टाइटंस की बात करें, पूरा 4 मैन स्क्वाड इस टाइम पे व्हीकल से रोटेशन दे रहा है, कहीं पे भी जाएंगे फाइट तो अब लेना है. they've got already 3 finishes and it's time to bag more finishes, and let's see ये 4 मैन का जो स्क्वाड है टाइटंस का कितना ज्यादा फिनिशेस अपने खाते में और ज्यादा लेगा. फिलहाल के सोल स्पेंसर उन्होंने वो अपने प्लेयर्स को एडीएस देते हुए, मैं वही देख रहा था. फिलहाल के सिक्सर्स यहाँ पे इविल डाउन करेंगे टाइटन के एक प्लेयर को, दूसरे प्लेयर पे यहाँ पे स्प्रे जाता है, आक्रम वहां पे क्या बच पाएंगे. ओके ठीक है, राइट नाउ ही इज हीलिंग, जारो गॉड नीचे की ओर मौजूद है, कवर फायर दे रहे, बट उसका कोई फायदा नहीं. जिस प्लेयर को सिक्सर्स के इविल ने नॉक किया था वो सिक्योर कर लिया उस फिनिश को पूरी तरीके से. एक वक्त में टाइटन जो पूरी 4 मैन थी, लेट रोटेशन की वजह से फंस के रह गए, बिकॉज़ ऑलरेडी जोन के एजेस पे मल्टीपल टीम्स थी. नाउ वी हैव गॉट 3 टीम्स राइट नाउ. लेट्स सी कौन सी टीम यहां पे लेके जाती है पहले मैच में. विनर चिकन डिनर क्या वो होगी, टाइटन क्या होगी, वो आईएनवी की टीम, या वंस अगेन टीम फ्लॉसी. Oh, only 9 players left, and look at Sixtons FX. He's actually making his way towards his teammates now. They know अभी एक साथ रहना बहुत important, and the play zone is taking down most of the players, and just like that, another squad is going to be eliminated. Now it's down to a 4 versus 3 situation right now. Team 15, well, looks like Team 14, they're going to be having an issue here because already they have a player on his knees. They're taking a bit of damage as well. Piyush, gotta be careful though. Takes a lot of damage, will be healing himself up. But look at the positioning coming out from the side of Team 15 as well. INV Dina. He takes a bit of damage, but in the high ground advantage, it might just be enough to actually come out on top. Because high ground advantage, हम सबको पता है, BB. It's very crucial in this game. See, if you have the zone and you have high ground, it's like you will win the game, you'll get the chicken. अगर आपसे जोन छूटता है तो प्रॉब्लम होती है. फिलहाल तो it's a 3v4 and obviously अगर हम फ्लॉसी की बात करें, they've got 3 man power. बट ये टीवी जोकर ने क्या किया, बिल्कुल आगे रश किया, चलिए एक प्लेयर को नॉक करेंगे स्पेंसर को, बट खुद भी नॉक होंगे. नाउ इट्स अ 2v3. पोला यहाँ पे क्या रिवाइवल देंगे या वो रोकेंगे, आई डोंट नो व्हाई. जब एक प्लेयर ने बगी से एज पुश किया तो बाकी के प्लेयर्स उसे एडीएस क्यों सिर्फ दे रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं पुश किया. अगर सेम टाइम पे पुश करते तो एटलीस्ट यहाँ पे स्पेंसर डाउन था एंड वहां पे कुछ हो सकता था. स्पेंसर को आई थिंक रिवाइवल आ चुका है. स्प्रे बलों के द्वारा काफी ज्यादा दोनों प्लेयर डाउन, मतलब लिट होंगे, बट दूसरा प्लेयर डायना भी आगे जाएगा. एंड व्हाई दे आर कमिंग, एक एक करके आते जा रहे हैं, ताश की पत्तों की तरह बिखरते जा रहे हैं. जो मैन एडवांटेज था वो इक्वलाइज होता हुआ पूरी तरीके से यहाँ पे फ्लॉसी पूरे खतरों को पार करके मैन डिसएडवांटेज, जोन डिसएडवांटेज लेके जा चुकी है पहले मैच में. विनर चिकन डिनर विद 13 फिनिशेस एंड अमेजिंग गेम प्ले बाय देम. एक नए दिन पे एज. बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनल फाइट था पहली बात तो, बट द वे दैट पोलार प्लेड, मैन, 7 फिनिशेस टू हिज नेम. पीयूष स्पेशली एज वेल. आई मीन वो जिस तरह उन्होंने क्रैक्स को डाउन किया, दैट वाज रियली फन टू वॉच एज वेल. आई मीन हम लोग डीटॉक्स से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे. अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट डिलीवर टुडे. 0 फिनिशेस. आई मीन इट्स स्टिल द फर्स्ट मैच, राइट बीबी, बहुत टाइम है अभी. बट वो फाइट मैन एडवांटेज था, हाई ग्राउंड एडवांटेज भी था. मतलब these are the things, right? Exactly. ये छोटे छोटे mistakes that these teams need to, keep an eye on. Make sure that doesn't happen. I mean, एक बार हो गया, चलो ठीक है. Make sure it doesn't happen next map up. Because if it keeps happening, then it's going to be an issue for these teams. बिल्कुल. I'll say one thing, Edge. If you get an opportunity, so instantly you have to, I'll say, उसको आपको उस अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना है. यहाँ पे पूरी तरीके से आईएनवी, डीना, सिक्सेंस, इविल, इनके पास मैन पावर था. इवन चलो मैं कहता हूँ जो लास्ट जोन बना दोनों के पास नहीं था, बट हाइट से लेफ्ट साइड से अगर रोटेट आप पहले ही कर लेते तो आपको रिचेस मिल जाते जोन के अंदर का. जो चीज हमने देखा डोप पीयूष की टीम ने किया, दे टुक देयर बगी, स्लैम्ड द बगी ऑन दैट आई से स्टोन एंड आराम से वहां पे रुक भी गए थे. कहीं ना कहीं लेट रोटेशन हमें देखने को मिला. मतलब एक होता है
Battlegrounds Mobile India is all about quick decision making. अगर आप सही टाइम पे डिसीजन नहीं लोगे, चाहे आपके पास मैन पावर हो या कुछ भी होगा, सबको गन चलानी आती है. It's all about the zone, and that's what we have seen in this match. Even though सारे advantages होने के बाद भी, I'll say a good performance. They've got 7 finishes. They'll get हाँ जी. 12 placement points at 19 game. It's a good game, I'll say. Even way better than average. You're scoring 19 points from a single game. But आप और ज्यादा कर सकते थे और नहीं किया, वो आपकी गलती थी. But let's hope कि ये जो गलती हुई है दोबारा ना हो. Obviously कोई जान से नहीं करता, but I know that सारी टीमों ने कमाल करके दिखाया. But for Titan, I'll say, Edge, हमने इन्हें देखा था 4-man squad, कोई कैजुअलिटी नहीं थी इन द 7th जोन, एंड वो लेट रोटेशन के वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई वहां पर. ओ आई एम सो सॉरी. वो उस पे बात करते, बट एक सेकंड, स्टार ऑफ द मैच में एक बार देखो, गोइंग ऑल आउट, बेस्ट कंपेनियन, फिनिशर, सब एक ही है. पोलार सब एक ही है. मतलब वन मैन आर्मी लिटरली. फिनिशेस भी इनके ज्यादा है, रिवाइव 3, और लास्ट एलिमिनेशन भी इनका ही था. नाउ एवरीथिंग, नाउ दिस इज समथिंग, आई मीन ये हमेशा नहीं होता ना. दिस इज नॉट समथिंग यू सी एवरी डे. गॉट बी रियली इम्प्रेस्ड. आई मीन, बट एक चीज मुझे देखना है, कैन यू कीप अप द कंसिस्टेंसी. मतलब एक मैच ठीक है, हो गया, लेट्स सी नेक्स्ट मैच में भी इनको अगर, आई मीन हम बात कर रहे थे कि सेकंड टीम जो 19 पॉइंट्स थे उनके, अभी इफ दे कीप गेटिंग 19 पॉइंट्स इन नेक्स्ट 4 मैचेस एज वेल, it's going to be really well. ठीक है, I mean, हाँ, चिकन डिनर नहीं मिला इस बार, but if they keep getting 19, 19, 19, 19, that's a lot of points coming in. So it's going to be really beneficial as well. So I want to see if the consistency है in these top 2 teams. Celestial की हम बात करें तो they had these really high moments, but at the same time उनको पता चल गया कि they are not doing great, तो भागने की कोशिश करें. But unfortunately they were split up and they went down. Right. I'll say one thing after this match, no doubt Team Flossy would definitely एक big leap से ऊपर आ चुके हैं, because points already दोनों के same थे. Celestial कल के दिन पे भी I've noticed something, Edge, that they try to not indulge in the fight unless it's like an inevitable fight. जब तक अगर नहीं है जरूरत, नहीं लेंगे fight. And कभी कभी I'll say that कभी कभी जब प्लेयर सामने से अगर जा रहा है ना एनिमी, यू शुड टेक अ शॉट. इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम आप एक ट्रिगर कंट्रोल दिखाओ. एंड अगेन आई से कल ये चीज हमें देखने को मिली थी. आज भी मैं बोलूंगा सेलेस्टियल 3-4 जोन तक हमने उन्हें फाइट लेते हुए नहीं देखा. देन सडनली जब कैम उनके ऊपर गया, हम क्या देख रहे हैं कि 2 प्लेयर्स बिल्कुल ओपन में नॉक डाउन हुए हुए, 2 प्लेयर्स पीछे की ओर है. तो कहने का मतलब ये सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए. इस टाइप का सिचुएशन जब आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील, एंड ऑलरेडी यूर at the top right now. And now imagine, कल के दिन पे Celestial starting from the first match till the end पूरा टॉप पे रहे. Day 2 आते आते अगर आप टॉप से सेकंड पे भी आते हो, तो वो देख के आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा बहुत ज्यादा. लेट्स होप कि Celestial जो गेम देती है वो देती है, and I know that वो देगी. But Flossy and Polar, I'll say one thing, Edge, Polar कल के दिन पे भी कमाल खेला था सारे मैचेस में, एंड एक फायर पावर उसका नेक्स्ट लेवल है जो हमें देखने को मिल गया. दैट सारी जगहों पे पुलार था, एंड आई नो वो एक कंसिस्टेंसी उसकी तरफ से हमें देखने को आने वाले मैचेस में भी मिलेगी. ओके, तो मैं पोलार का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आने वाले सालों में ही इज गोना बी रियली वन ऑफ दोस नेम्स दैट वी विल बी लुकिंग आउट फॉर. पोलार, तुम पे बेट लगा दिया है, बस बेइज्जती नहीं होनी चाहिए. बिकॉज़ मैं जब भी किसी का नाम लेता हूँ, कास्टर कर्स देखो सब में होता है. हमने कुछ भी कहा उल्टा हो जाता है. बट आई विल टेल यू वन थिंग, जब मैं इन गेम कुछ कहता हूँ ना, हमेशा वो हो जाता है. I don't know why, but it happens sometimes. पुलार अगर मेरी बेइज्जती करवाई, देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मारना होगा तुम्हें. But yeah, let's see what's gonna happen. It's Battlegrounds Mobile India. Anything can happen at any time. We don't know कब क्या कहाँ हो जाए. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपने ये कैसे निकाल दिया एक सेकंड में? मतलब मैं भी ग्लासेस पहनता हूँ, इतनी जल्दी तो नहीं आते मेरे, मतलब ऐसा अटक जाता है पूरा. ये सर एक्साइट. ओके, कैन वी मूव ऑन प्लीज? अगले हिस्से पे जाते हैं. बट as long as you're talking about teams, right? अभी जो नीचे थे teams, right? They did not perform really bad, right? I mean, talking about Team Virtue, they did try. They got a couple of finishes here and there, but they did survive a little longer than what we expected. I mean, कल के comparison अगर हम करें, तो they did better today. So I'm happy, क्योंकि थोड़ा improvement आया. Maybe next match में और भी improvement आएगा, and that might be enough for them. आगे देखिए अभी top 16 में तो है वो position में. By the end of today, if they make it to top 8, right,
that might just be enough for them to, maybe come out in top 4, top 5 maybe by the end of the entire tournament. You never know. मैं दिल से चाहता हूँ कि वर्चू सीधा जीत के ही ये टूर्नामेंट चला जाए तो मुझे मजा आ जाएगा. मतलब आई मीन इट्स गोना बी फन ऑब्वियसली, बट यार पहला मैच बहुत अच्छा हुआ. स्टार्टिंग में जिस तरीके से मैंने ड्रॉप क्लैशेस हमने देखे कि नोवो रेपनोई पे भी दो टीम है, पोचिंकी पे भी है, रूइंस की तरफ तो है ही है, हर तरफ फाइट हो रही थी. तो आई थॉट दैट कि ओ माय गॉड अगेन स्टार्टिंग में सारे लोग मर जाएंगे एंड एंड गेम बहुत बोरिंग होगा. बट इवन दो फाइट्स मल्टीपल हुए, कैजुअलिटी कुछ कुछ टीम्स को नो डाउट हुआ, बस स्टिल हमें लास्ट जोन तक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्लेयर्स खुद को सरवाइव करवाते हुए देखने को मिले. सो आई थिंक अब देखिए जो एक बाउंस बैक की बात था, करते हैं हम लोग हमेशा दैट इस टीम के पास बाउंस बैक करने का टाइम है, अब वो हल्के हल्के करके कम होता जा रहा है. ऑलरेडी ओवरऑल कैंपस शोडाउन के फिनाले के 15 मैचेस के में से 6 मैचेस यहाँ पे हो चुके हैं, कल के 5 और ये पहला. अब मात्र 9 मैचेस बचे हैं. गलती अगर आप ज्यादा करोगे, ज्यादा आप गलती रिपीट करोगे तो आई विल से कोई और टीम आपकी जगह ले लेगी. एंड लेट्स सी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है दैट फ्रॉम द नेक्स्ट मैच जो कि आई थिंक मीरा मार का होने वाला है, हमें एक और ज्यादा सीरियसनेस गेम में देखने को मिले. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई मीन देखिए, गेम प्लान थोड़ा अलग होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि एरांगल इज लाइक अ मैप दैट एवरीवन ऑफ दीस टीम्स प्लेड. ये बेसिक मैप है, ठीक है. मतलब सब लोग एज सून एज यू डाउनलोड द गेम, फर्स्ट मैप आपको एरांगल दिखेगा, तो वो तो सबने खेल लिया, बेसिक गेम प्ले चलेगा. बट अभी मिरामा, द बिगेस्ट मैप ऑफ BGMI, things are going to be heated up obviously. I mean the temperature भी बहुत है क्योंकि वो desert है obviously, but at the same time sniper अगर कोई खेलता है यहाँ पे, it's a beautiful map. snipers के लिए एकदम बेस्ट है ये मैप. बट एट द सेम टाइम ज्यादा कवर नहीं है. एग्जैक्टली ज्यादा कवर नहीं है लेकिन इन मैप्स में अनइवन रिजल्ट्स है, लॉट ऑफ कंपाउंड्स कमिंग इन. तो एम इज गोना बी द नेम ऑफ द गेम. आई मीन कैसे आप पोजीशन कर रहे हो अपने आप को, और आप आई मीन यू हैव टू बी द वन इनिशिएटिंग द फाइट, राइट. आप ऐसा थर्ड पार्टी भी कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रेडी. पूरे 4 जगहों से आप, मतलब 4 डायरेक्शन से आप कहीं पे भी अटैक कर सकते हो. एट द सेम टाइम यू कैन बी अटैक्ड. सो एकदम पूरा पूरा ध्यान से दिमाग रख के, पूरा इन गेम फोकस रख के खेलना पड़ेगा मिरामार पे. तो बिल्कुल से, से मैंने कल ये शैडो को भी बताया था दैट माय फेवरेट मैप इज मिरामार, बिकॉज़ मैंने इसको 12-13 सीजंस लगातार खेला हुआ है. आई नो वन थिंग, मिरामार में ये है कि अगर आप एक लेट्स से एक आप ड्रॉप पे जा रहे हो जहां पे आपको ऑलरेडी पता है कि एक टीम आने वाली है, अगर आप बिल्कुल श्योर हो दैट यस हम 4v4 बैटल में विदाउट एनी कैजुअलिटी हम चारों प्लेयर्स को डाउन कर देंगे सामने वाले, देन आई विल से दैट कि जाओ और जाके एक ड्रॉप फाइट लो. अदरवाइज अगर आपको ये लगता है कि यार हम ठीक है सामने वाले को एलिमिनेट तो कर देंगे, बट उस एलिमिनेशन प्रोसेस में हमें भी कैजुअलिटी सफर करनी पड़ सकती है 1 या 2 प्लेयर्स की, आई विल से डोंट डू दैट. व्हाई? एज यू सेड, बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट मैप एंड सबसे मेन है कवर लेने के लिए रिजेस हैं. रिजेस पे से कब कौन आके आपको सरप्राइज धप्पा देके चला जाए आपको पता नहीं चलेगा. एंड टू स्टॉप दैट यू नीड ऑल 4 ऑफ योर प्लेयर्स सो दैट जब आप एंड जोन में जाओगे सो आपके वो चारों प्लेयर्स अलग अलग डायरेक्शन में अपना एडीएस रखें, दैट की कुछ सरप्राइज आने के चांसेस हो नहीं चाहिए. सो लेट्स होप दैट कि ऐसा हमें गेम प्ले देखने को मिले, बिकॉज़ दिस इज द बेसिक गेम प्ले. एंड वन मोर थिंग, इन एरांगल लेट्स से अगर आप स्टार्टिंग में 2 प्लेयर आपके मर जाते हैं, तब भी आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है दैट आप एंड जोन तक सर्वाइव कर लोगे. बट यहाँ बिकॉज यू हैव टू टेक व्हीकल्स, आप व्हीकल लेके जाओगे, 2 प्लेयर है वैसे भी आप डाउन हो जाओगे. अगर 2 प्लेयर है, रेजेस को आप कभी होल्ड नहीं कर पाओगे. तो लेट्स सी कि जो हमारे ये धुरंधर कॉलेजेस के धुरंधर स्टूडेंट्स हैं ये किस तरीके से बूम बाम मीरामार के मैप पे मचाने वाले हैं, जहां पे गर्मी तो है बट एक चीज आपने देखी, रूइंस तो लेफ्ट साइड में, ऊपर ओएसिस भी आ चुका है. एंड कल ओएसिस बिल्कुल नॉर्दर्न साइड ऑफ द मीरामार जोन गया था. तो व्हाट्स योर लाइक आई विल से फेवरेट एक सिटी इन द मैप ऑफ मीरामार वेयर यू वांट कि लास्ट जोन बन जाए? देखिए, नाउ दिस इज अ रियली टफ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक लाइक देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ मैप, एरिया ऑफ मैप दैट आई रियली लाइक, बट आई विल टेल यू व्हाट आई लाइक. ठीक है, पूरा मैं, Yeah. it doesn't matter what map it is. I really Okay. like the zones in which you have water, right? Okay. I mean Erangel पे तो it happens, बराबर में I've seen it happen like maybe 1 or 2 times at max. तो अगर Yeah, final zone में थोड़ा भी water हो गया ना, Okay. that's gonna be my day. I'm gonna be happy. मेरे को रात में बहुत अच्छी नींद आएगी.
पुerto Palacio, पानी चाहिए, गीला होना है एज को गाइस, if you know what I mean, नहीं समझ आएगा कि मैंने Oh क्या no. बोला, आपको समझ आ चुका है. That's like, एक होता है ना यार एज, I feel like I'll tell you, so I'm a part of an organization as a content creator, so we've got few international players from South Korea, from Indonesia, from Philippines, so obviously last time I met them, and आता है जी, बीइंग हाँ. एन इंडियन एंड देसी, हम देखो अपनी भाषा में ना, वो तो या इट्स दिस ओनली, बट जो हमारी भाषा है ना, उसमें हम फॉरेनर्स को कहते हैं कि ये बोलो ये बोलो, बट आई नो दैट यू नो हिंदी, दैट्स व्हाई आई कांट मेक यू से वर्ड्स, गुड वर्ड्स आई मीन, बट फॉर श्योर अगर ऐसा होता तो मजा आता. बट क्या पहला मैच खत्म हुआ, दूसरा मैच अगर हमारे हमारे जो ओपी, जो हमारे बैटमैन करके शो डायरेक्टर हैं, अगर वो हमें बता देते थोड़ा, जीबी ब्रो व्हाट्स द अपडेट, बिकॉज आप जब बोलते हो तो हमारी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त ज्यादा अच्छे से होती हैं, एंड आई नो जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादा वेट करना पसंद नहीं करते, तो जो हमारा दूसरा मैच है बहुत जल्दी स्टार्ट होगा. बट वंस अगेन, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फन एज, मीरामार एंड स्टिल एज यू सेड दैट वर्च्यू एक अच्छा पॉइंट लेके गए, बट अभी भी बहुत सारी टीम्स हैं, सो you expecting some kind of bounce back from these teams जो already bottom पर हैं? आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब हाँ थोड़ा एक्सपेक्टेशन है, बट मुझे आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस फीलिंग कि सेलेस्टिया वापस टॉप पे आने वाला है. I Okay. think they might just come up with a chicken dinner again. Flossie might make it work again. They might be in the top 2, top 3. But मुझे ऐसा थोड़ा that feeling you get अंदर से, it's a gut feeling होता है, क्योंकि they are not gonna be happy ये first performance है. तो yesterday as Okay. you said back to back performance अच्छे दिए इन लोगों ने, तो they're gonna make sure कि ये भी उनके नाम जाए. So that's going to be the Okay. thing. But as you said, I want the bottom teams to come out on top. जो भी नीचे 14, 15, 16 में, I want them to step up. But I mean, थोड़ा अंदर है जो टॉप पे है वो वहीं पे रहे, तो ऐसा भी मतलब है, क्योंकि वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं, they do deserve to stay on top. Obviously, it's not like कि आप अगर टॉप पे जाने की कोशिश करोगे तो जो ऊपर टॉप पे वो कहेंगे कि गनमैन ने पीछे रख लिया है. बट या इट्स गोना बी फन, बिकॉज जब इस टाइप का कंपटीशन होता है, दैट वन टीम वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स लेके कंसिस्टेंसी बना के ऊपर जा रही है, एंड अगर नीचे वाली टीम को फ्लो मिल जाता है एक बार, लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट यू आल से, बिकॉज वो बॉटम पे थे बिल्कुल, अगर वो इस मैच से फ्लो लेते हैं, उस फ्लो को मेंटेन करके चलते हैं, सो दैट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल. एंड आई नो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टीम वर्च्यू स्पेशली टू विन दिस टूर्नामेंट, बट आई विल से वन थिंग, इवन अगर टीम वर्च्यू वो एंड करते हैं बीइंग इन टॉप 5, रेस्पेक्ट देते हुए सबसे ज्यादा आपको Blackbear2oP देखने को मिलेगा, क्योंकि गुड गेम नेशन वंस अगेन, आपने ये वाली बात बोली थी एज दैट एक नेक्स्ट लेवल हमेशा की तरह एक इवेंट आता है जहां पे कैंपस के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड वी नो दैट इट्स वेरी रेयर इन दीज डेज, एंड जिस तरीके से गुड गेम नेशन इस चीज को आगे बढ़ा रहा है, सो मजा आएगा कॉलेजेस में इसी तरीके से इवेंट होता रहे. तो हैट्स ऑफ, कुडूस टू गुड गेम नेशन वंस अगेन. कल के दिन भी बोलूंगा ये चीज मैं बहुत ज्यादा, बिकॉज़ हमारा काम है वो, बट या दिल से मैं ये वाली बात बोल रहा हूं. इट्स नॉट लाइक I'm on the show and that's why I'm saying that That you is good true, game हाँ. nation, because they are paying me, obviously they are paying me, but yeah, it's because I mean, it's like इतना भी सच नहीं बोलने. I नहीं mean, नहीं, देखिए, या आप बताइए. हाँ जी, नहीं, go ahead, please finish. नहीं, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात सुनना नहीं, चाहता हूँ. मैं यही बोलने वाला था कि गुड गेम जितने भी, आई मीन आई थिंक स्टार्टिंग में से जितने भी इवेंट्स कर रहे थे, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. आई रियली लव वर्किंग विद गुड गेम. आई रियली लव वर्किंग विद जीबी. लेट मी टेल यू, जीबी, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई लव यू. ऑब्वियसली यू आर वाचिंग इट, यू आर हियरिंग मी राइट नाउ. High five. But I mean, So huge, huge shout out to Ninad Aditya as well, who's making it work. But ऐसा है कि this is the perfect platform. देखिए, I mean, you have already completed college, right? मैं अभी बाहर निकला. I was like, 2 साल पहले क्यों नहीं आ जाते तुम लोग सीन में? मैं भी खेल लेता. I mean, right. you're coming in. मैं अभी खेलना बंद करके मैं कास्टिंग कर रहा हूँ. You guys are coming in. तो थोड़ा दुख हो रहा है, but at the same time, I'm still happy कि हम दोनों अभी भी मतलब we are still a part of esports. Edge, I'll say one thing, bro bump, feelings mutual. Why? I'll tell you, because now imagine, and now I can imagine, for example, you have completed your grad and now you, गुड न्यूज आ रही है बहुत जल्दी. जीबी तेज बता दो क्योंकि मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूं. बट यस एज आई वाज सेइंग दैट अभी तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नाउ तुम एडमिशन लोगे इन मास्टर्स. नाउ इमेजिन गाइस, जनता, व्यूअर्स, मैं आपसे कह रहा हूं, इमेजिन एज वॉक कर रहा है ऐसे करके कॉलेज में, एंड लोगों को ब्रैग कर रहा है, आई एम एन ई-स्पोर्ट्स कमेंटेटर गाइस, एंड आई गेट पेड टू टॉक अबाउट वीडियो गेम्स, एंड आल्सो आई एम गेटिंग फेमस. I want that.
I really want to go back to my college once again. I'm thinking I should do double master so that I'll brag about this. 'Cause you guys, I'll say, जो लोग आज यहाँ पे गेम खेल रहे हो, you are very lucky. And once again, Good Game Nation, hats off, and I would love to work with you guys in future. But Campus Showdown एक कमाल का इवेंट है, and I know आज 1.5 लाख का प्राइस पूल है, कल ये 4 होगा, फिर 5 होगा, and ये ऐसे ही करके प्राइस पूल one. I'll add one more thing, Edge. For me, price pool उतना matter नहीं करता. I always talk about the glory. I talk about the experience. I talk about the crown. And जो इन लोगों को एक वो मिल रहा है ना, एक exposure मिल रहा है ना, that's a big thing. And for that, I really want to once again thank Good Game Nation for this amazing tournament. That is true. But with that, we are ready. We are ready for second map up. देखते हैं कि अगर teams prepared है. Now they are little bit of mentally थोड़ा disturb हो गए first game के बाद, जो भी starting में eliminate हो गए. But let's see if they can bounce back. Now that's what I'm talking about. The teams at the bottom, right? Team 14, 15, 16 in position में जो भी है, can they step up? But my eyes are gonna be on Celestial क्योंकि I mean, if you ask me, the team that's sitting at top, अगर वो लोग second position में आ गए, they're not gonna be happy, BB. So they will be putting up their best performance. Yep, भाई एक बार तुम नंबर देखो, वो याद है अगर तुम्हें एक मूवी थी जिसमें एक इंसान होता, मूवी छोड़ो यार, लेट्स से यू द क्लास टॉपर, एवरी टाइम you're on the top and then suddenly एक इंसान आ जाता है और आप सेकंड आने लगते हो, you won't like the fact, but एक बैक बेंचर वो सीधा अगर टॉप 5 में भी आ जाता है तो वो खुश हो जाता है. So that's what gonna happen. जो नीचे की टीम्स अगर वो बस टॉप 5 में आती हैं, they're gonna be happy, but अगर Celeste सेकंड रह गई तो it's gonna be a big, I'll say उनको दर्द बहुत ज्यादा होने वाला है. But meanwhile Picardo, I can see 2 teams right now, एक northern eastern zone जरूर से एक बार फिर से बनाएं. क्रूज डेल वेल की तरफ यहाँ पे लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, जहां पे हमारी सिंक की टीम है ऑलरेडी एक प्लेयर को खो चुके हैं. आई थिंक डोमिनिक इस टाइम पे कुछ इशू फेस कर रहे हैं, जमीन की तरफ उनका मुखड़ा था चांद सा, जल्दी से उसको वो हिला ले अपने कैरेक्टर को तो ज्यादा से, वहां पे एक और टीम है एंड अगर ज्यादा देर तक वो ऐसे खड़े तो प्रॉब्लम होगी. एंड पिकार्डो की अगर हम बात करें, द हार्ट ऑफ मीरामार, सो यहाँ पे भी 2 टीम है एंड जो टीम इस टाइम पे लीडर बोर्ड को आई नो दैट टॉप कर रही है, टीम फ्लॉसी, वो मौजूद है, उनके साथ एक और टीम है अरीना पे. लेट्स सी द हार्ट ऑफ मीरामार कौन इसको कॉन्कर करता है. A lot of really nice places as well. I mean, मिरामार में हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे it's gonna be easy. Los Leones हम लोग, it's like default. It's pretty much off an angle, right? एकदम बहुत सारे, हाँ, I mean वो तो है क्योंकि हम लोग देखिए अभी कोचिंग की भी हमें थोड़ा अच्छा लगता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, नहीं करना फाइट. बट दैट्स लॉस लियोनेस एंड कोचिंग की दोनों, इट्स लाइक दी हॉट स्पॉट जो फाइट्स लेना चाहते हैं. बट एट द सेम टाइम बोला, हम बात कर रहे थे कि Celestial, they're gonna be putting up, and already एक finish, already another knock. देखते हैं कि can they convert that into finish as well, because now they're actually closing in on the players of sudden sense. ये डरते नहीं है. This is what I love about them. They're not scared to take those fights. Initial fights लेते हैं, अगर down हो जाते हैं तो they make their way back. But cracks, you have to be careful because there's one player in the Celestial is gonna get taken down though. Unknown. ऐसा एक सेकंड में वो भी N249 से डाउन हो गए बीबी. बट कवर फायर आ रहा है, तुम देखो क्रैक्स गया था यहाँ पे उसको फिनिश करने, बट ऊपर से यहाँ पे नीचे गुजर ने सही तरीके से कंटिन्यूअसली अननोन के डायरेक्शन में एडीएस करके स्प्रे देते चले गए. क्रैक्स ने पहले डैमेज डील किया, देन क्रैक्स ने सोचा यार नहीं फिनिश तो सिक्योर कर रहा है, बट उनको डाउन कर दिया गया. एंड देयर इज लाइक आई विल से एक चांस क्रिएट हो चुका है जहां पे अननोन को रिवाइवल मिलने वाला है. आई विल से वन थिंग फॉर एग्जिस्टेंस, नो डाउट ये लोग पैसिव खेलते खेलते एग्रेसिव देते हैं, बट फ्रॉम द बिगिनिंग एग्रेशन मैं फॉर द फर्स्ट टाइम सेलेस्ट की तरफ से यहाँ पे हमें सेलेस्टियल की तरफ से देखने को मिला. क्रैक्स जो नॉक है उनको ढूंढा जा रहा है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस फिनिश को सिक्योर करेंगे. दूसरा फिनिश यहाँ पे आता हुआ सेलेस्टियल्स के हाथों में. एंड नाउ आई नो वन थिंग, सेलेस्टियल्स दे नो कि किस तरीके से प्लेसमेंट पॉइंट लिया जाता है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल टेल यू एज वो इन बिगिनिंग से फाइट ले नहीं रहे, चुन चुन के ले रहे हैं क्योंकि ये आगे बढ़ के जा रहे हैं. मीनवाइल अगर हम बात करें यहाँ पे डिटॉक, यहाँ पे डाउन किए जाएंगे. M249 के स्प्रे को मिस किया गया, सामने से स्प्रे आया एंड अब प्रॉब्लम हो सकती है उनकी टीम को. स्पेंसर लेट्स सी क्या करते हैं. फ्लॉसी जो ऑलरेडी टेबल टॉपर है, अगर यहाँ पे इस क्षण में एलिमिनेट होते हैं इस पिकार्डो में, तो कहीं ना कहीं सेलेस्टियल जिनका अभी इस मैच में गेम सही जा रहा है, वो एक बार फिर से अपनी वही जगह ले लेंगे.
अजी वो तो है. Oh no, एक explosion finish, but there's another Molotov being thrown in, but वो दूसरी तरफ चल रहा है fight. But let's focus on something that's happening right in front of our faces. Team 12 and Team 14. Look at the position coming in. Polar is actually really low on HP. He might just get taken down. Ranveer might be the one causing a lot of trouble for him. But oh, there you go. HP वापस आ चुका है. एकदम perfect position. उनका position भी बहुत अच्छा था. They had a lot of cover coming in as well. But Team 12, they're not going to give up. UP50. Isn't this ये एक गाना है ना रागा का शायद बहुत अच्छा है by the way. यूपी 50 एक आजमगढ़ यूपी में जगह है, वहां का नंबर जरूर है, बट फिलहाल के लिए एक प्लेयर को डाउन कर सकते हैं. यूएमपी चिकल चिकल के एक प्लेयर डाउन, दूसरा प्लेयर में देखते क्या उन्होंने पॉइंट नहीं. यहां पे स्कारल को स्विच करेंगे इंस्टेंटली, यहां पे सीधा हेडशॉट आएगा वेल इनके द्वारा. जो प्लेयर नॉक था रणवीर, उसे रिवाइवल भी आएगा. बट डोप पीयूष यहां पे वो कंपाउंड पे मौजूद है, नेट को कर रहे हैं घर के अंदर. नेट वहां से खिड़की है जा सकता है, बट कोई फायदा नहीं है. रूम दूसरा है. एंड अगर हम पोलार की बात करें तो वो अभी भी उस ब्लू बिल्डिंग में अपने पोजीशन को, उस हाइट को मेंटेन किए हुए, बट कोई फायदा नहीं है. सी एज, अगर आपके पास हाइट है, अगर आपके पास हार्ड कवर है लेट्स से, बट आपके टीममेट्स भी हार्ड कवर में फाइट लेंगे किसी और जगह पे लेट्स से, तो वहां पे आपको ज्यादा फायदा नहीं दे पाओगे. एंड इसी की वजह से अगर हम बात करें 2 प्लेस डाउन पे, अच्छा एंगल था ऑनिक्स के पास. पोलार ऑनिक्स यहाँ पे अपने पहले फिनिश निकालते हैं विद दैट स्कारल. एंड I'll say that 4x जो कि बहुत ज्यादा रिकॉइल हो जाता है स्कारल 4x अगर उसमें कॉम्पनसेटर या वर्टिकल ग्रिप ना हो. बट फिलहाल के जो मैन पावर 4v2 था वो अब हो चुका है 2v3. एंड स्टिल I'll say फ्लॉसी जो अभी लीडर बोर्ड पे टॉप पे 2v3. आई थिंक इट्स लाइक वो कर सकते हैं. देखते हैं क्या 2v3 होगा, या विलेन की जो टीम है वो यहीं पे फ्लॉसी की इस आग को बुझा देगी. 2v3. I mean, as long as Polar is in there, I think chances है. सकता But है. I mean, since he's a star player as of now, पीयूष ने भी 5 finishes लिए थे last time, so I think these two players might just be enough to अगर chicken dinner नहीं मिला तब भी ठीक है if they get enough points, right? क्योंकि they are already sitting on top. अभी अगर हम देखें, I mean, अगर हम दिमाग में अपना मैथ्स करें तो we know that Flossie is on top, second पे Celeste होगा, but the second और third में बहुत ज्यादा फर्क था after the day number 1. तो अभी I can only imagine what's the difference going to be between position number 1 and position number 3. So they don't need a lot of points. Anything अगर top 8 finish भी अगर आ गया, maybe like with 4-5 finishes, that is enough for Team Flossie to secure their spot in position number 1. But देखते हैं, I mean Team 12 UP50 कुछ try कर रहे हैं यहाँ पे smoke screen डाल के. I think they're trying to enter into that building. If they can isolate both of these players into separate buildings and then take that fight 1v3 अगर ले गए तो इजी होगा. बट अगर 2v3 ले रहे हैं तो टीम 12 के लिए मुश्किल होगा अगर 2v3 ले रहे हैं तो. बिल्कुल सही. आपने बिल्कुल यहाँ पे जो एक कलर हमें निकल के आया, अगर इट्स अ 1v3 obviously it's going to be difficult. And that's why Polar, the moment he saw that कि सामने से प्लेयर्स स्मोक कर रहे हैं, स्मोक वॉल बना के मेरी बिल्डिंग में आने वाले, तो वो वहां से ऑलरेडी निकल गया. मीनवाइल माय फेवरेट प्लेस सैन मार्टिन, हम देख सकते हैं जॉनथन वहां से हट जाओ, बहुत गलत जगह है. वैसे मैं इतना कहूंगा अगर ज्यादा देर तक आप पीक करेंगे एंड लेट्स से आपके पास अगर DMR और अगर आपके पास कार 98 नहीं, तो इट्स वेरी इजी. इवन तो यू हैव द हाइट, सामने प्लेयर्स की अगर हम बात करें, सो आई विल टेल यू एज, सैन मार्टिन में 3 मेन बिल्डिंग्स हो जाएंगी आपकी. आपको ही पता है, एक रेड आपको बिल्कुल सामने दिख रही है, एक अक्रॉस द रोड लेफ्ट साइड पे, एंड देन द एड बिल्डिंग जहां पे अल्फा, बुलेट्स, बैड बॉय, पवन है. अगर सैन मार्टिन में आप उतरते हो और आपके पास ये 2 बिल्डिंग्स आती है, तो आप आराम से जोन बनता अगर चला गया सैन मार्टिन पे, तो यू कैन इजीली विन द गेम बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ विंडोज इन दैट विंडो. एंड आप कहीं मतलब इन दैट बिल्डिंग, एंड उन विंडोज से आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टीम को सप्रेस कर सकते हो. बट एक बार फिर से हम देख सकते हैं सेलेस्टियल, उनकी फाइट यहाँ पे टीम नंबर 2 जो कि हेडीज, आई रिमेंबर दिस प्लेयर, कल एक बहुत स्प्रे दिया था अच्छा, जहां पे 1v3 वाला स्प्रे था. बट फिलहाल ब्रिज आराम से यहाँ पे नॉक करेंगे, आई थिंक सो. यस, अननोन का चलो लास्ट शॉट आ गया, घोस्ट को यहाँ पे डाउन कर तो दिया गया है, बट गुज्जा पीछे से अपनी टीम को सपोर्ट देते हुए. एंड आई थिंक एक और स्क्वाड को पूरी तरीके से परेशान करने वाली है यहाँ पे टीम सेलेस्टियल्स. Ghost actually down कर चुके हैं already and they already have 5 finishes. But on the other side of the map हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, Polar actually eliminate हो चुके हैं unfortunately. So Team Flossie now, I think they only have one more player left. वो भी हमें confirm करना पड़ेगा. But at the same time, the star player is gone and Piyush is the only one surviving. पहली मोहब्बत also went down. I mean, पहली मोहब्बत सबका खत्म हो जाता है unfortunately. But वो I mean वो तो सबको दर्द देते हैं. I mean, even if he gets some finishes, दर्द है. अगर down हो जाते तब भी दर्द है, तो दर्द तो हमेशा होगा. But let's see.
this particular position. Look at these teams. Team 15, 11, and 2. Teen teams. I mean, 15 थोड़ा दूर है, but these positionings coming in from Celeste and IQ right now. Got to be careful because Hades, as you said, BB, बहुत अच्छे player है. कल हम देख रहे थे. मतलब आप यहाँ पे थे, मैं पीछे से बैठ के देख रहा था. But now they're isolating him. A 1v2 यहाँ पे. Hades has to pull this off. He has to take a beautiful 1v2 here to even have a chance. तरुण क्या कर रहा है लेकिन? वो पीछे से अपने आप को बैंडेज अपने ऊपर रगड़ते हुए लगाते हुए, पर फिलहाल के उनके पास एसएलआर है. माय फेवरेट डीएमआर देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको चलाना बहुत मुश्किल है और सप्रेसर लगा. इसकी आवाज बहुत प्यारी है. ऑब्वियसली मिस तो इससे होना ही होना है, वो हिल भी रहे हैं. पर फिलहाल के अगर हम बात करें, हेडीज डाउन करेंगे ब्लेजिंग को 50 एचपी पे सर्वाइव करेंगे एंड अननोन यहाँ पे एग्जिस्टेंस भी आएंगे, बट वो काफी ज्यादा यहाँ पे फंस के रह गए. हेडीज आई नो फॉर अ फैक्ट वो वॉल में फंस के रह गए थे, बट पीछे से यहाँ पे एक और प्लेयर आ गया एंड दैट्स व्हाई 1v2 ऐसे हेडीज वहां पे कर सकते थे, बट 1v3 वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ऑलरेडी उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा लिया था, बट तरुण ही इज जस्ट मेंटेनिंग हिज पोजीशन. क्या फायदा होगा इस पोजीशन के मेंटेन करने का अगर आपके टीममेट को आप सपोर्ट ना दे पाओ और यहां से बच के जाना इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव द रिज राइट नाउ डाउन द रिज. आप एक तो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम 350 मीटर जोन आपसे दूर है एंड ऑलरेडी लीजिए सोने पे सुहागा आपकी लोकेशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है. गुज्जर वो बस वेट कर रहा है. गुज्जर आई नो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई से ब्रूट फायर पावर इस प्लेयर के पास, चाहे तो ये आगे जा सकता है, बट गुज्जर को ये बात पता है कि ओपन में जाऊंगा तो इवन सामने वाला प्लेयर भी गन निकाल के मुझे मारेगा. एंड लीजिए हेड चेज सीधा तरुण को भी यहाँ पे खत्म किया गया और एक और टीम का सफाया. सेलेस्टियल दे नो दैट हम प्लेसमेंट पॉइंट तो निकालेंगे, बट इस गेम में उनको फिनिशेस चाहिए एज, और आप देखें अभी से उनके पास 7 फिनिशेस हैं जहां पे 13 टीमें अलाइव हैं और अभी तो तीसरा जोन बस बनने ही वाला है. 18 finishes में 7 इनके already. That is a really good number coming in. और and the best part is baby एक player भी down नहीं हुआ है Celestial से. Now that is really good. But अगर if you divert your focus onto another team, Flossie जो last time really good performance दिए थे, they have already been down and out. So last time it was Celas actually going down, but we'll talk about that in a second. It's going to be Spark going down just like that. Running and gunning 1 second में उनको निकाल चुके हैं server से. And team RRLM, they're going to get eliminated in position number 13. तो इतने ज़्यादा position points तो नहीं है. Finishing भी I think they had only 1. So not a good position, not a good game for them. But talk about the zone now coming in. Still a lot of, a little bit of loss learners. La Bendita अभी भी है वहाँ पे, Impala भी है. एंड हम लोग वाटर के बारे में बात कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक व्हाट 3% वाटर. दैट्स नॉट गोना हैपन. बट जंकयार्ड अनदर प्लेस दैट आई रियली लाइक. बट हम लोग पहले मैप में भी बात कर रहे थे ए ड्रॉप. कोई प्लेयर आई डोंट नो व्हाई दिस प्लेयर्स आर नॉट रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी ग्रोजा मिल जाता है. अगर ग्रोजा मिल गया हाथ में, आई मीन रियली गुड रेट ऑफ फायर. इवन एमजी अगर आपको मिल गया एंड सबसे मेन अगर आपको ऑम मिल जाते हैं. बट आई विल से वन थिंग कि नॉर्मली इवन व्हेन वी कास्ट T1s वेयर ऑल द बिग टीम ऑफ इंडियाज प्ले, सो मोस्टली कोई ज्यादा अप्रोच नहीं करता बिकॉज़ इट्स वेरी लाइक रिस्की थिंग. अगर आपके बिल्कुल स्पॉट कहीं सामने गिरा हुआ, लेट्स से आप एक घर को होल्ड कर रहे हो 100-200 मीटर पे कहीं भी डायरेक्शन में गिरा, सो आप जा सकते हो कि ठीक है मेरा प्लेयर मुझे कवर फायर दे रहा है, बट यू आर रोटेटिंग एंड आपको अगर ड्रॉप especially आप chase करो, we don't see drop chasing in custom lobbies obviously, and I think because these players are still learning, grinding, and they are also following the footsteps of those already pro players, so maybe one of the reason. But yeah, अगर आप drop को जाके ले लो तो कहीं ना कहीं ग्रोजा आपको तो मिल ही रही है. एमजी आ चुके हैं, वो तो अलग ही एलएमजी. आई विल से दैट एलएमजी तो पता नहीं वो क्यों है, हेवी मशीन गन ही मैं उसको कह दूंगा. बट या अगर आपको ऑम मिल जाती है एंड ऑम है आपके पास, अगर गेट कीपिंग हो रहा है, वन शॉट इवन लेवल 3 हेलमेट उड़ता हुआ हमेशा में देखने को मिला. बट फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, विलेन को खोया है कल के दिन पे. विलेन एक बहुत ज्यादा अमेजिंग गेम प्ले उन्होंने कुछ मैचेस में दिखाया था, बट फिलहाल के लिए लेट्स सी हाइपर किड, आकाश एंड रणवीर ये लोग जो रोटेट कर रहे हैं जोन के एजेस से कर तो रहे हैं, रोड ही को फॉलो कर रहे हैं. देखते हैं कहां पे जाके रुकेंगे. सीधा मिनास जनरलिस्ट पे अगर जोन बनता है तो मजा तो आएगा, बट लेट्स सी 3 गाड़ियां, तीनों गाड़ी लेके यहाँ पे वो टीम बढ़ रही है. बट ऑलरेडी आप देखें जो 2 सबसे अच्छी जगह मिनास जनरलिस्ट, ग्रेवयार्ड एंड जंकयार्ड के बीच के कंपाउंड जहां पे आई थिंक सिंक की टीम है, मोस्ट प्रोबब्ली अगर वहां पे जोन बन गया तो इट्स गोना बी आई विल से लास्ट जोन. वहां पे कंपाउंड्स भी हैं, कुछ 1-2 आई विल से फैक्ट्री वाली बिल्डिंग्स, तो बहुत मजा आएगा लास्ट जोन में मैच देखने में. हाँ वो तो आने वाला है. अभी बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 50 मिनट्स इनटू द गेम
And we still have 44 players in the server, 12 teams still within. Team 12 looks like they want to take this fight to Team 10, but they got to be careful because they might just get third party here. But the positioning coming in is pretty decent from Team 12. They do have the higher advantage, but Team 10, उनके पास बहुत cover है, and that split coming in 2-2 split बहुत अच्छा है. But you know it can be dangerous because अगर उन लोगों ने 2v4 fight ले लिया, then it might be troublesome. But I don't think that's going to be the case here because Team 12 they have only 3 players. UP50 Yep. he's trying to take this. I mean यहाँ पे उनका कोशिश वही है कि हम लोग isolate करते हैं, maybe 2v3 लेते हैं. But on the other part of the map, Gujar is still popping off. Celestial, they're not gonna stop anytime soon, BB. या मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा यहाँ पे 2v4v3 नो डाउट. अगर आप जब तक सबसे मेन बात क्या एक चीज देखो ना, जो 2v2 का स्प्लिट भी है सामने, दोनों जो कंपाउंड्स हैं एक दूसरे को ये 2v2 स्प्लिट एडीएस में सपोर्ट दे सकती है. अगर यूपी50 रणवीर की टीम पूरा राइट या पूरे एक्सट्रीम लेफ्ट से जाके कंपाउंड पे सीधा स्लैम करे एंड इसको 2v3 बना दे रादर देन 4v3, सो वहां पे फायदा हो सकता है. बट आई डोंट थिंक सो कि अगर ये किसी भी एक कंपाउंड, चाहे वो राइट कंपाउंड हो या लेफ्ट कंपाउंड हो, अगर स्लैम करते हैं तो C9 के प्लेयर्स एक दूसरे को, ऐसा तो है नहीं यार, एज की सपोर्ट नहीं देंगे. सो दैट्स व्हाई रणवीर, आकाश, इनको ये वाली बात पता है. दे हैव स्पॉटेड द प्लेयर्स कि हाँ ठीक है, दो कंपाउंड में अलग अलग ये लोग स्प्लिट करके बैठे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इज द इन्फो. Akash and UP Ranveer, they know that कि सामने players है, but they don't know that कि how many players are there in those compounds. But finally we can see the slam and let's see, it's a 2v3 where C9 Panther and Schofield फंसने वाले रणवीर की चंगलों में, but Schofield यहाँ पे डाउन करेंगे आकाश को. 2v2 होता है और अगर जो दूसरे कंपाउंड में इनके टीम के प्लेयर्स अगर वो इस टाइम पे क्लोजिंग कर दे, it's gonna be very difficult. रणवीर यहाँ पे एक अच्छा नेट को कर रहे थे, किस नेट का क्या इंपैक्ट आएगा, नहीं वेस्ट होता हुआ नेट. आकाश को वो रिवाइवल दे दे, ज्यादा से देगा, क्रॉस नेट गया. रणवीर इज डाउन टू 50 एचपी. आकाश अपने पैरों पे पीछे आते हुए, रिवाइवल जाए वो ज्यादा सही है. पैंथर बार क्यों आएंगे, देखते क्या पैंथर इसी के साथ रणवीर को यहाँ पे डाउन करेंगे या वो वेट करेंगे या वो नेट कुक करेंगे या वो एक मोलोटॉव करेंगे. बट बहुत सारी यहाँ पे प्रश्न हमारे सामने उठते हुए. एज हाँ जी वो तो है, but looks like they're going for the revival now. Ranveer finally successfully revives his teammate. Gotta be careful though. Hyperkid वहाँ पे दूर से cover देते हुए, but Scofield, he has a really good position coming in as well. I mean, if you look at it, Team 10 they're not scared. ये लोग backup के लिए नहीं बुला रहे. They're okay with taking this 2v3. वहाँ पे players बैठे हैं, वहाँ पे cover fire देने की कोशिश चल रही है, but those buildings, there's just too many. And वो जिस angle से fight ले रहे हैं, Team 12, I gotta hand it to them. बहुत smart move है, because they're isolating that angle coming in from Team 10 क्योंकि उन्हें पता है कि दो लोग दूसरे बिल्डिंग में हैं. They don't want to make they want to make sure that they don't engage them in any in any fights as of now. But they got to be careful because Panther इनका पोजीशन भी अच्छा है. They don't know. I mean, they only spot Scofield there. Never mind. Panther already spot हो चुका है. Ranveer's trying to take him down with the use of grenades, but I don't think he's going to be landing anything on him anytime soon. Now they have retreated all two players together. But look at Hyper. अभी भी उनका पोजीशन बहुत दूर है. I don't know. Maybe if he comes closer, थोड़ा easy हो जाएगा ना टीम 12 के लिए. बिल्कुल. बट आई विल से दैट कि उस पोजीशन को हाइपर ना छोड़े ज्यादा अच्छा. मुझे बस एक चीज देखी, अगर हाइपर उस पोजीशन पे नहीं होता तो मे बी सामने से स्कोफील्ड चार्ज भी कर सकता था. जब प्लेयर आकाश नॉक हुए थे वहां से हाइपर कांस्टेंट एक फायर दे रहे थे. बट फिलहाल आई विल से वन थिंग, टीम नंबर 10, अब दोनों टीमों को जोन में जाना है. टीम नंबर 10 को एक साथ मिलके 4v3 यहाँ पे ले लेना चाहिए था. बट लेट्स सी, वो यहाँ पे कार लेके पूरी तरीके से फाइट से निकलना चाहते हैं, जोन को प्रायोरिटाइज करें. यही सबसे बड़ी गलती होगी. यूपी रणवीर गॉट अ वेरी गुड पोजीशन विद दैट 6x. यहाँ पे एक अच्छा स्प्रे दे सकते हैं, वेट कर रहे हैं कि स्मोक हटे सामने से, तो एक वक्त को प्लेयर्स अगर विजिबिलिटी होती है तो ही कैन टेक 1 or 2 प्लेयर्स डाउन एट द सेम टाइम. बगी, जिस बगी को लेने की कोशिश है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज्ड है. पवन मेरे भाई, अब तो आपको पैया पैया करके पैरों पे ही जाना होगा. देखते हैं ऐसा होता है. रणवीर सही है, ही इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी. बट आई विल से वन थिंग, इवन दो यूपी50 रणवीर या कोई इनके टीममेट एक दो फिनिशेस या पूरी टीम को एलिमिनेट कर दें, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एज वेल टू गो इन द जोन राइट नाउ बिकॉज़ 4v3. लेट्स सी, वाइजेड काफी ज्यादा ओपन में, हाइपरकिड कमिंग अप विद दैट अमेजिंग भी नहीं, अमेजिंग स्प्रे. डाउन तो जरूर करेंगे. लेट्स सी, ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई है. क्या कहना है इसका तुम्हारा? बहुत ज्यादा. एंड वो सर्कल जोन भी अभी कमिंग इनटू पिक्चर. गॉट बी केयरफुल. बट हाँ, हाइपर किड आपने जो बोला था बीबी, दैट वाज ऑन पॉइंट. क्योंकि ये हाइपर किड वो एंगल होल्ड कर रहे थे इतनी देर, ही गॉट अ फ्री बी.
And now look at it. YZ is going to be going down. There's no way he can get the revival coming in. That zone is the fourth zone and it's going to be dealing a lot of damage. And Hyperkid, he wants to take down Pawan as well. If he manages to take him down, knock him, he will get that finish nevertheless. The Hyperkid, he has to be careful as well. I mean, Hyperkid, you can look at the presence of mind he has. वो टीममेट्स को बोल रहे क्योंकि हाँ यहाँ पे एक प्लेयर ऑलरेडी चले जा रहे हैं and the play zone is going to be causing troubles for Pawan. He's going to be taken down as well. It's going to be the culprit taking on Akash as well. Titan Cyanide वो खुद गाड़ी से I don't know टकरा के क्या हो गया वहाँ पे, but everyone is falling victim to that goddamn play zone here, BB. That's why I said that even though कोई भी टीम यहाँ पे इस फाइट को जीते, play zone, obviously when you prioritize the zone, the game I'll say prioritize you overall. But यहाँ पे दोनों टीमों के लिए I'll say that no doubt एक aggressive approach अच्छा था रणवीर की टीम का, but सामने वाली टीम तो बहुत ज्यादा पैसिव ले गए अपने हार्ड कवर को, even though जोन के बाहर होने के बाद भी वो कितना क्यों ऐसे मेंटेन करते हैं. But just look at them, Hyperkid यहाँ पे बचते बचाते आ तो गए हैं इकलौते अपनी टीम के knight in shining armor, and let's see अपनी टीम को कितना ज्यादा और ऊपर लेके जाएंगे. फिलहाल के लिए जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी वी कैन सी टू टीम्स नो डाउट एजेस करके वो जोन में आगे बढ़ तो जाएंगे. अपनी टीम को टॉप 11 से मे बी टॉप 5 तक लेकर आ जाए, बट देखना पड़ेगा. बट अकरम की अगर बात करें, गाड़ी के पीछे पूरी तरीके से फंस गए, 3 प्लेयर्स उनके ऊपर चढ़ते हुए. अकरम अपनी टीम के आखिरी सहारा थे जो यहाँ पे वो भी डाउन होते हुए. इसी के साथ 10 टीमें हमारे पास बची. बट अब तुम देखो एज फिनिश फील्ड में हर तरफ लड़ाई, एंड मैंने देखा सेलेस्टियल के अननोन अभी नॉक हुए हैं यहाँ पर. मुझे भी देखना है कि वहां पे क्या चल रहा है क्योंकि हाँ टाइटन की तो लास्ट प्लेयर ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं. अनफॉर्चुनेटली दे गोना बी गोइंग डाउन इन पोजीशन नंबर 11, बट वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टीम्स, राइट? वी स्टिल हैव दोस सेलेस्टियल प्लेयर्स that we have our eyes on since the beginning. And team 9 की अगर हम बात करें तो they are just trying to put up a fight right now. अभी तो पहला फिनिश मिल गया उनको, but they need more क्योंकि रैंक पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, but finishing points बहुत ही important है, especially the consistency that we were talking about. But let's see क्योंकि अभी भी it's already the 5th zone coming in, BB. 22 minutes already हो चुके हैं. We still have 32 players in the server, and Shanmukh actually managed to take down one of the players. Badesh को actually down कर चुके हैं, but can he get the finish is a question. Can he get the elimination? Hyper gets one more. Nirvana gets a drop as well. And look at that play zone once again. There are a lot of players outside of it. They got to be careful. Team 9 बहुत ही गंदे position में, बहुत ही terrible position. I think you'll agree with me, Edge. यहाँ पे प्ले जोन को इस मैच में MVP मिलना चाहिए. क्यों? बहुत I mean for sure अगर आप हमारे हाथ में होता ये, मैं तो प्ले जोन को ही दे देता MVP की अवार्ड ये मैच को एटलीस्ट. एटलीस्ट कितने? एटलीस्ट 9 I think 8 to 9 बढ़ रहा है ऊपर से. एक बार फिनिशिंग फील्ड देखो, बढ़ रहा है भी एंड काउंटिंग. मैं यही देख रहा हूँ, बट फिलहाल के लिए हम देख सकते हैं डूम्सडे के एक अच्छा नेट से एक प्लेयर नॉक जरूर हुआ. एंड राइट नाउ सी वही जोन जो प्रेडिक्ट किया था उसी तरीके का बनता हुआ बिटवीन मिनाज जनरलिस्ट. थोड़ा सा राइट लेफ्ट है जरूर से, बट फिलहाल अगर सिंह की हम बात करें, डोमिनिक एंड ताची इज मेंटेनिंग अ गुड, आई विल से टीपीपी इज टेकिंग अ गुड टीपीपी राइट नाउ. बट आलाप पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है. आलाप, जेसीपी गेमर, डेथ स्टॉर्म एंड जॉनथन, टीएफ जॉनथन बहुत ही ज्यादा ऐसे एक ओपी प्लेयर है. देखते हैं नाम कैरी कर रहे हैं, मैं कहूंगा ये चीज तो है पक्की. बट फिलहाल के लिए उनको भी जोन में जाना है. ब्लेजिकन की अगर हम बात करें, एग्जिस्टेंस डाउन पड़े में ब्लेजिकन क्या रिवाइवल दे देंगे एग्जिस्टेंस को? मुश्किल है. ऑलरेडी चलिए अच्छी बात है. गुज्जर अगेन सी गुज्जर ने बहुत सारे फिनिशेस इस मैच में निकाले हुए हैं एंड रिवाइवल भी. अ कंप्लीट टीम प्लेयर आई कॉल गुज्जर. बट पीछे से टीम नंबर 3 भी आ चुकी है एंड एक ये फाइट जो होने वाली है टीम नंबर 3 फॉर देम इट्स अ 4v3 फाइट. आप उनको जोन में जाना है. गुज्जर ने स्पॉट कर लिया. डूम्सडे को गाड़ी से सीधा यहां पे गिराएंगे, बट क्रॉस फायर में वो भी डाउन किए जाएंगे. ब्लेजिकन इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग फ्रॉम Team Celestial. Let's see क्या वो रोक पाएंगे. It's a 1v2 situation जहाँ पे player zone का damage लेते हुए आ रहे हैं. Blaziken, you can do it. I think he can do it. But right now he missed lots of shots. किसी और direction से उस पे right side से spray आया. Blaziken for now एक prone position में he'll wait for his turn. अगर वो गलत टाइम पे निकले तो उनके हेड को सीधा पॉप अप किया जाएगा. देखते हैं अपनी टीम को वो कितना ज्यादा और आगे लेके जाते हैं. एज काशी भी वहाँ पे डाउन होते हुए. नाउ सेलेस्टियल एक ही प्लेयर बाकी है, वो ब्लेजिकिन है एक्चुअली. अनोन भी प्ले जोन से उनकी सैडली एलिमिनेशन हो चुकी है. बट लेट्स सी हाउ लॉन्ग कैन ही सर्वाइव, बिकॉज़ ऑल ही नीड्स टू डू राइट नाउ इज सर्वाइव. फॉर एमएस all of is making sure that the players on the side of Team Sync actually pay, and Team Sync unfortunately are going to be going down and out as well. Team 4MS got to be careful there. Dina takes on one of the players as well. Alab now proning and taking, making sure that he has the stamina to take all of the fights. Abhi, this is pretty much the dead zone coming in. Dina
He's in a really good spot though. Cover bhi bahut acha hai unka. But look at the positioning coming in from Blaziken. I still cannot believe Hyperkid be the sole survivor. He has been alive for a really long time. Wahan pe, oh, never mind. As soon as I said that, I'm so sorry, Hyperkid, but unfortunately, position number 6 में उनकी भी elimination हो चुकी है. Hyper kid बहुत ज़्यादा hyper हो चुके हैं, but just look at team number 13. They've got the hard cover, they've got 4-man, they've got everything जो एक इंसान को एक टीम को चाहिए. Now they'll just wait कि सामने से टीम other team के players आए and pick off किया जाए. सीधा winner chicken dinner. I'll say one thing as right now right है, अगर team number 13 अगर वो यहाँ पे इस मैच में chicken dinner नहीं ले गए तो I'll say एक weak game play, but फिलहाल के लिए अभी उनका एक player knock है, revival आएगा. आला बहुत ज़्यादा problem create करता हुआ for team number 3. Nates जा रहे जहर की अगर हम बात करें वो वहाँ पे बचे हुए हैं, उन्होंने revival दे दिया फ्यूरी को, बट अब एचपी को देखे क्या एचपी रिवाइव करने का यहाँ पे गेन करने का मौका मिलेगा. आई डोंट थिंक सो. अल्लाह ही मिस्ड लॉट्स ऑफ शॉट्स नो डाउट, बट स्मोक भी काफी ज्यादा है वहां पे. एंड इसी के साथ टीम नंबर 3 का भी खात्मा होता हुआ. 4 टीमें 8 प्लेयर हमारे पास. 4v आई गेस 2v2 और 4v 1v1 जो भी होगा यहाँ पे हमें पता चल जाएगा. because Blaziken is the last player. We have got 4 teams right now, 8 players, and Volcanox वो स्मोक कर रहे हैं. मे बी राइट साइड में अगर उनको Blaziken के हलचल महसूस हुई होगी, एक विजुअल इम्पेयरमेंट करने के लिए उन्होंने स्मोक किया. बट नाउ Blaziken नो सामने डीना मौजूद है, उन्होंने एडीएस खोला था. नाउ ही इज वेटिंग फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी. टैप 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 दोनों तरफ से, बट सामने लीड के स्प्रे आएगा, और जब इंसान के पास वो M4 लगा हो उस पे 3x और वो लेट जाए तो वो बिल्कुल मैं कहता हूं यमराज बन जाता है. इसी के साथ चौथे पोजीशन पे सेलेस्टियल का भी खात्मा. 7 प्लेयर्स 3 टीमें लाइव. एज तुम्हें क्या लगता है कौन लेके जाने वाला है विनर चिकन डिनर? वहां पे 4 प्लेयर्स जिंदा है अभी भी ऑन टीम 13, तो उनका एडवांटेज तो है. But let's see if they can actually put it up. It's going to be Jonathan taking one more player down. Jonathan is absolutely popping off right now. It's going to be Dina going down as well. It's going to be a 2 squads now alive. A 4 versus 2 situation here. Mistrial. He gets one more down, but there you go. The man advantage overpowering them again. It's just man advantage और कुछ नहीं था वहां पे, क्योंकि Jonathan was popping off. And I'm not talking about Jonathan from one of those big teams. I'm talking about TF Jonathan here. Guys, I mean, he has the same name. परफॉर्मेंस भी थोड़ा सिमिलर लग रहा है, तो gotta give it to them. But that man advantage जो था, crazy सुबह मिस्टर वाइटी was popping off at the end as well. दोनों finishes लास्ट में निकालते हुए. But what a game coming in yet again. बेबी थोड़ा स्लो स्टार्ट था इसका भी, बट उसके बाद जो इन्होंने खेला, स्पेशली सेलेस्ट, हम लोग बात कर रहे थे. एंड इफ यू टेक अ लुक एट देम, अननोन 3 फिनिशर्स, एक्सिस्टेंस 2, Blaziken 2 फिनिशर्स, गुजर 4 फिनिशर्स. आई मीन गॉट टू गिव इट टू Blaziken as well. अगर वो जिंदा नहीं रहते वहां पे, they would have gone out in position number 8 or 9. तो I think Blaziken, हाँ, उन्होंने कुछ finishes नहीं निकाले at the end, but he did give his team at least 4 points. बिल्कुल. मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, लास्ट मैच के बाद फ्लॉसी ने एक जंप लिया था, बट इस मैच में फ्लॉसी का मैप उतना अच्छा नहीं गया. जहां पे सेलेस्टियल दे गॉट द प्लेसमेंट पॉइंट, दे गॉट द फिनिश पॉइंट, एंड ओवरऑल पे एक बार फिर से हलचल मचने वाली है. बिकॉज नंबर 1 एंड नंबर 2 की जो ये फाइट चल रही है ना, इन दोनों कॉलेजेस की, इन दोनों टीम्स की, वो एक अलग तरीके की. मैं कहूंगा इस हमारे कैंपस शोडाउन में 14 टीमें एक साथ लड़ रही हैं, और ये 2 टीमें फर्स्ट और सेकंड I'll say पोडियम फिनिश के लिए ये लोग मेन लड़ रही हैं. तो देखते हैं क्या होने वाला है. बट I'll say one thing, जिस तरीके से आलाप एंड जॉनथन ने ये 4v2 को कन्वर्ट करना चाहा, मैं कहूंगा इम्पेकेबल. टिल द एंड उन्होंने एक अच्छा गेम प्ले दिया, जहाँ पे I'll say 2-3 प्लेयर को तो नॉक कर दिया था. आई थिंक दैट कि लास्ट ही कोई प्लेयर बचा हुआ होगा जिसने बस एक पीछे से जॉनथन को, मतलब एक सीधा स्ट्रेट हेड ऑन फाइट लेके दूर से I'll say, बिकॉज 30-40 मीटर्स का तो गैप नो डाउट था. तो एक अच्छा प्रयास मैं कहूंगा, इवन तो चिकन निकालने में आलाप जॉनथन की टीम सक्सेसफुल नहीं रही, बट स्टिल टिल दी एंड एक अच्छा गेम प्ले. अगर हम आईएनवी की बात करें, डीना अपनी टीम को टॉप 3 तक वो लेकर आया, वो भी एक तरह से I'll say डीना है या डाइना है, वो तो उन्हीं को पता होगा कि क्या ये एक पुरुष है या महिला. बट जो भी है, काम तो बिल्कुल उन्होंने सटीक किया, एक बहुत ही अच्छा कि अपने टीम को 10 प्लेसमेंट पॉइंट भी दिलवाया यहाँ पे एज. हाँ जी, वो तो है. बट लेट्स टेक अ लुक एट द स्टार ऑफ द मैचेस, राइट. 5 फिनिशेस जॉनथन के नाम. हाँ, लास्ट में थोड़ा दिक्कत फेस कर रहे थे. They couldn't pull off that 2v4, but doesn't really matter. Existence got 3 revives coming in. Celeste, there's a reason वो टॉप पे बैठा है. पूरे टीम, मतलब all 4 players of the team, they put up really good performances. मिश्रा वाइटी, the last finish हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने बोला था, 2 last finishes उनके नाम. And just like that, pretty easy stuff for them. They did get that, 15 winner chicken dinner, 15 points उन्हें मिल जाएंगे, along with I think 5 finishes that they have. Pulls their total up to 20. Really good game. But once again,
बेबी हम बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी नहीं है इनसे अभी भी। आई मीन ऐसा लग रहा है, हम आप भी बोल रहे थे यहाँ पे, वी हैव 16 टीम्स फाइटिंग, वी हैव सेलेस्ट एंड फ्लॉसी फाइटिंग टू दैट नंबर 2। ऐसा लग रहा है कि बाकी 22 टीम्स, सॉरी बाकी 14 टीम्स जो है, दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर दोज थर्ड टू फोर्थ फिनिश, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड तो सेलेस्ट और फ्लॉसी लेके जाने वाला है, ऐसे तो लग रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि सेलेस्ट एंड फ्लॉसी का ऐसा थोड़ा जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया कि एक गेम आप खेलो, एक गेम हम खेलते हैं, गेम आप खेलो, एक गेम हम खेलते हैं। आपसी यहाँ पे एमओयू साइन हो गया है क्या दोनों के बीच में, बट जो बात है दोनों के बीच का जो कंपटीशन चल रहा है इट्स टू गुड। एंड मुझे लगता है बाकी की भी टीम्स इस चीज को फॉलो करना चाहेंगी। अभी भी बहुत सारे मैचेस हैं, अभी तो आज के दिन के सिर्फ 2 मैचेस ही यहाँ पर हुए हैं। अब हमारे पास आने वाला है सैनहॉक, देन विल हैव वीकेंडी, एंड देन अगेन हम उस मैप पे जाएंगे जो ऑलरेडी हम खेले हुए हैं, इरांगल। सो अभी भी 3 मैचेस बाकी हैं। बट हाँ, 2 टीमों की कंसिस्टेंसी की जो मैं कहूंगा तारीफ करूंगा बहुत ज्यादा, एंड इट्स नन अदर देन आई विल से बोथ द लीडर, जो इस टाइम पे टीम्स जो लीडर बोर्ड पे टॉप पर, इट्स फ्लॉसी एंड इट्स सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का पहला मैच अच्छा नहीं गया, दूसरा बहुत अच्छा चला गया। फ्लॉसी का पहला मैच अच्छा गया, दूसरा नहीं गया, तो उन दोनों के बीच चल रहा है। बट उसके अलावा जो बाकी की टीम्स है, चाहे वो जीटी बिट की टीम्स हो या जीटी बीआईटी है हो या कोई भी अदर टीम्स हो, दे आर आल्सो गिविंग देयर बेस्ट। है 7 सिंस करके कुछ प्लेयर्स खेल रहे थे, उन्होंने पहला मैच अच्छा खेला, दूसरा नहीं। बट हाँ, you were talking about consistency जो अभी तक नहीं आया, and I'll say हमारे कैंपस शोडाउन ग्रैंड फिनाले का हम ऑलमोस्ट कहूंगा 48-47%, I won't say 50 बट 48-47% जर्नी हमने तय कर लिया। उसके बाद अगर एक बफर जो भी बनेगा ना, विल गेट द स्कोर कार्ड आफ्टर द थर्ड मैच। सो आप देखिएगा एक हैवी बफर दिखेगा जहां पे हम ये कहने वाले हैं कि देखो जीतेगा तो इन टॉप 2 या टॉप 3 में से कोई, बट हाँ नीचे के लोग बस ऊपर आ सकते हैं। यहां से पता क्या होता है, फिर हमें एक अलग तरीके का गेम देखने को मिलता है जहां पे जो टीम ऑलरेडी नीचे है ना, दे जस्ट थिंक दैट कि ठीक है हम जीतने तो नहीं वाले, एटलीस्ट लेट्स विन द हार्ट ऑफ आवर फैंस और आर लवर्स और आर कॉलेज के जो भी फ्रेंड्स हैं। सो हमें वो चेंज देखने को जरूर मिलेगा, बट वो कल के दिन होने वाला है। अभी भी 3 मैचेस बाकी हैं, 3 मैचेस में एक कंसिस्टेंट, एक बूम बम परफॉर्मेंस, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट एटलीस्ट यू विल हैव द चांस कि हाँ कल आप जब सो के आओगे डे 3 में, तो आप एटलीस्ट ये सोचोगे कि आज अच्छा गेम हो गया, सो वी कैन ऑल्सो विन। I don't want any team to think that ki we just have to be in top 5. You came here to win. You have to win. Obviously, if 16 are playing, कोई एक ही जीतेगा. But जो वो एक होता है ना एक दिल में, I want that. Let's hope कि अभी भी 3 मैचेस में अलग टीमों से हमें परफॉर्मेंस देखने को जरूर से मिले, जैसे इस मैच में हमें मिला। जो चिकन डिनर निकाल के टीम गई, आई थिंक उनका परफॉर्मेंस एवरेज रहा है, एंड नाउ they've got the chicken dinner. I mean, average रहा, and they were, I mean, देखिए, for you to get chicken dinner, हमेशा Yeah. finishing points are not important. कभी कभी सिर्फ, I mean, I have seen a couple of teams sometimes just get one finish and get a chicken dinner. ऐसा भी हो सकता है अगर आपको last finish मिल जाए तो. So that is what they did, right? They waited for the perfect moment and they snatched that victory. Celeste, they started off really, really well, but later on, moving into the game, they kind of fell off at that positioning. But once again, I did say that Celeste was going to come out on top, and they did. I mean, managed to. They put up a really good fight, starting with those squads को eliminate कर चुके थे. And then I thought maybe they might just get 20 or something. Unfortunately, I think they got like what, 8 or 9. Really good number once again. They also have like 14. They're gonna. I think they might just take their number 1 spot. I'm not really sure, but once again, it's gonna be really close coming in. But talking about map of Sandhawk. Now here's the thing, baby. मेरा favorite. क्यों मेरा वो नहीं भी है। बता देता हूँ. It is really small. First thing. Okay, that sounds wrong, but it's a small map. That's all I'm saying, guys. It's a small map. I shouldn't have said that. But If here's the you know, thing. मैं बहुत. know. No, you Guys, guys don't know. No. I'll say that. बस कुछ भी ये कहे, if you know, you know. Yeah. Oh, damn. आप मजाक लेते रहोगे मेरे इस बात पे. मैं ऑलरेडी ऐसा क्या समझ गया मैं. इसमें देखो बैंटर और हंसी मजाक, ऑब्वियसली अगर हम ये कोई एक ऑफिशियल ना इवेंट, इस बात पे. इस इवेंट पे I'll tell you, इस टाइप के इवेंट्स में ना मुझे बहुत मजा आता है, because when we do official, obviously we follow some हाँ जी. regulations. So sometimes even we True. want to crack jokes, we can't. But ये तो कॉलेज का इवेंट है, कैंपस का, we can be like okay. So Edge, yeah, moving on to you were saying something. हाँ, जो मैं बोल रहा था कि मतलब स्टैनहॉक छोटा मैप है, बट एट द सेम टाइम आई एम अ स्नीकी प्लेयर. मैं बहुत ही स्नीकी प्लेयर हूँ. मैं एकदम
जैसा लोग समझ कहते हैं, they use some words. एकदम हाँ, मैं बहुत चुपके चुपके खेलता हूँ आप ऐसा लास्ट में. I just um okay, I'll take that as a compliment क्योंकि मैं जीतता हूँ at the end. See, मुझे जीतने से सब कुछ है. Exactly, you just have to survive, come out on top, and that's what I usually do. Now, this map, it's small, but at the same time, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ये map. Oh, again, it sounds so wrong, man. God, why do I use these words? I need to use better words. But okay, we'll focus on the game, guys. So I'm so sorry about this. But the best thing about this map, boot having camp. fun. But but ये map है जो सबसे beautiful जगह है ना, BB. I mean, Yeah. Paradise Resort. Pa- What are your thoughts on it? आप मतलब क्या लगता है See, आपको इसके बारे में? if I'll have lots of money, lots means lots of money, so definitely I'll think about building my own mansion like Parazort Resort. You've got everything. You've got a Exactly. open, I'll say, that open area and the Mm. cottage-like thing. You can party, you can have fun, you can like be with your family. You can even put I'll say theater over there, invite your friends, watch esports because अब तो esports TV पे भी आने वाला है. So overall अगर रहने पे बोलोगे इट्स फन एंड इवन आई टेल यू पैराडाइज रिजॉर्ट इज दैट काइंड ऑफ स्पेस जहां पे अगर एक टीम आके लेती है उसको सो उस टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उसको होल्ड करना बिकॉज Exactly. वी नो Hold दैट करना. यू कैन एंटर पैराडाइज रिजॉर्ट एनी टाइम एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सामने वाली टीम को पता भी नहीं चलता बिकॉज वी गॉट लॉट्स ऑफ रूम्स वो पीछे की अलग रूम है फिर आप एंट्री यहां से कर सकते हो उधर से कर सकते हो अलग ही अलग एंट्रीज है सो जो टीम पैराडाइज रिजॉर्ट को होल्ड कर लेती है ना इट्स लाइक मुझे बहुत मजा आता है उस टीम को देखने में बिकॉज होल्डिंग इज अ थिंग जो सबसे डिफिकल्ट चीजों में आता है बीजीएमआई में आप अगर रुक के खड़े हो वो एक अलग चीज है बट आप एक घर में हो जहां पे सबको पता है टीमों को कि यस यू आर देयर एंड स्टिल दे आर नॉट डेयरिंग टू इवन डू द स्लैम इन और इवन कम टू योर प्लेस दैट्स द थिंग आई लाइक अबाउट द टीम्स एंड लेट्स होप आज के दिन पे पैराडाइज रिजॉर्ट पे हमें कोई देखने को ऐसा मिले या नहीं मिले बट सैनहॉक छोटा मैप जोन जल्दी जल्दी तो आप कोई भी जगह ले लो आना तो आपको घासों में है और Exactly. लेटना है आपको एजी की तरह ये भी बहुत गंदा साउंड किया Oh. दे नो व्हाट आई मीन हाँ लगा दीजिए आप अभी. This deserves for the glasses अभी. मुझे चाहिए वो thug life glasses अभी. This is the perfect time, BB. You want some background music? Let's go. 3, 2. ओके लेट्स गो बट एक I चीज है want यहाँ पे GB to put up a highlight reel for this. जीबी Make जीबी an Insta reel or something. मैंने एक चीज देखा है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास एक बहुत ही शानदार सी चीज है पीछे पीछे आप इसकी बात कर रहे हो क्या? No, not that guitar, my brother. I know हाँ तो you can do something. No. Just go and ठीक है. I wait. mean, Yeah. Wait. अगले मैप के बाद पक्का. देखिए लेकिन अभी मैं मैं कहूंगा जाके आऊंगा तो No, let's not do that. Let's end the show. Ending में करते हैं. Let's do something. It's gonna be done. fun. That's gonna be fun. But yeah, coming back to the game again, once again, fun मजाक हंसी मजाक चलता रहता है and ये तो एक part है but campus showdown day 2 final का यहाँ पे and we have 3 matches now. तुमने बताया why you like edge the map of Sandhog. But do you think कि कोई टीम कल के दिन पे एक टीम थी जिसने जो बूट कैंप पे उतरी और बूट कैंप पे जोन बनता चला गया एंड वो जीत गई एंड आई नो बूट कैंप पे सरवाइव जो भी कर लेता है इट्स लाइक सैनहॉक में बूट कैंप इज द आई से हार्ट अगर आप हाँ बूट कैंप जी. सरवाइव करते हो तो पूरा गेम निकलता है सो डू यू थिंक आज के दिन पे क्या वो सेम ही टीम वहीं जाएगी एंड एक वही गेम हमें देखने को मिल सकता है Definitely 100% अगर वो काम किया तो 100% वहीं पे जाएगा वो टीम. But now it's not going to be as easy as yesterday, right? क्योंकि पहली बात तो BGMI gods they're not going to give that same zone. अगर same zone मिल गया then they're going to be the luckiest people on earth. But ऑब्वियसली अगर zone आ भी गया I'm pretty sure that other teams are ready for this time, right? एक बार हो गया I'm pretty sure these teams are not going to be like हाँ एक बार हो गया तो वापस भी check in dinner दे देंगे. But one more thing that I really look forward to is Celestial and Team Flossie क्योंकि ये दोनों aggressive खेल रहे थे first 2 matches. Are they going to be going in with the same kind of gameplay or are they going to be shifting things up? क्योंकि Sandhawk is a different map again. Erangel is different. Miramar is different. Sandhawk is something completely out of the box. I mean, we'll go to Vikendi. We'll talk about that later. वो भी एकदम बढ़िया map है. But Sandhawk, मजेदार talking as long as we're on Sandhawk, you gotta shift up things. On Erangel or Miramar 2-2 काम करता है 3-1 भी काम करता है if you talk about 1 scouting in and then 3 but Sandhawk पे 1-1-1-1 even that is like really good 4 players really far from each other playing sneaky beaky like
that might just be enough क्योंकि आपको even if you're down grass you will be down in grasses, right? So you will have a lot of cover, बहुत सारे bushes there are a lot of trees as well. You will not be going down instantly. So ऐसा अगर if I get to see any teams going for this 1-1-1-1, I'm going to be delighted. यार मजा तो आता है, सी इवन नॉट जस्ट द ग्रास आल्सो एज, इस मैप पे एक तो देखो तुम्हें लूट बहुत इजी मिलती है, आप कहीं भी उतरो, लेट्स से इन द Exactly. कॉटेजेस you'll get the gun, you'll get a few bandages, एटलीस्ट मिल जाता है. एंड मिल जब जाता आप है. ओपन में भी आते हो, you've got the grasses, आप कभी भी प्रोन जा सकते हो. एंड सबसे मेन है जो इस ट्रीज के वो मोटे मोटे बार्क ट्रंक एंड इवन वो बड़े बड़े पत्थर, आप कहीं पे भी कवर ले सकते हो. सो मजा तो आता है नो डाउट. एंड लेट्स सी उसी टाइप का मजा क्या हमें इस मैच में देखने को मिलेगा, बिकॉज यू वर टॉकिंग अबाउट सेलेस्ट एंड फ्लॉसी. सी I'll again come to the same point. मैंने एक बार इसको रिपीट किया हुआ है. सेलेस्ट को जो मैंने अब तक जो इन 5 मैचेस देखे थे, वो कभी इनिशियल फाइट नहीं लेते थे, वो हमेशा एंड में आते थे और सीधा मार के एक क्लीन स्वीप देते थे. फॉर द फर्स्ट टाइम इवन आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन सेलेस्ट ने स्टार्टिंग में लॉस लूनेस के आउटस्कर्ट्स में फाइट लेना स्टार्ट किया एंड वो एंगेज हो रहे थे. ये नहीं था कि सामने वाली टीम एंगेज कर गई. एंड जहां पे नो Exactly. डाउट मिनास पे उनके प्लेयर्स थोड़ा सा ऑफ गार्ड पकड़ा गया, वो डाउन हो गए, ठीक है जो हुआ. बट सेलेस्ट ये दिमाग बना के आई, बिकॉज सेलेस्ट को पता है कि एक ही टीम है जो उनको टक्कर दे रही है, दैट इज फ्लॉसी. सेलेस्ट को ये बात पता है कि मैक्सिमम फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट यू कैन टेक 15 पॉइंट्स, दैट्स द मैक्सिमम आउटपुट आई विल से. बट फिनिशेस का कोई मैक्सिमम नहीं है, इवन इनफिनाइट भी नहीं है. बट हाँ, यू कैन टेक 15, यू कैन टेक 10, यू कैन टेक इवन 20. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक. सो बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर, नॉट जस्ट अ कास्टर, आई थिंक सेलेस्ट यही सोच रही थी कि 15 पॉइंट्स तो ले लेंगे, बट चलो थोड़ा सा चिकन के साथ साथ ना यार थोड़ा फिनिश और उठाते हैं. बिकॉज इफ अगर हम दोबारा हमारे डे 1 के पहले चले जाए, मैचेस से पहले, सो 80 पॉइंट्स है. प्लेसमेंट पॉइंट नो डाउट सेलेस्ट के पास ज्यादा है, बट फिनिश पॉइंट ज्यादा फ्लॉसी के पास है. दैट मींस कल के दिन पे फ्लॉसी ने एग्रेसिव खेला था. एंड वही सेम चीज मुझे लगता है दूसरे मैच के बाद, मतलब पहले मैच के बाद दूसरे मैच में सेलेस्ट ने एम किया, एंड दैट वाज एग्रेशन. एंड आई थिंक बिकॉज ये मैप है आपका सैनहॉक का, यहाँ ओवर एग्रेशन देखिए कभी काम नहीं आता, बिकॉज कब कहां कौन लेटा हुआ पता नहीं है. बट हाँ, आई नो वन थिंग, इस मैप में एक साथ रहना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है कभी कभी, एंड वो सेलेस्ट को आता है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी, सी एज एन एनालिस्ट, वी बोथ आर एनालिस्ट, ऑब्वियसली वी कैन, एक सिचुएशन को हम 10 तरीके से एनालाइज कर सकते हैं. इट्स बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव, बट द गेम इज रेडी गाइस. ब्रेस योरसेल्फ फॉर द एपिक मैच ऑफ सैनहॉक, जहां पे एज जैसे प्लेयर को घास में लेट के डसने में बहुत ज्यादा मजा आता है. लेट्स सी कितने सारे प्लेयर्स इस गेम में सरप्राइज देंगे अपने अदर एनिमीज को. बट यस, फ्लाइट पाथ मैटर नहीं करता. इट्स अ 4x4 मैप, छोटा सा मैप जहां पे टीमें अपनी अपनी फेवरेट स्पॉट पे कभी भी कहीं पे भी जा सकती हैं. सो लेट्स सी किस तरीके से कौन कहा जाता है. सेलेस्ट एज यूजुअल हाथन की तरफ जाते हुए, एंड कल भी एज हमें वहीं पे जाते हुए दिखे थे. बट बूट कैंप देखना है कौन सी टीम जाती है. तुम्हें क्या लगता है कौन जाएगी या क्या होगा? फ्लॉसी ऑब्वियसली, आई मीन फ्लॉसी को ही जाना पड़ेगा क्योंकि दीज आर द टीम. अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक मैच सेलेस्ट, एक मैच फ्लॉसी. तो लेट्स सी इफ दैट्स गोना बी द थिंग, एंड लुक्स लाइक दे माइट बी द वंस गोइंग देयर. एग्जैक्टली, देयर यू गो. once again they are going to be the ones to start things off, right? वहाँ पे और कोई नहीं है. But as I was talking about, Paradise Resort is my favorite thing, and looks like there's only one squad over there. But Camp Alpha, वहाँ पे 2 टीम मौजूद है अभी. Celeste being one of them, and you got to be careful as well. Team 12, UP50, they're already trying to take this fight against Team 6 and EVIX. उनको spot कर चुके हैं already. Team 15, got to be careful. Adrenaline shot coming into play, but it's going to be Bizarro with the first knock of the map. Shamo goes down, but an instant trade comes in. There you go, the Vector. This is the weapon that I absolutely love. Really high fire rate, just like the UMP. Gotta be careful, and Ranveer now with the M4, no scope. The Iron Sight. Gotta be careful, because now he's in a 1v4 situation. ये अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हैं is my first question. But he does have a lot of cover. He does have a lot of loot. There you go. बहुत सारा loot है यहीं पे. He has all the things. He has a vest. He has a backpack. He got a lot of ammunition. But I still don't see any of his teammates up close. And अभी दिख गए, कोई बात नहीं. And Ranveer, I think he just wanted to, as a थोड़ा warning shots दे रहा है Team 15 को कि हम लोग यहाँ पे मौजूद है. You gotta be careful. Yeah. एंड आई थिंक वो एक स्काउटिंग वाला भी है, थोड़ा सा स्काउटिंग भी कर लेना. हाँ, सामने टीम है, सामने प्लेयर्स मौजूद हैं,
बट अभी फिलहाल के लिए यूपी 50 एक अच्छा गेम हमें अब तक एक मैं कहूंगा एक एवरेज से बिलो तो नहीं बट एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर का हमें एक गेम प्ले दिखा रहे हैं। अगर हम कैंप्रावो की बात करें, यहाँ पे शनमुख की बात करें, उन्होंने एक प्लेयर को सुदर्शन को स्पॉट किया था उस बिल्डिंग के ऊपर, यूएमपी और 2x से सीधा धाराशाही करा एंड सीधा बैक टू द लॉबी, आंखों के सामने अंधेरा और पहला झटका सुदर्शन को के नाम पर इस टीम को लग चुका है, जो कि टीम नंबर 6 है। बिजारो, हाइपर क्रिश एंड मदेश अभी मौजूद हैं कैंप ब्रावो। लेट्स सी, शनमुख एक तो यहाँ पे फिनिश निकाल चुके हैं, वेक्टर विद दैट एक्सटेंडेड, अगर ओह यूजी पे भी अगर एक्सटेंडेड लगा दिया तो मैं कहूंगा ओ भाई यूजी पे भी लगा दिया, 2 एक्सटेंडेड, यूएमपी एंड यूजी दोनों पे एक्सटेंडेड। ये प्लेयर शनमुख बहुत ज्यादा मैं कहूंगा इस टाइम पे एक किसी भी प्लेयर को डाउन कर सकता है, बट उसके पास चेस्ट पैड नहीं है तो मुश्किलें बढ़ सकती है। चेस्ट पैड ढूंढ ले, शनमुख विल बी इनविंसिबल फॉर अ टाइम। एज वो तो है। आई मीन जितना आप रिसोर्सेज अपने आप के लिए ढूंढ सकते हो, इट्स दैट बेटर, इट्स दैट मच बेटर, बट एट द सेम टाइम गॉट बी केयरफुल। पोजीशनिंग देखो एक बार, that is something really interesting. Cracks, he gets a cheeky angle onto Alpha Bullets, and he does manage to take him down as well. That UMP mid-range, well, it does the job. That's all you need. Ekdam beautiful position. Cracks gets himself a double. Now, can he confirm his questions? I mean, knocks to mil rahe, but can he convert that into finishes, and can he get those points? I mean, he might just get the one onto Alpha because Alpha is in a really tough position. Unko revive mila bahut hi mushkil hai, but Team 9, they can actually revive his own teammates, so that's not going to be an issue. But look at this. Now Team 4, the smart move. They make the smart move. They're like, you guys fight. We'll see you guys later. We're going to go back into the center of the zone. But at the same time, everyone else are going to be taking their sweet time, making sure they get all the resources that they need, and going to be playing it really, really slow. Because once again, it is one of those times, one of those maps. It's the third map of the day. We still have 2 more maps left after this, so you got to make sure you get as many points as you can. And then when you come to the final map, that's when you put up your best performance. Because yeah, it's going to be a long day, but you got to make sure, because it's already day 2, and right now Team Celestial and Team Flossie, these 2 teams are at the top. You got to be careful. And another team that I really have my eyes on set on is SVF 13. Nagarjuna College of Engineering. Well, I'm an engineering student as well, so I'm really looking forward to see what these kids can do. But Hyper Kid, talking about kids, he puts up a good fight. Takes one player down already, confirms it as well. Got to be careful, the Team 15. Both these players, they're in a 2 versus 3 situation right now. We already have 1 squad elimination coming into play. Ballard takes a bit of damage, deals a bit of damage as well. Dana got to be careful as well. Joker takes a bit of chip damage. That grenade being cooked. Is it on point? Is it on point? I don't think so. Unfortunately, it's going to be missing that by an inch. But look at that positioning coming in from Team 12. They're actually cornering them. They're coming in from multiple angles. This is going to be hard for Team 15. Look at Akash. He's out in the open. He doesn't give a damn about if he gets shot from any other angles, because they want to take this fight. Talking about the fights, Diana actually gets taken down, which means there are only 2 more players surviving for the side of Team 15. And Team 3, well, third party. Here you go. Third party is coming into play. But Team 12, they're going to be the ones that might get this finish. And they need the finishes as well, because unka position, scoreboard base, not that great as well, unfortunately. But we still, as long as we're on the topic of expectations, Celestial and Flossie, kahan pe ye log? That is what I want to see. Trigger gets taken down as well. Nanny Panda is going to get down and out. Thug, unko confirm karte hue. Joker, he wants to take this fight. And Villain takes a lot of damage, but Joker is out in the open right now. He swings and he gets taken down. Villain up close and personal with the UMP, gets him down. And M4 now almost confirming that finish. He doesn't give a damn about it because he will get it. Bala's the only one surviving right now. He's going to go for the revive. No, Bite is actually going for the fight. One of us is what are you thinking, Balo? He peeks out. He actually gets one down, but that doesn't happen. He gets taken down. He wanted to get one, but that doesn't happen. Unfortunate. मैं एज ये सोच रहा हूँ, बल्लू में ये अलग से च्यवनप्राश वाली एनर्जी आई थी, इवन तो उसका प्लेयर डाउन था, बट
उनको लगा, मुझे आई थिंक बल्लू को ऐसा लगा कि सामने जिस प्लेयर ने नॉक किया वो 1v1 का सिचुएशन है, एंड दैट्स व्हाई जो प्लेयर नॉक था उसने भी एक वक्त को कॉल दी होगी कि इट्स लाइक एक ही प्लेयर है, जाके उसको मार दो। ये होता है ना वन शॉट यहाँ पे चीखा गया होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तुम क्या आप ऐसा करना पसंद करते हैं कि आप जब नॉक होते हैं तो आप चीखते हैं वन शॉट इवन तो सामने वाला पूरा 100 एचपी होता है? कभी ऐसा हुआ है? मैं तो अगर प्लेयर दिखा भी नहीं मैं तब भी बोल देता हूँ 1 HP है। मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ, अगर मुझे पता भी ना हो मैं कहाँ से शॉट हो रहा हूँ, लाइक वेयर एम आई गेटिंग शॉट फ्रॉम, मैं तो बस बोल देता हूँ कि अच्छे से बनाते हैं। जी मतलब क्या क्या है ये जी, व्हाट इज दिस, लाइक मतलब क्यों इतना। बड़ा सीन हुआ बल्लू वाला, मेरी आंखों से नहीं निकल पा रहा। बल्लू जितना तेजी से आगे गए थे ऐसा लगा था वहां पे हाँ जी कुछ हुआ, एग्जैक्टली, लेकिन एक अच्छा लाइक मुझे अच्छा ट्राई। व्हाट इफ हमें वहां पे एक 1v3 देखने को मिल जाता है लेकिन अभी मुझे फिलहाल के अगर इंटरव्यू बात करना है करें, बल्लू को एक्चुअली, मुझे मुझे जानना है कि वहां पे क्या आया कॉल। ये राज तो फिलहाल के लिए बल्लू के साथ जा चुका है। बल्लू अगर हमें सुन रहे हो तो जरूर से यू नो एज, यू नो मी, प्लीज टेल अस कि ऐसा क्यों हुआ। बट अभी फिलहाल के लिए चले सीधा गेम पे, क्योंकि बल्लू तो जा चुके हैं बट अभी गेम बाकी है। यहाँ पे फिलहाल के लिए बैड बॉय पवन बिल्कुल बैड स्प्रे, बैडेस्ट स्प्रे देते हुए अपने मीरा रेड डॉट M4 के साथ। बट अभी उनका एक टीममेट शनमुख नॉक हुआ है लेफ्ट साइड में। अगर पहले स्मोक करके रिवाइवल देते ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज अगर इस तरीके से वो बस सामने वाली टीम को सप्रेस करते हुए, कोई और प्लेयर नहीं इस टाइम पे टीम नंबर 9 का जो तारक पी के लेफ्ट साइड में शनमुख। सो आई थिंक MYM जो है हार्डन, उसे भी पता है कि एक लौता प्लेयर बचा हुआ है वहां पे उस पत्थर के पीछे, तो रिवाइवल का मौका ही नया दिया जाए। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, लेट्स सी क्या होने वाला। फिलहाल के ओके एक प्लेयर को नॉक कर सकते थे, काइजर लेफ्ट साइड से रोटेट कर चुका है। इट्स गोना बी आई विल से एक बहुत इजी चीज जहां पे लेफ्ट साइड से पूरी ये टीम नंबर 4 काइजर 7 सिंस की जो टीम है, टीम नंबर 9 को एलिमिनेट करके सीधा 13वें पोजीशन पे एलिमिनेट कर दे। लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पे बैड बॉय पॉवर क्या एक प्लेयर को भी नॉक एंड फिनिश देके 7 सिंस की टीम को झटका देंगे। अगर ऐसा होता है तो नो डाउट मजा आएगा, बट फिलहाल के लिए नेड नहीं आई थिंक सो काइजर के पास, अदरवाइज वो एक नेड डाल के आराम से पवन को खत्म कर सकते थे। पीछे से नेड गया, कुछ फायदा नहीं उसका, क्रैक्स ने स्पार्क को पूरी तरीके से ब्लीड आउट करवा ही दिया था। फिलहाल के ड्रॉप शॉट कोई फायदा नहीं, काइजर विद जिगल एक ही है मैन। इसी के साथ 13वें पायदान पे एक और टीम एलिमिनेट होती हुई, मदारा क्रैक 7 सीन्स, देव गॉट 4 फिनिशेस एंड अब उनको 700 मीटर जाना है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इवन दो इनके 4 मैन स्क्वाड भी है यहाँ पे एज। 4 मैन स्क्वाड, बट अभी जोन की हम बात करें तो इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट लेफ्ट साइड, शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट वेस्टर्न साइड। आई रियली लाइक दिस क्योंकि पानी है बेबी, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। पानी है, आई मीन यहाँ पे बारिश हो रही है, मैं भी हैदराबाद से हूँ, आप भी हैदराबाद से हो अभी हट। एटलीस्ट, तो अरे क्या यहाँ पे करा बारिश रे तो हो रही है भाई, बहुत, क्या एंड यू करा कैन रे भाई सी इट भाई। राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर। बाहर हमें अरे मतलब रोड पे भाई तो है अभी, मक्का फाइट। यहाँ पे जोन में भी बहुत पानी है, लाइक ऑलमोस्ट 30%। तो आई रियली वांट टू सी, आई फिनिश मीन कर दिया आप आपसे मक्का बात कर रहा था बच्चा। मैं इसके पहले कि हमें चाहिए, मुझे चाहिए पानी एट द एंड। मेरा मर्द पे तो नहीं हुआ, but let's see if that can happen here on the map of Sandhog. But look at the positioning coming in from 7 since they're really far away, but they do have a couple of vehicles. They're going in for that early rotation अब here, मालूम हो गया baby. बुल्ला। They have to be careful though, अब क्योंकि अरे already क्या बहुत करा सारे भाई, teams कहाँ है अंदर है, मक्का? जोन के अंदर है। ये साइड तो गए अगर तो गेट कीपिंग हो गया ना, they might just go down. या देखते हैं क्या होना है। ये बैठ जाओ मैं यार जाके। पीयूष को जब जब मैं देखता हूँ ना, दिस गाय ही इज लाइक पत्थरों टोटली में ऑन अ घुस नेक्स्ट लेवल। इस लॉबी में ये प्लेयर थोड़ा चमक के निकलता है। यस्टरडे नहीं नहीं आई जोन सॉ पे हिम दैट जस्ट बाय वन ग्रेनेड 2 times ही शायद नॉक जोन 2 यहाँ पे भी प्लेयर्स बंदा। ऑफ अपोनेंट टीम। एंड लेट्स सी क्या आज के दिन पे वी विल सी, अरे अरे वी भाई भाई लाइक get to witness फाइट once हुई मेरे again पास। those golden finger nades from him। फिलहाल के लिए पानी में डुबकी एंड तैराकी करते हुए माइकल फिलिप्स बनते हुए यहाँ पे हमें दिख सकते हैं फ्लॉसी के प्लेयर्स। बट अभी कोई भी खतरा नहीं है। नाउ जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट एज की टीम नंबर 7 थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाए तो प्रॉब्लम दे सकते हैं। बस डीटॉक ही इज ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, ही इज टेकिंग द टीपीपी एंड वो अरे पूरी ऋत्विक उनकी इसको कवर कोशिश दे, रहेगी कि अगर कवर कोई दे। टीम आती भी है लेट्स से तो उसको सप्रेस कर दें, ताकि उनके जो प्लेयर्स इस टाइम पे पानी में हैं वो भी लैंड पे आ जाएं, अपनी गनों को हाथ में ले लें एंड लड़ने लायक हो जाए। फिलहाल के लिए टीम नंबर 7 दे आर इन आई थिंक एक लुकआउट पोजीशन में कि ठीक है गैदर करते हैं इंटेल कि कोई टीम आ तो नहीं रही। बिकॉज ज्यादा देर तक भी आप कंपाउंड में रहते हो ना सैंडहॉक में तो प्रॉब्लम है, बिकॉज कभी भी कोई भी टीम लेटते लाटते आ ही जाती है आपके पास। एंड वी कैन सी पहली मोहब्बत, उन्हें अपनी मोहब्बत
एक डार्क कवर के साथ ही डार्क कह रहा हूं मैं, एक हार्ड कवर के साथ जो कंपाउंड है वही निभानी है, बिकॉज मोहब्बत तो उसी जगह पे हो सकती है। बट फिलहाल के लिए लेट्स सी पवन लेटे हुए हैं यहाँ पे, अगर स्पॉट हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पवन को, बट पवन गन शॉट्स ले रहा है एंड ही नोज दैट कि अपोनेंट टीम्स कहां पे। माइट बी पॉसिबल कि पवन दो टीमों को प्रॉब्लम दे सकते हैं। इट कैन बी पहली मोहब्बत की टीम या एक और टीम जो उनके पीछे मौजूद है। थोड़ा बीबी ऐसा दूसरे गेम की तरफ चलते हुए, बट कोई बात कौन नहीं। सा गेम, डार्क कवर। कौन सा गेम खेला? ओ ओ वेट यू डोंट, अच्छा ओके नो, मतलब डार्क कवर एक्चुअली ओके, मैं बाद में बताता हूँ आपको। विल फोकस ऑन बीजीएमआई एज ऑफ नाउ। इट्स हार्ड कोर। मैं तो इस गेम का नाम कुछ सुना भी नहीं, हमने कुछ सुना नहीं सुना, बट स्कोफील्ड, यहाँ पे स्कोफील्ड से मुझे बहुत, आई नो स्कोफील्ड एक जगह, एक बहुत अच्छा एक शो है, उसमें स्कोफील्ड हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा अच्छी चोरी चकारी करते थे। बट अभी फिलहाल अगर हम बात करें होप पवन, वो आगे जा तो रहे, क्या लगता है तुम्हें? अब इस टाइम पे तुम देखो फोर्थ जोन आने वाला है कुछ ही देर में, एंड वी हैव गॉट 46 प्लेयर्स, 12 टीम्स। सो आई थिंक बहुत मुश्किल होगा। बट पोलार, उन्होंने डाउन किया पहली मोहब्बत को अभी, और खत्म भी कर दिया। ओह जस्ट लाइक दैट, मतलब एकदम आसान से आराम से खत्म कर दिया इन लोगों ने। बट look at this team 3 right now. They might just take down one more player as well. They already have 6 finishes to their name, and Panther taking a lot of damage. Panther's running in last second, and he gets that cover. But on the other side of the map, Tens goes down as well. But वो 3 gets through. Spam देखने की कोशिश, unfortunately that the goddamn tree, उसका bark is too strong. You cannot penetrate that, especially now with an M4 at that range. Maybe अगर M249 होता तो maybe थोड़ा damage पड़ जाता भी, but at that range वो भी M4 से, I don't think that's possible. And they're gonna be making sure that they, you know, retreat. They're trying to go back on the other side of the hill, but Bizarro goes down. That's another squad elimination there, baby. एंड अगेन वी कैन सी दैट एक मैच के बाद यहाँ पे फिर से पोलार ऑनिक्स से एक अच्छा गेम देते हुए नाउ उन्होंने अपने बैग में 2 से 3 फिनिशेस तो ले लिए राइट नाउ। फ्यूरी की अगर हम बात करें तो क्या एक अच्छा पोजीशन है, उनको पता है कि पीछे से प्लेयर्स आ सकते हैं। जिस जगह पे उन्होंने स्कोप खोला, अपना एडीएस खोला, वहां पे तो कोई नहीं है, बट बिल्कुल एक वो हो गया होता है ना, एक बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, वो वाला सीन हो रहा है कि सामने वाले कंपाउंड में टीम्स मौजूद हैं, बट थग वो सामने ऊपर की ओर जो वो एक हिल है, हिल टॉप, वहां पे पत्थर पे देखते हैं। फिलहाल अगर हाई पर क्रिश की बात करें तो वो स्नेकिंग पोजीशन में थे, बट उनके साउंड आ गया होगा, मे बी उनको एक इजीली एलिमिनेशन यहाँ पे मिला है। फिलहाल 7 C's, they've got 5 finishes running for their life right now। थोड़ा सा डैमेज पड़ रहा है नो डाउट, पूरी तरीके से बूस्टेड है तो इतना तो डैमेज नहीं पड़ेगा कि आप नॉक हो जाएं इजीली। दे कैन enter the zone and still I'll say अभी भी 12 प्लेयर्स हैं, चौथा जोन लगने वाला है, जोन छोटा होने वाला है, ब्रीदिंग स्पेस कम होने वाली है, एंड मजा 4 गुना बढ़ने वाला है, दैट इज फॉर श्योर एज, क्योंकि लूट सबके पास है। एंड नाउ इट्स टाइम कि अब उस लूट को रियल वॉरफेयर में यूज किया जाए, जो कि इंडिया का बैटल ग्राउंड है यहाँ पर। India का बैटल ग्राउंड वो तो है, I mean we've seen a lot of players, a lot of teams coming into the scene as well. एकदम से कौन सीधे सामने से चले गया, एकदम से राइडर प्रोवाइडर की, एग्जैक्टली राइडर प्रोवाइडर मूवमेंट हो गया ये तो एकदम से। बट ओके लिटिल बिट ऑफ, You won't believe मेरा सर घूम गया, but there are lots of fights edge going on. आई मीन थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ मैं अभी, लाइक थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा और पानी रहेगा द फाइनल जोन। अनफॉर्चुनेटली दिस नॉट गोना बी द केस बिकॉज इट्स लाइक 1% वाटर। बट वो ब्रिज जो था, अगर एक भी टीम वहाँ पे गेट कीपिंग कर लेती, सेलेस्टियल वुड हैव गॉन डाउन। Unfortunately, it's not going to be the case. Celestial will be happy, and that no one's gatekeeping it. They're going to be making it their way back into the zone pretty safe. But Team 10 Schofield, now this is going to be a tough task for him because he has to make their way in. 330 meters, बहुत दूर है, and they're following that 3-1 squad split right now. Titan के player भी बहुत down होते हुए, Schofield actually managed to take down Hardian, but Zahir FTW on the other side of the map, he does manage to take down Spencer as well. Cracks, gotta be careful, making sure that he survives. Gotta be really, really cautious though. Polar and Piyush, दो player Flossie की तरफ से दो finishes लेते हुए, but now Piyush is actually on his knees. He's bleeding, and Titan once again, Cyanide going down to the play zone. Fourth zone coming into play. 16 minutes in already. Schofield, well, he's in a really tough spot. वो down हो जाएंगे. There's no way he can survive that.
And elimination to hoga hi because he's outside of the zone and there's no one around him. But Cracks Team 4, can they make it in, BB? आई थिंक हो सकता है अभी भी, बट आप आगे की तरफ देखें, वहां पे भी आईएच थक की टीम मौजूद है. ऑब्वियसली दे विल आल्सो प्रायोरिटाइज द जोन, तो ये पीछे पीछे जा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए यूएनडी वेल एंड क्या अच्छा लेजर स्प्रे, पवन को नॉक किया गया. रिवाइवल, इवन तो तुम सोचो एज, पवन बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ था बट कोई फायदा भी नहीं हुआ उसका. थग राइट नाउ वो पीछे की ओर है, आगे जा रहे हैं. वाईजेड को नॉक किया जाएगा. लीजिए मेरे बोलते बोलते वाईजेड, ही इज आल्सो, he also got knocked right now. And C9 Panther, I think he's the last player from the team number 10. देखते हैं क्या वो यहाँ पे, क्योंकि अगर पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो एक इजी आप स्प्रे ऑफ गार्ड दे सकते हैं प्लेयर्स को. थग पूरी तरीके से दौड़ रहे हैं तो स्प्रे जा सकता है, बट पैंथर क्योंकि लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं और पत्थर भी है पीछे की तरफ से भी. आई थिंक थग पे स्प्रे आ तो रहा है. थग प्रॉब्लम में वो भी जरूर से, बट अच्छी बात है कि they've got 4 man and just look at the finishes edge. They've got 11 finishes in their bag and अभी भी 27 प्लेयर हैं. अगर मैं उनकी टीम को हटा दूं तो 27 प्लेयर अलाइव हैं. लेट्स सी कितने ज्यादा फिनिशेस और निकालेंगे, बट फिलहाल के लिए फ्यूरी उनको डाउन किया जाएगा क्रैक्स के द्वारा. मिस्रा प्ले जोन से डाउन एंड वंस अगेन प्ले जोन यहाँ पे सबका शिकार करता हुआ. क्रैक्स में लगता है प्ले जोन से जाएंगे, नो डाउट उनके पास हील है, बट उतना टाइम ही नहीं था कि वो हेल्थ किट भी लगा पाए. 7 सिंस काइजर इज द लास्ट प्लेयर एंड लेट्स सी वो अपनी टीम को और ज्यादा कितना ऊपर टॉप 8 से लेके जाते हैं. Surviving. कितनी देर तक survive कर सकते हैं is the first question. Let's see how long and let's see how far can he take it as well. RNB1 के players spark down होते हुए. UMP is a really good weapon up close and personal. It does deal a lot of damage and not the only player surviving on the side of 7 since Kaiser is making his way back in, but it's got to be careful because there are multiple players right in front of him from team 1, 5, 12, and just like that, the last one that I named, 12, will be the one taking him down. 7Cs, unfortunately, going down in position number 8. But look at this team coming in for MS. Allah taking a lot of damage coming in from Team Sync. You gotta be careful. He's already on his knees, and Team for MS, they got down and out as well. Itachi, once again, with the M4, being a menace here in the map of Sandhawk. But Team 4MS, देखिए अभी भी वहाँ पे they're bleeding. 2 players on their knees. And Jonathan, can he do anything? If you ask me, there's nothing that he can do. यहाँ पे revival की कोशिश हो रही है, but it's already the 5th zone, BB, which means damage बहुत high होने वाला है. थग एक साइड यहाँ पे स्कोप करके शॉट ले रहे थे, राइट साइड से सिंह के प्लेयर्स के यहाँ पे जरूर से आएगा. ऐसा आकाश का है नॉक एंड फिनिश. यूएनडी ने उस फिनिश को सिक्योर कर दिया पूरी तरीके से. सिंह के प्लेयर्स भी थोड़ा आई थिंक जोन के बाहर से डाउन, एक प्लेयर तो डाउन हुआ, बट उसको रिवाइवल बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि जोन के बिल्कुल एज पे थे. फिलहाल के लिए यूपी 50 रणवीर ही नोज दैट कि एजेस पे से, ईस्टर्न साइड ऑफ द एजेस पे से जोन के शॉट्स आए थे एंड दैट्स व्हाई आप देखिए वो बिल्कुल राइट साइड ऑफ द जोन जा रहे हैं कि हाँ ठीक है सामने वाली टीम को आने नहीं देंगे. एंड रणवीर ही गॉट द गुड पोजीशन राइट नाउ. अगर सामने वाली टीम को पता नहीं है तो एक साथ वो 2-3 प्लेयर्स को डाउन कर सकते हैं, स्प्रे देंगे, बट कुछ ज्यादा अभी कमाल नहीं, कुछ विजन ही नहीं था. हमें तक विजन नहीं आया, घास आ गई मेरे मुंह पे सीधा जब उन्होंने एडीएस को लाइक अच्छा नेड कितना ज्यादा यहाँ पे कमाल करके दिखाता है. स्मोक कर दिया गया है. विजुअल इंपेयर जो होते हैं दोनों टीमें ही हो चुके हैं बिकॉज अब कोई किसी को नहीं देख सकता. इट्स लाइक अ हार्डकोर मोड. साउंड लो, सामने वाले को यहाँ पे मारो. देखते हैं क्या होने वाला. बट रणवीर ये अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर है. आकाश का पीछे से उनको कवर दे पाएंगे. एक और प्लेयर उल्टा 12 टीम नंबर का डाउन हुआ है, मुझे लगता है वो हाइपर किड है. सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट रणवीर कि वो पीछे की ओर चले जाए. बट नो, ही इज मेंटेनिंग हिज ग्राउंड. वो ये कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जाने दूंगा इस टीम को और ज्यादा आगे. डैमेज लेंगे. सर्वाइविंग ऑन 30 HP ही शुड यस प्रोन कर लेना चाहिए एंड वो सही टाइम पे प्रोन करके हील करने वाले हैं खुद को यहाँ पे एज. Timing एकदम बढ़िया थी उनकी, but let's see, can he get any more finishes or is he only planning on surviving right now? But I do hear a lot of gunshots. He does manage to get down one, and the play zone is actually taking down Jonathan as well on the other side of the map. It's going to be good at going down. Play zone being a menace once again. I think he got like what, at least 4 already. And Celestial ke player, the star player, Gujar goes down. Team 12, Ranveer, he's still alive. Team Sync go down karte hue. There's one of the players actually on the side of Team Sync going down. Celestial, Blazikin goes down as well. So Celestial is still in the picture, but they're already in the top 3. So points already mil chuke in a rank push, but can they get the finishing points? The question. Existence gets one more. Top 10 players surviving right now. Look at Ranveer's position. He's doing that AD left and right. Ekdam brilliant movement coming in, and Nirvana ko almost stack karte hue never mind. He actually finishing him off as well. Dominic is proning in. He does not spot him, but Ranveer is actually making his way back right now behind the boulder, but it's going to get taken down. Itachi comes in with the UMP right behind him. Hyper Kid, who was actually on his knees,
now on his feet. Can he revive his teammate? I think he I might think just be able to, but that zone, BB, बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ पे. इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था सीई के प्लेयर्स को, सेलेस्टियल्स को, बट वो भी Exactly. डैमेज इतना ज्यादा जोन का लेके चले गए कि हर टीम के प्लेयर्स इस टाइप पे नॉक है. रणवीर उनको रिवाइवल देना चाहते हैं. आकाश एंड हाइपरकिड वहां पे हल्का सा रिच है, रिवाइवल आएगा, बट इताची एंड डोमिनिक एक अच्छा नहीं प्रॉब्लम होगा. लीजिए इसी के साथ एक और टीम एलिमिनेट एग्जिस्टेंस यहाँ पे सरप्राइज देंगे पूरी तरीके से, एंड डाउन होती हुई एक और टीम. नाउ इट्स 2v3 बैटल जहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नोज द पोजीशन ऑफ देयर ऑफ हिज अपोनेंट्स. एक अच्छा कोऑर्डिनेट डैमेज गया है रणवीर को, हाइपरकिड को. यही मौका है कि इस 2v3 को कन्वर्ट करेगा. सामने वाली टीम यहाँ पे फुल एचपी पे नहीं, चले हील कर लिया गया है रणवीर के द्वारा, बट उसके पास हेलमेट नहीं है. इस टाइम पे हेलमेट ना होना मुश्किल है काफी ज्यादा, बट ब्लेज़गन डाउन नाउ. इट्स अ 1v3 एंड टीम नंबर 12 दे नो दैट इट्स गोना बी देयर गेम कमिंग अप विद दैट विनर चिकन डिनर. एक अच्छा गेम विद 12 फिनिशेस, सबके पास 3-3. कमाल करके यहाँ पे जाते हुए रणवीर के लिए एक चीज कहूंगा, तो फर्स्ट line of attack for the team. And I'll say one thing for Hyperkid. Once again, we have seen him giving the cover fire just like in the game of Miramar. This duo, Ranveer on the front, Hyperkid on the back, is a deadly combination. And once again, they proved themselves with this amazing game. Maza sa aa gaya. But Celestial, no doubt, they don't have the finishes, but they've got the 12 placement points. So एक तरह से win-win for them as well. Edge यहाँ पर. एक बार फिर सेलेस्टियल, जैसे आपने बोला था बीबी, यू आर ऑन पॉइंट विद योर एनालिसिस देयर, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बोला था सेलेस्टियल इज नॉट द काइंड ऑफ टीम दैट इनिशिएट्स एनी फाइट्स. वो लास्ट तक सिर्फ जिंदा रहते हैं एंड देन एट द एंड दे ट्राई टू स्वीप एवरीथिंग ऑफ. हाँ, सेम थिंग दे डिड ट्राई टू मेक इट हैपन अगेन. 2 वर्सेस 3 तक लेके आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम और द सेकंड टाइम, आई डोंट नो, बट सेलेस्टियल के साइड से सिर्फ एक ही प्लेयर की फिनिशेस है, बाकी सब दे आर सिटिंग ऑन जीरो. दिस यूजुअली डजंट हैपन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एटलीस्ट सबके एक होते हैं, नहीं तो सबके जीरो होते हैं, बट यू नेवर सी ओनली वन प्लेयर गेटिंग एवरीथिंग. अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम इट हैपेंड, एंड सिर्फ मिरामर में दे टुक दोज फाइट्स एंड दे डिड नॉट कम आउट ऑन टॉप येट अगेन. बट फिनिशेस थे, इस बार फिनिशेस नहीं है बट रैंक पॉइंट्स है. 15 पॉइंट्स, नॉट अ बैड स्कोर इफ यू आस्क मी बीबी. दे विल बी हैप्पी, वो टॉप पे बैठेंगे. बट वेयर इज टीम फ्लॉसी? सिर्फ 2 फिनिश, एक्चुअली 4 फिनिशेस, आई एम सॉरी, दे वर आउट इन पोजीशन नंबर 11. So I'm guessing they get like what, 1 point for rank finishes and 4 finishing points. So sirf 5 point, which is not a great great score if you ask me, for someone that's trying to be on top here. I'll say one thing, जो एक पोजीशन थी, मे बी मैं कहता हूँ आफ्टर द फर्स्ट मैच सेलेस्टियल से फ्लॉसी ने ले ली थी, बट सेकंड मैच के बाद सेलेस्टियल मेड श्योर कि हम लेके रहेंगे अपना वो पोजीशन, एंड उन्होंने ले लिया. इस मैच के बाद तो इट्स फॉर श्योर दैट सेलेस्टियल इज बैक ऑन टॉप वंस अगेन, बिकॉज जो परफॉर्मेंस फ्लॉसी का एक वक्त तो मैं कहता हूँ सेकंड मैच में एवरेज तो था एटलीस्ट, बट इस मैच में वो अर्ली एलिमिनेट भी हुआ, ज्यादा फिनिशेस भी वो नहीं निकाल पाए. और उसी के मैं कहूंगा सेम सिचुएशन में सेलेस्टियल गॉट द प्लेसमेंट पॉइंट, एंड दैट्स एनफ फॉर देम बिकॉज़ देव गॉट 15 points from a single game. And I think Edge, from Hindi I should switch to English as well, because even I can't believe that I'm casting in English right now. ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है. ब्लैकबियर्ड जी, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है मेरे लिए. प्लीज 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 ब्लैकबियर्ड जी, मत करो ऐसा. आप मतलब मेरा लाइवलीहुड छीन रहे हो मेरे से. ये वाली बात तो पक्की है, कहीं ना कहीं मैं आपको किसी ना किसी दिन एक बार तो इंग्लिश कास्ट करते हुए जरूर देखूंगा, बट वो एक फन वाला होगा. ऑब्वियसली हिंदी forever, because Hindi for me is an emotion, for you it's an emotion, but ये जो एक bilingual चल रहा है ना यहाँ पे, it's not like you're only talking in Hindi or English, let's say, and same मेरे साथ vice versa वो हो रहा है. मजा आ रहा है. नेक्स्ट चीज I'm noticing, when we started, so आप हिंदी में थोड़ा फंबल कर रहे थे, and then हल्के हल्के आपने ग्रिप पकड़ा. Team goes with me, मैं इंग्लिश में मार रहा था, and after 3 matches now I can see that मैं थोड़ा फ्लुएंट हो रहा हूँ हिंदी के साथ, इंग्लिश के साथ, एंड आप हिंदी के साथ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा असर पड़ रहा है एक दूसरे का. गुड ड्यू, ऑब्वियसली. आई मीन देखिए, इफ वी हैव गुड कंपनी सीख लेंगे. एंड आई एम सॉरी गाइस इफ मेरी थोड़ी हिंदी इधर उधर हो रही है, तो आई होप द ऑडियंस फॉरगिव्स मी. एंड एज यू गाइस सी, आई गॉट रिड ऑफ माय जैकेट बिकॉज थिंग्स वर गेटिंग हीटेड अप इन गेम. मतलब इतना अच्छा गेम था, I had to I was like, screw this. Let's focus on the game. I'm pretty sure you guys didn't see, but GB could see how excited I was getting for the match. I usually turn off my cam, but this time I had it on.
But talking about, I mean, we were talking about the heat in the game. Now we'll be heading on to the map of Vikendi. Snow. Now, let's see what happens. So, what are your thoughts? I mean, yeah, it's gonna be after a break, but before we head on to the break, Blackbeard, what do you think? What are you expecting from Vikendi? See, in Hindi I'll say that अगर BGMI में कहीं जन्नत है तो वो वीकेंडी में है क्योंकि पूरा बर्फ बर्फ है obviously. But yeah, वीकेंडी I like that map क्योंकि देखो एक तो 6x6 का मैप है, सबसे ज्यादा लूट आपको मिलती है. इवन आप किसी एक स्पेसिफिक सिटी पे भी नहीं जाते, कहीं पे भी आप चले जाते हो, इतने कंपाउंड्स है, इवन सैनवॉक से ज्यादा कंपाउंड्स है उसमें, तो आपको लूट मिल जाती है. और सबसे मजेदार चीज जो है वो है वही एक एब्रप्ट अजीबो गरीब जोन, कहीं पे भी बन सकता है. एज इन या तो पहला ही जोन बनेगा और 60% लैंड हट जाएगा, वो पानी ही पानी होगा. सो it's always fun to cast Weekendy because we know that the moment flight path आएगा इन फर्स्ट जोन बनने वाले टीम्स को बहुत प्रॉब्लम होगी. बट चलो वो सारी चीजें हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, जब हमारे 2 मैचेस बचे, वो हम कास्ट करेंगे. बट चलते हैं, we'll be back after a very small break, so stay tuned guys.
Oh, माउस wait a कर्सर ढूंढ second. रहा था There you मैं go. माउस कर्सर ढूंढ रहा था, मैं म्यूट पे लगा देता हूँ सो दैट कोई सुने ना मुझे। बड़ा छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है गुड गेम नेशन प्रेजेंट्स कैंपस शोडाउन। मैं हूं मसब जमाए के Blackbear2oP, मेरे साथ है यहाँ पे एज, जो कि बिल्कुल हिंदी इंग्लिश का मिश्रण और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। बट एज, तीन मैचेस हो चुके हैं एंड हम लोग जब गए थे ब्रेक पे तो हम वीकेंडी के बारे में बात कर रहे थे। सो आपको क्या लगता है वीकेंडी पे क्या होने वाला है? हमें खूब सारी बूम बाम तो नो डाउट देखने को मिलने वाले हैं, बट तुम्हारा एक व्यू जानना चाहता हूं मैं ऑन एक गन है G63, तो उस पे आपको क्या, उस गन के लिए आपकी क्या एक व्यूज है वो मुझे आप बताएं। पहला तो ये वायर पीछे रख देते हैं ये कि हमें बहुत गंदा लगता है आगे। की तरह है, तो पीछे नाउ कर एग्जैक्टली मैं वेट कर रहा था। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द G63, राइट? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गन दिखने में एकदम बढ़िया है, बेस्ट लुकिंग गन इन द प्यारी। गेम इफ यू आस्क मी. It looks really good, and I've seen some fan edits ki aisa gun pe skins, right? I mean they're already skins, but as a fans edit pics, I saw this blue leopard print, a blue leopard print. It looks so good. I just wish ki Crafton, maybe if they just add it to the game, it's going to be really incredible. But talking about it as a weapon, right? Not just the looks. As a weapon, it sort of reminds me of Groza, but at the same time, it's not easy to control. It's gonna be one of those M4 replacements, but at the same time, as a up close and personal भी use कर सकते हैं, but mid range, I think it's the best option for that weapon. या एक और चीज है, अगर कभी तुमने G63 से स्प्रे दे दिया किसी गाड़ी पे तो लड़के बिल्कुल ना तारों की तरह गिरते हैं गाड़ी से, बहुत मजा आता है। उसका बुलेट स्प्रे की कल मैं बात ही कर रहा था शैडो से। फॉर मी इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट गन एंड आई वांट दैट गन इन ऑल द मैप्स, बिकॉज एक तो रीलोडिंग स्पीड भाई, सिर्फ क्विक ड्रॉ ही लगा लो वो खचाक से रीलोड हो जाता है मैक्स, इट्स रियली ग्रेट। एंड उसपे अगर आपने एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ लगा दिया तो फिर आप अलग ही आग लगा दोगे। बट यार
एक स्टेबल गन भी है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। आई से Yes. M4DP के बाद कहीं ना कहीं G63 एक बहुत स्टेबल गन में आ जाती है कि इवन अगर कोई ग्रेप या कुछ नहीं भी लगा तो यू कैन इजीली यूज दैट गन। एंड आई टेल यू बहुत सारे वीकेंडी प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्लेयर्स हैं वीकेंडी जब खेलते हैं तो दे प्रेफर G63 ओवर M4। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली गाड़ी यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हीकल्स का यूज बहुत ज्यादा होते हुए हमें देखने को मिलता है। बट यस, ज्यादा वेट नहीं करवाया जाएगा, पर उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है बिकॉज हमारे 3 मैचेस हो चुके हैं एंड वील हैव एन ओवरऑल स्कोर कार्ड, आई थिंक सो। एंड देखते हैं कि कौन सी टीम टॉप पे होने वाली है। क्या सेलेस्टियल्स अभी भी टॉप पर है? क्या क्या फ्लॉसी उन्हें धक्का देके ऊपर आ चुके हैं? And let's go for the scorecard. I want a drum roll from your side. And let's do the drum roll. Duk 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 करते हैं हम. And आने वाला यहाँ पे scorecard. And here we go. And yes, Celestials maintaining their dominating, I'll say, performance on the top with 124 points. And अभी भी I'll say one thing, 10 point का gap है Flossy और Celestials में, but just look at the finish point and look at the rank point. Rank points में Celestial, they are proving time and again with every map कि हाँ हम survival जानते हैं, but Flossy on the other hand, they are telling by the scorecard that we know how to finish people. अगर ये दोनों चीजें दोनों I'll say अगर ये Celestial और Flossy एक टीम बना लें, imagine 8 players इनके एक टीम बना लें, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी इनकी। That is true. But एक और चीज जो like I'm really excited क्योंकि 2 और 3 में last time फर्क था बहुत, like 26 points, right? This time if you take a Yeah. look at it, it's not that much. It's सिर्फ 12 point का difference है यहाँ पे Blackbeard. And like Yep. Team United, I don't exactly have the names of the players, but I'm gonna be looking and keeping an eye on them this time around. They have 53 finishes as well. Like the only two teams that have more than 50 finishes are Team Flossy with 65 and Team United with 53. Celestials are about to get that 50 finishes. But in Tino ke sivaye, look at other teams. Now look at the difference between third and fourth. There's like Margin. 31 point deficit. There's a lot of margin, exactly. Hitman official, well, they're putting up a decent performance. I want to see where the Team Virtue is. Because वो 16th position पे थे. I just hope they're in like maybe 12th or 13th. I think that's a decent position considering 3 games are done. Red Dot sitting on 6th position with 57 points. GTBIT Titan, they're sitting on 7th with 56. Team Reputation on 8th position with 54 total points. But the one thing that I'm impressed about is they have 37 finishing points. A lot higher than what Hitman Official has managed to gather. बिल्कुल, यहाँ पे जो गैप है वो कम है, बट एक चीज है जो अब मेन फाइट है से अभी अभी से ही मैं कहूंगा, ऐसा नहीं है कि अभी भी हिटमैन ऑफिशियल, 7 सेंस, रेड डॉट, जीटीबीआईटी टाइटन, टीम रेप्यूटेशन ये कमबैक नहीं कर सकते बिकॉज़ अभी भी हमारे पास कल का पूरा दिन है और आज भी हमारे पास अभी भी 2 मैचेस बचे हुए हैं। सो आई विल से based on the scorecard, Celestials, Flossy and United, इनके चांसेस अब बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज यही 3 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने I'll say 3 डिजिट में आफ्टर 9 no not 9 8 मैचेस, आफ्टर 8 मैचेस ये लोग सब 3 डिजिट्स में पहुंच चुके हैं एंड द गैप वी कैन सी 31 पॉइंट डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस है। बट वी नेवर नो, हिटमैन अभी नेक्स्ट मैच में सीधा 30 बॉम्ब मार देने ऊपर चले जाए। बट अगर हम बात करें वर्च्यू की, from 16th now they are on the 10th position with 46 points। अगर SVF 13 की बात करें 51 points के साथ वो 9th पोजीशन पे। सिंह की अगर हम बात करें तो वो भी नीचे थे जब हम अगर डे 1 की बात करें तो, एंड सिंह इस टाइम पे 42 पॉइंट्स के साथ हमें 11th पोजीशन पे देखने को मिल रही है। बियॉन्ड esports they've got 38 points, WVF08 they've got 26, then Spark 25, 24 and 21। बॉटम पे ज्यादा पॉइंट गैप का डिफरेंस नहीं है, पीछे से कुछ लोग बहुत ज्यादा टॉप कर रहे हैं, नीचे से आई मीन। बट या लेट्स सी कि क्या टीडी, क्या अभी भी टीम टीडी ये कमबैक कर सकती है? RRLM, क्या they can make a comeback? Can they bounce? We never know. But now it's like a mental game. I like always say Edge that no doubt battlefield में गन चलाना ठीक है, बट जो ये साइकोलॉजिकल फील्ड है ना, ये इसे मन भूमि कहते हैं। रण भूमि इज द वॉर, इज द बैटल ग्राउंड। सो रण भूमि में जीतना फिर भी आसान है मन भूमि से। एंड एक बार आपका अगर गेम को लेकर मेंटल स्टेट थोड़ा भी लड़खड़ाता है तो वहां से प्रॉब्लम होती है, नर्वसनेस बढ़ती है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट जो नीचे की टीम्स है वो इस चीज से जरूर जूझ रही होंगी, सफर कर रही होंगी। That is true. I mean, एकदम exactly जो मैं बोलने वाला था, मैं इंग्लिश में बोलने वाला था, आपने हिंदी में बोल दिया, so I don't think I need to repeat it. आपने पहले से ही मेरे मुंह से शब्द छीन लिए। But one thing that I'm really impressed about is Team Virtue. They were sitting on 3 rank points and
9 finishing points by the end of day one, and now they're in 10th position. But one more thing that I want to point out कि कल मतलब जब डे वन खत्म हुआ था, दे फ्रॉम आई मीन उनका और नंबर वन स्पॉट का डिफरेंस था तकरीबन अराउंड 68 पॉइंट्स का. But right now, the difference between them and Celestial is 78 points. तो हाँ, they have a better position, but अभी difference और भी बढ़ गया. तो Yep. yeah, as you said, in bottom जो team है अभी bottoms में जो भी teams हैं, they can make it to top maybe 8. But for them to make it into top 1, 2, 3, Celestial, Flossy और Team Unite इन तीनों को मतलब अभी भी हरा सकते हैं, but they have to make sure that ये तीन टीम जो भी है, they have to be the first one to get eliminated. Right. I mean, Definitely. आप सोचो if there are teams like, I mean, let's say Virtue as well. अगर Virtue, even if they get chicken dinner, Celestial अगर उनको chicken dinner नहीं मिला, तब भी if they're in second or third position, that's enough. क्योंकि बहुत ज़्यादा margin है. Even if they get 10-15 points every game, they're happy in position number one. There's no other team that can take them down except Flossy and Team Unite at this point. Yep. I'm really happy that कि Celestial and Flossy को challenge करने एक और टीम आ चुकी है for their Exactly. जो उनका एक standing है. I'm really happy एक टीम है. We never know आज के इन last के 2 matches होने के बाद maybe top 5 में competition आ जाए. Cause see, top की 3 teams आने वाले 2 मैचेस गंदा खेले ये तो नहीं होने वाला. एक टीम खराब खेल सकती है, मे बी 2, बट तीनों का तो नहीं होने वाला. सो डेफिनेटली चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है. एंड मैं दिल से चलिए टॉप 16 की बात नहीं करूंगा, टॉप 7 पे बात करूंगा. और ये मेरी कैमरा ऐसे से हिला क्यों? जिस तरीके से कुछ टीमों का गेम खराब हो रहा है या मेरा कैमरा फ्लिकर गया. बट ये भी एक मजेदार चीज है. बट हाँ, जैसे मैं बोल रहा था, टॉप 7 में भी अगर अभी 2 मैचेस में कंपटीशन बढ़ जाए, सो आई रियली वांट टू सी दैट कि डे 1 बहुत ही बूम के साथ स्टार्ट हुआ था. डे 2 डे ऑफ केओस है एंड डे ऑफ आई विल से एक मेजर चेंज आता है यहाँ पे. तो कहने का मतलब एक मेजर चेंज बस यही हो सकता है कि स्कोर कार्ड में जो टीम्स है उनके बीच में पॉइंट्स गैप कम हो जाए, ताकि जब हम फाइनल डे पे, बिकॉज़ दिस इज द ग्रैंड फिनाले ऑफ कैंपस शोडाउन एंड आई रियली वांट दैट कि जब ग्रैंड फिनाले का डे 3 आए तो ये ना हो कि मैं और एज लेट्स से कास्ट कर रहे हैं कल और ये वाली बात है कि यार सेलेस्टियल तो जीत ही रही है, फ्लॉसी तो जीत रही है. वो ना एक मजा खराब कर देगा फॉर द व्यूअर्स, फॉर अस एज वेल. एंड आई रियली वांट दैट. यूनाइटेड उन्होंने कहीं ना कहीं एक एक करके पकड़ लिया है, फ्लो पकड़ लिया है. मैं अभी भी चाहता हूं 2 टीम एटलीस्ट टॉप 5 में कंपटीशन रहे. सो इट्स गोना बी एन I'll say an amazing game tomorrow for sure in the finals, last day of campus showdown. क्योंकि देखिए every team is trying to get that number 1 spot, right? I mean, bragging rights तो मिलेंगे. Imagine winning the tournament and उसके अगला दिन कॉलेज जाना. I mean, we are talking about, we being esports caster. As exactly, हम कॉलेज जाएंगे. Imagine winning the tournament and then going to the college. I mean, लड़कियां तो पीछे पड़ी है, वो अलग बात है. लड़कियों से that's a different thing. At the same time, you'll be 30,000 rupee richer. Where are you going, my bro? I mean, जो इस चीज को तुम कह रहे हो, I can correlate. So I was my school captain. So from 10 to 12, 3 साल रहा हूँ. So whenever we used to win trophy in inter-school competition, obviously उस टाइम पे इंटर होता था. So whenever my team, school team, बहुत strong थी. I used to play right wing. And जब हम जीत के आते थे ना, और अगले दिन, cause अभी शाम में 7 बजे गेम खत्म हुआ है, next day you have to go to the school. And I know that in the morning जब prayers हो रहा होगा, so principal कहेगी कि हमारे स्कूल जीत के आई है. Now I think about it, it's funny. That यार क्या है, लेकिन उस टाइम I'll tell you that सेंस ऑफ होता है ना कि आपको एक आज मिलने वाला है बिल्कुल सबके सामने स्पॉटलाइट, एंड आप स्टेज पे जाओगे एंड जो ऑलरेडी आप जीत के मेडल्स लाए हो वो एक बार फिर से आपकी प्रिंसिपल आपको पहनाएगी एज इफ आपका स्कूल दे रहा है. वो एक रहता था, यस, बट एक वो सब लोग देख रहा. सो आई कैन फील दैट राइट नाउ एज. जब आप तुमने ये वाली बात कही कि हाँ कैंपस शोडाउन जो भी टीम जीतेगी वो कहेगी, और सोचो क्या कहेगी कि हम ई स्पोर्ट्स से पैसे और ट्रॉफी कमा के आए. So that's something जो एक ना X factor लेके आता है. That's really entertaining to be honest. All over India वो भी. I mean, देखिए जैसे मैं बोल रहा था, I mean, if I now that you bring it up, Blackbear, I'm pretty sure you had, I mean, पहले स्कूल टाइम पे तो रहते थे. अभी I mean the way you look great, you look handsome and sexy. Obviously 4-5 तो होंगे if I'm not wrong. No thug life right now. I mean, thug life तो बनता है. I mean, see, we were talking about it. देखिए guys, I mean,
See, everyone's looking at you. I mean, if any of the college students, Yeah, tell me. Okay. मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ. Thank you so much for the love. I'm But just ये being तुमने honest. मैं जो मन में वो बोल रहा हूँ. जो दिल में, तो तुम ना बस वो सेक्सी वर्ड थोड़ा हटा दो. बट मुझे वो नहीं जचेगा. इट्स फन. I mean, आई थिंक हमें आज के बाद भी कास्टिंग मिले, बिकॉज आज हमने थोड़ा सा तो मजे किए हैं. बट या प्लीज कंटिन्यू. oh, नहीं मैं एक बात मतलब कास्टिंग पे तो टिप्स मैं बाद में मांग लूंगा. बट वन थिंग आई नीड टू नो इज प्लीज ये बताइए जरा ब्लैक बियर्ड जी. I'll tell you one प्लीज. thing. एक बहुत बड़ा myth है. I'll tell you one thing. I'll frank, ये मेरे खास के कॉलेज के स्टूडेंट्स बच्चों के लिए स्पेशली, Exactly. बिकॉज उनकी अगर दाढ़ी नहीं आती होगी तो मे भी थोड़ा सा उनको परेशान किया जाता होगा. बट I'll tell you, जो भी अगर तुम्हें ये कहे कि रेजर मार लो और आ जाएगी, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट द जीन्स. इट कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स. इट्स फाइन. No doubt, आपकी अगर beard है, it makes you look good. I'll tell you one thing, Edge. The moment I'll remove this beard, I'll look so ugly. You can't even imagine. तुम्हारे आंखों से Ugly. खून निकल आएगा. Are you I'm sure telling you, ugly? I am telling you this, bro. That's like जिन लोगों की दाढ़ी आती है ना, beard आती है, they can relate me. The day वो clean shave जब होते हैं ना, तो 5 दिन खुद से चेहरे और नजरें नहीं मिला पाते. That's a fact. And if I'll try to remember, it's been like more than 5 to 6 years last time I went clean shaved. So I don't know how I look like, to be honest. So that's the thing. But yeah, that's something else. Let's not talk about my beard or your edgy side, because you're being quite naughty right now. But yeah, 3 matches, and मैं अब चाहता हूँ कि वीकेंडी जितना जल्दी आए उतना ज्यादा मजा आने वाला है. Because I know मैं तो excited हूँ. You're excited as well. I am really excited because one thing that I really love on the map of Vikendi, Dino Park. थोड़ा मतलब हाँ, वो that space. it looks great. तुम्हें जो पसंद आता है, मुझे वही मनहूस जगह. बहुत ही गंदी जगह है मेरे लिए. अरे It यार. just looks great. Just think like you are a player and you're in Dino Park. You never know where to hide. You can get spotted from anywhere. That's like a place Exactly. where I always avoid that space. I'll tell you. I mean, देखिए यूजुअली सैनहॉक पे आई एम स्नीकी प्लेयर, बट यहाँ पे जब भी मैं वीकेंडी खेलता हूँ आई एम लाइक यू नो व्हाट, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ये, जल्दी जल्दी फाइट ले लेते हैं. क्योंकि डायनो पार्क में पहली चीज तो यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ लूट, राइट? आई मीन you have these specific parts of that map. Dino Park में there specific spots हैं वहाँ पे loot मिलता है, and if you are the first one to go there आप पूरा loot ले लोगे. And if anyone's entering Dino Park, I mean जैसे देखिए अभी तो टूर्नामेंट तो everyone's gonna be a little more cautious, but हम लोग टूर्नामेंट नहीं खेलते, हम लोग ऐसे नॉर्मल टाइम पास रैंक खेल लेते हैं. तो वहाँ पे कभी कभी टीम्स एक साथ नहीं आते. यू हैव 1 प्लेयर कमिंग इन, यू हैव 2 प्लेयर्स कमिंग इन, एंड ऐसा अकेले मिल गया ना डायनो पार्क में अगर, तो बूम यू गेट 2 फिनिशेस फॉर फ्री. तो ऊपर से इट लुक्स नाइस यार. आई मीन टू बी ऑनेस्ट दैट इज व्हाई आई लव इट. बट हाँ, आई गेट इट, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स डू यू नो काइंड ऑफ हेट इट, क्योंकि एज यू सेड कवर है बट ऐसा फुल कवर नहीं है. देयर लाइक दीज मशीन्स ओवर देयर, तो बीच बीच में से भी यू कैन गेट शॉट एंड स्पॉटेड. Yeah, Matt, thoda is time. I'll tell you. I was thinking about something else right now, and जगहें बहुत अच्छी थी. I like it's ready and it's time to move to that icy वादियाँ. एक पता है एक जगह है, I don't remember because it's been too long I played Weekendy, even though I cast it yesterday. एक जगह है जहाँ पे ना पानी पूरा बर्फ हुआ हुआ है. इट्स लाइक आईसी, पूरा वो वाटर पूरा हुआ हुआ रिवर जो भी है. एंड वो जगह मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज वहां पे एक टूटी फूटी सी चीज है, एक ब्रिज है लेफ्ट साइड पे. आई एम नॉट लाइक गेटिंग द नेम, बट आई लाइक कॉस्मोड्रोम बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग. वो एक अलग ही शानदार सी अलग सी बिल्डिंग है. आई एम अ मोवात्रा प्लेयर बिकॉज आई लाइक टू बी लाइक, वहां पे बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं. इट्स लाइक स्पेन, मोवात्रा, अगर तुम कभी वहां गए हो. सो लेट्स होप कौन कहाँ जाता है. बट कैसल, मेरी निगाहें कैसल पे रहने वाली है. If you have castle, you can move in any direction, and castle is the I'll say the heart of Vikendi. And after castle, it's like I'll say villa. Villa is also एक one of the space जहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती है. देखते हैं हमें क्या कैसल पे कौन सी टीम जाने को मिलेगी. बट या वीकेंडी का चौथा मैच बहुत जल्दी हमारे स्क्रीन पे आने वाला है. लेट्स सी इस गेम में क्या वो टॉप 3 टीम्स फिर से अब वही गेम प्ले दिखाएंगी, या वर्च्यू जैसी टीम है स्पार्क SVF 13 या टीम रेप्यूटेशन रेड डॉट, ये टीम है अब कुछ कमाल करके दिखाती है. बट विला पे एक टीम जरूर है. बट कैसल पे इस टाइम पे एम्प्टी थ्रोन है, एंड देख के मुझे बुरा लग रहा है. एज एक्चुअली मतलब जोन तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि पानी है वंस अगेन.
बीबी. But as you said, Castle थोड़ा ऐसा सुनसान अच्छा नहीं लगता, पहली बात तो. Yeah, yeah. And the second thing is, Castle दिखने में एकदम बढ़िया है. Like बहुत there is this really good. I call it. I usually call it this parking lot. Right, वहाँ पे entry पे there's like this really nice road. Ekdam बढ़िया. You have loot as well coming in, but forget about that. It might be a fight between Pawan, and there you go, the G6 coming into play already, and the CZ as well. Pawan taken down, but ऐसा trade हो गया instantly. But एक revive आएगा. Look at this. उसके सामने revival आ रहा है, and this he yes, gave up. He's giving and up. वो कुछ नहीं कर होगा ये सकता. वाली बात. वो बोल रहा होगा रिवाइवल दे रहा है, आ जा यार, बट कोई है ही नहीं उनके टीम से पास ज्यादा. बुरा लगता है ऐसे Pan सिचुएशन में. क्यों है? pan से मुंह फोड़ दिया वहाँ पे बीबी. और बुरा That लगा. is exactly punching and melee man baby. That is मतलब देखिए थोड़ा मतलब BM चलता है गेम में, and that is like the highest level of BM to be honest. मतलब banter है, it is friendly banter, but still बहुत बुरा लगता है, and you get this pissed. ऐसा मतलब mental state दिमाग खराब हो जाता है आपका, you know, कि बट guys यही तो ये गेम पैन है, से यही हो गया यार. साइकोलॉजी. लेकिन पोडोवोस्टो की ये लड़ाई है ऑलरेडी. वी कैन सी होप पवन का पवन बिल्कुल मतलब होप की तरह खत्म हो चुका है. बट फिलहाल साइनाइड उन्होंने डाउन किया है बुलेट्स को. एनाग्राम जी थंडर की बात करें, उन्होंने शानमो को डाउन किया. डूम्सडे आगे की ओर जाएंगे, स्प्रे देंगे यूएमपी से, बट इसी के साथ वो G6 को चेंज करेंगे. एंड इतने क्लोज रेंज में उन्होंने अपने 6x को ऑब्वियसली 3x बना रखा होगा, बट उन्होंने उसको डाउन किया. डूम्सडे कमिंग अप विद दैट फिनिशिंग ब्लो. एंड स्कोफील्ड एंड वाइजेड, उन्हें अब पता है पोडोवोस्टो पे उनके 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं. एंड अब उनके पास यहाँ पे खोने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पाने को बहुत कम चीजें हैं. देखते हैं वो कैसे निकलेंगे. बट अगर हम बात करें अभी फिलहाल नानी पांडा एंड नैनी पांडा के साथ उनके 2 प्लेयर्स सर्वाइव तो कर रहे हैं. बोलते बोलते यहाँ पे अननोन एंड गुजर का सीधा फाइनल शॉट आएगा. इसी के साथ पहली टीम नैनी पांडा की पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई. एंड वंस अगेन यहाँ पे 4 फिनिशेस के साथ सेलेस्टियल बिल्कुल भी यहाँ पे विदाउट कैजुअलिटी इस गेम में आगे जाने वाली है. सेलेस्टियल ये तो एज किसी को नहीं देने की सोच रहे हैं अपनी फर्स्ट पोजीशन. Is it जो मिरामर में किया इन लोगों ने, शायद वो ही करने की प्लान है again. But मिरामर में they couldn't come out on top. They did have that 2v3 at the end, but top पे नहीं आ पाए. Can they do it this time, baby? क्योंकि देखिए ना, Celestial they wanna keep that momentum going, क्योंकि momentum already उनके पास है, and Flossie already on their tail. They're right behind them. They're about to catch him, and Team Unite as well. अभी तक तो Celestial के पास सिर्फ एक ही rival था, अभी 2 बन गए, and they wanna make sure that it doesn't go up to 4 or 3 at least, right? So that is exactly what they're trying to do. But here, team number 10, they got to be careful. Schofield and Wizard are the only ones surviving right now. Schofield is having a really good day. Wizard, not a bad day himself, but the one that I'm looking forward to is Team Flossie and, Polar. What a great game he had. He started off the day really, really well with 7 finishes and Piyush with 5 finishes, but उसके बाद इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला हमें. But take them. Maybe this match, they started off well. Can they end it on a good note as well? Let's see. But अभी फिलहाल के लिए अगर हम टीम नंबर 7 की बात करें, they've got the like I'll say एक अच्छा पूरा, ये तो पूरा का पूरा यार एक शानदार सी सिटी ही है. मिनी मैप थोड़ा सा मेरा कहीं ना कहीं यार वीकेंडी, आई नीड टू लाइक गेट बैक टू वीकेंडी. खेलना शुरू आज ही रात से करने वाला हूँ. फिनाले से कल पहले चलिए ऐड हमारे कर कैंपस लीजिए, खेल लेते हैं. बाकी बातें खेलेंगे. मैं बहुत ही सीरियस खेलता हूँ. एक बात मैं बता देता हूँ तुम्हें, एज आई नो एक ऐसा गेम है जिसमें आप बहुत प्रो हैं, बट इस गेम में तो हम बहुत प्रो हैं, नेक्स्ट लेवल से भी बहुत ऊपर. बट अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो डोब्रो मेस्ट्रो एंड यहाँ पे फिलहाल एक 2 टीमें, एक को हमने देख लिया ऑलरेडी, एंड जो BTL मिर्जा की टीम थी, उसके अलावा हमारी यहाँ पे फ्लॉसी की टीम मौजूद है. दूर दूर है अभी तो, एक दूसरे को पता भी नहीं होगा कि हमारे अलावा कोई और भी इस जगह पर है. बट यस, कुछ देर और एंड माइट बी पॉसिबल अगर स्पॉटिंग होती है. डोब्रो मेस्ट्रो इसलिए और ज्यादा मुझे पसंद है बिकॉज इतनी बड़ी सिटी है ना, कब कहाँ किस वक्त कौन आ जाए एंड कहाँ से आपको गोलियां पड़े पता भी नहीं चलता. बहुत अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स एंड कंपाउंड्स हैं यहाँ पे. सो लेट्स सी जिस तरीके से टीम नंबर 7 आपकी ये RNBI आगे बढ़ रही है, हल्के हल्के अगर बढ़ते चले गए, तो मुझे लगता है सोल, स्पेंसर, पोलार, डिटॉक्स एंड पीयूष, once they will spot them, they will definitely gonna take the fight. Can एक सेकंड के लिए कैन वी जस्ट ऐसा
मैप देख सकते हैं क्या? बिकॉज इट जस्ट लुक्स सो ब्यूटिफुल. It's magical. I mean, Erangel looks good, Miramar looks good, Sandhawk looks good, but Weekend is just magical. एकदम शानदार लगता है देखने को. I mean, I don't exactly know which. I think this is Slovenia, right? Slovenia को मतलब थोड़ा inspiration में लेके उन्होंने मैप बनाया. The snow. I'm sorry. क्या बोल रहे थे तो आप? ज्योग्राफी खराब है यार, मैं ये कह रहा था। बट हाँ, देखो बर्फ एक ऐसी चीज है ना, जब आपको मिलती नहीं है तो अच्छी लगती है। बट मैं एक बार बहुत दिनों तक बर्फ की वादियों में रहा हुआ हूँ। ज्यादा मिलना भी बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है, ये बात याद रखना। बट नो डाउट इट लुक्स ब्यूटीफुल जिस तरीके से ये ऊपर घरों के ये एक परत है, एक लेयर है ऑफ आइस, एंड इट लुक्स गुड। एंड आई विल टेल यू, बहुत मजा पता है कब आता है, व्हेन यू आर इन गेम एंड कोई लेट्स से इस बर्फ पे चल रहा है, लेट्स से, तो एक अलग साउंड आती है। अगर दूसरी आपने sound कभी effect, नोटिस exactly. किया हो, अगर आप ग्रास में चल रहे हो अलग साउंड है, अगर आप डेजर्ट पे चल रहे हो मीरामार में अलग है, बट अगर इफ यू वॉकिंग इस आइस पे तो एक अलग किचक किचक आवाज आती है, बहुत रियलिस्टिक, एंड दैट्स व्हाई बीजीएमआई एक अलग ही ओपी गेम है। सो दैट रियलिटी एक ऐड कर देता है नेक्स्ट लेवल फीचर। सो यप, अभी फिलहाल के लिए दे आर लाइक रियली क्लोज, एंड आई थिंक फाइनली अगर कुछ देर और ऐसे ही होता है तो वी विल सी अ फाइट बिटवीन दीज टू टीम्स, अ लाइक प्योर 4v4 फाइट, जहां पे आई नो फायर पावर नो डाउट फ्लॉसी का बहुत ज्यादा, बट आई एम लाइक एक्सपेक्टिंग अ सरप्राइज फ्रॉम टीम नंबर 7। हाँ जी, वो सरप्राइज एलिमेंट मुझे भी चाहिए एक्चुअली, बट देखते हैं कि can they actually step up their game. Flossie, obviously they're gonna be coming out on top. I mean, हमें पता है कि वो उनके पास फायर पावर है, बट लास्ट टाइम जो मैप में मिरामर और वीकेंड सॉरी सैनहॉक में हो रहा था, दे वर गेटिंग आउट नंबर एंड आउट प्लेड. उन्हें वन ऑन वन फाइट्स नहीं मिल रहे थे. दे वर ऑलवेज इन अ रियली वियर्ड पोजीशनिंग एंड स्टफ, एंड राइट नाउ यू कैन सी दैट दे आर इन अ रियली गुड स्पॉट. 4 players in 4 different buildings, and team 6 उन्हें थोड़ा भी आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है. I mean, Team 7, they're out in the open. They're trying to, find a way. And teammate, oh no, Titan, they're in a lot of trouble. JCP actually takes one down, and Side Knight, he gets eliminated by Jonathan, actually, who steals that finish, but doesn't really matter. It's going to be money, taking a bit of damage there. Now, Titan with only 3 players surviving that, you got to be careful. 99 Gamer, he does manage to, heal himself up. Can he get that knock? वहां पे बहुत अच्छी पोजीशन है उन दोनों की, but really good Yep. cover fire coming in off angle पकड़ते हुए Gyro God, but then he spotted 99 Gamer. What can he do here? मुश्किल। जेसीपी को अगर एक भी बुलेट हेड पे कनेक्ट होता है, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज़ हेड गियर है नहीं, हेलमेट है नहीं, एंड लेट्स सी, उनको फाइट लेने से पहले आई विल टेल यू वन थिंग, एज गन इंपॉर्टेंट है गेम में, बट इफ यू डोंट हैव द हेलमेट एंड चेस्ट पैड वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब भी मैं कूदता हूँ और गन फाइट होती है ना, तो इवन मुझे पिस्टल मिल जाता है, आई फील गुड, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे एक हेलमेट और चेस्ट पैड मिल जाए, बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ हेलमेट, इफ यू डोंट हैव अ चेस्ट पैड, वेरी इजीली यू गेट नॉक डाउन। एंड लेट्स सी जेसीपी गेमर को क्या एक घर से हेलमेट मिलने वाला है, या वो किसी को मार के उसका हेलमेट लेंगे। फिलहाल से चार गॉड, यहाँ पे उनके पास अगर 3x स्कोप होता तो नो डाउट वो एक प्लेयर को डाउन कर सकते थे, बट आज सच यहाँ पे अपने G63 एंड मीरा रेड डॉट से कमाल तो नहीं कर पाए। यूएमपी से तो कभी नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यूएमपी का बुलेट ड्रॉप थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज 0.45 एसीपी की गन है। बट फिलहाल के जायरगॉड, उनको Oh आवाज आई तो no. गाड़ी तो घूम के आया, जायरगॉड को पूरी तरीके से पकड़ा गया। बड़ी अच्छी बात है, पीछे से यहाँ पे स्प्रे आया एंड मानी एंड थंडर कर सकते हैं वो प्रॉब्लम फॉर टीम नंबर 3 को। टीम नंबर 3 के डूम से नॉक है, अगर हम फ्यूरी की एचपी देखें वो भी बहुत ज्यादा कम है, बट थग इज होल्डिंग अ की पोजीशन एंड मानी जाएंगे डाउन करेंगे। इट्स अ 2v2 बिटवीन दीज टू टीम्स। थग वो अगर बस कवर फायर दे देते तो मे बी वो मानी को नॉक कर सकते थे। एक अच्छा मॉलोटॉव सामने की ओर मानी ने किया तो है, देखते हैं क्या रिवाइवल आएगा। अभी भी टीम नंबर 3 का कोई भी प्लेयर फिनिश नहीं हुआ है, दो प्लेयर नॉक्ड है, रिवाइवल आने के चांसेस है। थग काफी ज्यादा डैमेज देने का, अच्छा ने खत्म होंगे थग। जहर F2W रिवाइवल दे दिया उन्होंने डूम्सडे को, एंड वंस अगेन इट्स अ 2v2 बैटल, जहां पे मानी कमिंग अप विद दैट नाउ। ओह माय गॉड, ये क्या था, आई शॉट दिए और जहर क्राउच करके वंस अगेन ऊपर आके वो डाउन करेंगे, बट जीटी थंडर द लास्ट प्लेयर एंड ही नोज दैट इस बैटल में अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई एक अच्छा एग्जिट लेते हुए, एंड ही इज प्रायोरिटाइजिंग द आई विल से zone right now so that he can get lots of placement point. A good call by this team right now. बहुत अच्छी call थी, but at the same time, JCP 99 Gamer, he managed to take down one player. He's gonna get that finish as well. Schofield is down and out. And Titan वहाँ पे, that is really unfortunate. मुझे लगा कि वो as soon as he got that thug finish, I thought कि वो fight उसका होने वाला है. But then Doomsday was revived, which is brilliant
coming in from them. But then the 1v2 was a little too much, and it's going to get taken down. But unka last teammate, abhi, they're making this way to the safe zone, right? It's a play zone. So let's see how long can he survive. Wisehead is the only survivor for team number 10. They gotta be he's got to be careful as well because team 1 4 प्लेयर इनके सामने है एंड आई मीन आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं वाइजेड ही हैज टू वेट फॉर देम टू गो आउट और ही हैज टू टेक अ चांस एंड रन बिकॉज अगर इन्होंने एक कदम भी लेफ्ट और राइट की तरफ लिया ही इज गोना गेट स्पॉटेड एंड 4 प्लेयर एक साथ स्पैम करने वाला है क्योंकि उन्हें देखिए जेसीपी 99 गेमर बेट कर रहे हैं टेम्प्ट कर रहे हैं कि शॉट लिए बट वाइजेड ही इज अ लिटिल स्मार्ट राइट नाउ और थोड़ा डरे हुए भी है टू बी ऑनेस्ट he is just waiting. He is like, okay, ठीक है, I'm in the zone. मुझे जरूरत नहीं है इस टाइम पे फाइट लेने के ना. ऑब्वियसली वो चाहे तो लेफ्ट साइड से अभी और इवन जोन के ज्यादा क्लोज जा जॉनथन सकते को हैं. देखिए जॉनथन आगे की ओर आ रहे हैं. ऑफ गार्ड अगर पकड़ा गए तो आई विल से वाइजेड नॉक एंड इंस्टेंट फिनिश देंगे. लेट्स सी. बट क्या जॉनथन को पता भी है कि उस पेड़ के पीछे वाइजेड मौजूद है? दोनों टीमें, इवन मैं कहूंगा वाइजेड तो इकलौते प्लेयर है अपने टीम के जोन के बाहर है. नाउ इट्स टाइम टू गो इन द जोन. वाइजेड आई डोंट थिंक इनके पास कुछ ऐसा यहाँ पे कोई व्हीकल है. बट टीम नंबर 14 डोब्रो मेस्ट्रो पे अभी मौजूद, जो कि फ्लॉसी एंड इनके साथ एक और टीम थी. मेस्ट्रो पे मुझे एक फाइट देखना जरूर से था बट देखने को मिला नहीं. एंड आई थिंक अब जिस डायरेक्शन में लोग मूव करेंगे, लेट्स से स्ट्रेट अगर जाते हैं तो सेवन सिंस की टीम वहां पे मौजूद है. तो अभी तक ये टीम जो सबसे ज्यादा फिनिशेस लेके बैठी हुई है एंड लीडर बोर्ड पे भी टॉप पे ही है कहीं ना कहीं. देखते हैं कि क्या इस बार जो ये एक अप्रोच था जहां पे इन्होंने अभी तक फाइट नहीं ली है, इस बार ये लोग कितने ज्यादा फिनिशेस निकालते हैं. फर्स्ट फाइट जब भी होती है फ्लॉसी की, वहां से गेम में चार चांद लगना स्टार्ट होता है. एज हाँ जी वो तो है फ्लॉसी की अच्छी आई मीन एक अच्छी बात है एक बुरी बात भी है अनफॉर्चुनेटली फॉर देम बट लेट्स सी कितना होता है. अभी वो एक साथ चले जा रहे हैं वहां से जॉनथन की टीम. अनफॉर्चुनेटली उनका एक मतलब बेसिकली दैट मीन्स कि एक फिनिश तो नहीं मिलने वाला बट टॉकिंग अबाउट अनदर फिनिश थंडर गोज डाउन देयर. फाइनली उनको वो फिनिश मिल गया कैसे भी करके उन्हें फिनिश मिल गया. लुक एट द जोन आई एम लविंग दिस जोन बेबी. 45% ऑलमोस्ट 50% पानी है. एक ड्रॉप भी पानी के अंदर है. दिस इज जस्ट ब्रिलियंट. आई मीन प्लेयर्स के लिए नहीं बट हमारे लिए तो एकदम मजेदार होने वाला है ये. बिल्कुल. लेकिन ये तो बात पक्की है कि कितना भी पानी पे बने, एंड में तो जमीन पे ही बनते हुए हमें देखने को मिलेगा. बट फिलहाल के लिए मजा तो करते हैं. अनफॉर्चुनेटली एजेस पे लड़ाई हो रही होती है ना तो बहुत मजा आता है. अभी तो फिलहाल के तब भी हाल से जोन बहुत ज्यादा बड़ा है. मुवात्रा बिल्कुल नदन साइड पे, सॉरी सदर्न साइड पे. मेस्ट्रो आपका, डोब्रो मेस्ट्रो आपका नदन साइड पे. एंड स्टिल वी कैन सी ऑलमोस्ट ऑल द टीम्स बिकॉज वीकेंडी पे इतने कंपाउंड्स है कि टीम जोन में आके आराम से कंपाउंड लेके बैठती है. ये भी नहीं ओपन में आपको रहना है. यू विल गेट द हार्ड कवर. इवन मैं कहूंगा अभी जोन 2 बार और छोटा होगा तब भी टीमों के पास हार्ड कवर मिल जाता है. एंड वी कैन सी सिर्फ 2 टीम. वाइजेड द सोलो प्लेयर फ्रॉम द टीम, वो जोन के बाहर है. एक और टीम मुझे ईस्टर्न साइड पे देखी थी, ईस्टर्न बिल्कुल एजेस पे इस टाइम पे, वो भी आएंगे. बट 4th जोन होने वाला है. वी गॉट 13 टीम्स, 48 प्लेयर्स. सिर्फ 3 टीम्स एलिमिनेट हुई हैं. एंड राइट नाउ टीम नंबर 6 दे आर ऑन अ लुकआउट. हाइपर क्रश को हम देख सकते हैं. सबसे मेन चीज है अभी बैक को क्लियर करना है. अगर बैक से कोई टीम आती है इट्स गोना बी डिफिकल्ट बिकॉज़ सामने तो टीम्स होंगी ही होंगी. अगर यूपी 50 की बात करें, इन्होंने गेम तो बहुत अच्छे खेले हैं खास के. एंड लेट्स सी ये गेम इनका कैसे रहेगा. रणवीर वंस अगेन आई विल से दैट जब रणवीर फाइट में गया है हमने हमेशा उसका विंग मैन हाइपर किड उसके पीछे देखा है. क्या एक बार फिर से मतलब हमें देखने को ये सेम चीज मिलती है? विल सी. वो कवर जो हाइपर की दे रहे हैं वो एकदम लाजवाब है. बट राइट नाउ another thing that I want to see is what's Celestial doing. उन्होंने एक फाइट ले लिया, एक टीम को एलिमिनेट कर दिया, बट उसके बाद for the next 13 minutes they've been silent here baby. We're already about to hit that 16-minute mark. The 4th zone is going to be coming into play in 40 seconds. But no finish is coming in from Ranveer or Hyperkid, as a matter of fact. The Team 12, they're taking it slow as well. They understand the motive of the game right now. They need to make sure that they have enough, points. Rank ho, finishing ho, jo bhi ho, they need some points. Top 1, agar 1 first place nahi mile, tab bhi theek hai. But they want 2, 3, 4 or at least 5. एंड उसके लिए पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ फिनिशिंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बट अगर वो नहीं मिल रहे तो एटलीस्ट रैंक पॉइंट्स. इताची का शारिंगान से इनको एक दिखता हुआ बट एट द सेम टाइम ही गेट्स शॉट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. I think that was existence, knowing the existence of Itachi, and he did manage to take, land a couple bullets.
But that's about it. Itachi, there's a lot of cover. तो वो safe है अभी के लिए. But there you go. हम लोग बात कर रहे थे रणवीर की fight के बारे में. Hyper Kid, there you go. Once again, he's got to be the one taking the first knock. And the Torque as well on his knees. Hyper Kid, Polar go down करते हुए. He's going to get taken up with the UMP up close as well. But the MP5, oh no, it's going to be crucial. The M4 managed to take one down. Hyperkid with the UMP is not going to stop anytime soon here, BB. Ranveer is but Hyperkid ko cover dete hue, and Ranveer is going to get taken down as well. I think so. Akash is already bleeding, but Hyperkid doesn't want to stop. Dopex goes down as well. Ranveer is really low. He's going to be healing himself. There's only one player on his knees. That's Akash, but he might just get revived. But look at Hyperkid. He's actually hyper. 4 finishes in the blink of an eye, and that team is back on the run. Yep, and अभी जिस टीम को इतना ज्यादा मैं कहूंगा एक फुल स्टॉप दिया इस कंपाउंड में, कुछ छोटी, वैसे तो कोई भी छोटी टीम नहीं है, बट इस टाइम पे मैं कहूंगा कि हमारे कैंपस शोडाउन की टॉप टीम है, जो कि आपकी फ्लॉसी की टीम थी, वो कहीं ना कहीं सप्रेस किया विद द फायर पावर ओनली. मीनवाइल अगर हम फ्यूरी की बात करें, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, जेसीपी गेमर कमिंग आउट विद दैट नेड, एंड एक प्लेयर डीना को डाउन करेंगे. अभी फिलहाल में काफी ज्यादा कम एचपी पे हील कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके कंपाउंड में कोई आ नहीं रहा था. एंड यस, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे सो दैट ही कैन हील हिमसेल्फ, बट एक लास्ट बुलेट आएगा एंड वो भी अभी डाउन है फिलहाल. लेट्स सी क्या कमाल. दैट स्टॉर्म बिल्कुल ऊपर चढ़ते चढ़ते आला भी डाउन, एंड जॉनथन इज द लास्ट प्लेयर इस एक कंपाउंड में. रणवीर की टीम ने कमाल तो करके जरूर से दिखाया, बट अभी मुझे अभी देखना है कि यहाँ पे क्या होना. टीवी बल्लू, कितनी सारी टीमें एक जगह पे आ चुकी हैं, ये मैं समझ के, मेरे मतलब मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि एक टीम है, 2 टीमें, ठीक है, 2 लड़ रही हैं, फिर से 2 टीमें आके लड़ने लगी. ओ माय गॉड. एंड बल्लू नाउ थोड़ा मतलब उनको रिवाइवल देते हुए, actually he was the sole survivor, actually the sole person standing, not the sole survivor. But look at the position coming in from Ranveer as well. इनका 4 finishes already मिलते हुए, but Ranveer now is going to get taken. He's going to take a bit of damage. Badesh actually tends to go down karte hue. Ranveer did deal a bit of damage, but Team 6 and 7 are right next to each other. Team 12 is trying to third party this. MP5 up close and personal. Mirza is going to get taken down. Bizarro unko down karte hue, but an instant trade coming in from Insane with the UMP. And now Spark is going to get taken down by Ranveer actually, but Bizarro is going to get out as well. He's going to go out of the server. Badesh, but look at this. Insane. That's actually insane coming in from Ranveer. Really, really long fight with the M4. Was beautiful to watch, और रणवीर प्रोन करते हुए ऊपर से, तो दे आई मीन डैमेज तो कर रहे, फिनिशेस ले रहे, बट पोजीशन अपना खुद का रिवील नहीं कर रहे किसी कहीं को. बिल्कुल से मैसिव एक चीज कहूंगा, रणवीर ने इतने ज्यादा लॉन्ग रेंज फाइट में एक फिनिश को स्टील किया, और एक प्लेयर जो 1 एचपी था उसके फिनिश को भी ले लिया. इट्स लाइक स्टील ही किया गया, बट फिलहाल के लिए रणवीर बहुत ज्यादा डैमेज डील कर रहे हैं. सबसे अच्छी बात है कि उनके पास हाइट और प्रोन है. अगर सामने वाली टीम एक वक्त को स्कूपिंग भी करे ना, तब भी प्रॉब्लम होगा. इसी के साथ देखते ही देखते हाइपर किड दूसरी डायरेक्शन से स्प्रे आएगा, एंड पूरी तरीके से जो सामने टीम थी जिस पे रणवीर स्प्रे दे रहे थे, वो खत्म होके जा चुकी है 90 पायदान पे. फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा फिनिशेस अब होने वाले हैं. रणवीर, हाइपर किड, यूएनडी विलन कल के दिन पे चमक रहे थे, हमने इनको बूट कैंप पे देखा था. ना आकाश, ये भी एक कहीं ना कहीं फॉर्मिडेबल टीम हमें दिख रही है फिलहाल के लिए. अगर हम बात करें सिंक की, उसका एक प्लेयर डाउन है, जोन के बाहर है. बचाना आई डोंट थिंक कि वो बच पाएंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी ड्रेन हो रहे होंगे. मे बी उनको कंधों पे उठा के लेके आया जाए तो हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है. इसी के साथ प्ले जोन ही उनको पूरी तरीके से लॉबी भेजेगा. 3-man स्क्वाड सिंक, लेट्स सी. बट अभी अगर हम टीम नंबर 12 की बात करें, इन कंपाउंड्स में एक फाइट को जीता है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग टीम को एलिमिनेट किया, एक और फाइट उनकी तरफ हल्का के बढ़ रही है. आप देखें, Jesus, I mean, this is absolutely nuts coming in. 8 finishes already to their side. And let's see what happens. I mean, Avex is still trying to put up... He's on the run right now. Joker's the only one down. Itachi is actually on his knees. He's going to be bleeding out, but that M4 coming in from 2x is actually dealing a lot of damage. Baloo is still in a really good spot, but Team 12 got to be careful because Team 3 is going to be their first point of contact, but there's Team 15 who might just come into the picture and be the third party. Itachi goes down to Celestial. Hello, they're going to be knocking on their doors right now. Finally, some action coming in from them. We did see them take down one of those squads pretty early into the game, and after that 20 minutes, no action. Finally, they steal that point from another team, unfortunately, but they'll take it anyway. It doesn't really matter. Team 12, well, they're now on the run as well. They want to make sure they're already inside the zone, and then they can gatekeep. But now, they changed their mind. They want to take that fight using the boulder as a cover. Ranveer takes down one more. Hyperkid's on his knees as well. G63 mid-range. It does the damage once again. That's exactly why people
pick the G63 instead of the M4, but Blaziken, he gets another finish. So that's 6 finishes for the side of Celestial already, and they're in the top 8, which means they are going to be happy with the performance no matter what. Even if they don't get the chicken dinner, they're still going to be the number 1 spot right now. It's going to be 2 for YT with another knock. Can he get the finish on the Thunder as well? It's going to be getting it. Suba, on the other hand, hates go down karte hue with the explosion, but the G63, that is an insane weapon, as you said, baby. दूसरे मैप्स में भी चाहिए मेरे को ये weapon. That is just insane. बिल्कुल, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, सेलेस्टियल अगेन एक अच्छा गेम यहाँ पे देती थी। एंड मीनवाइल अगर हम बात करें फ्लॉसी का एक बार फिर से वीक गेम प्ले देखने को मिला, जहाँ पे वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, कुछ ज्यादा फिनिशेस नहीं है। ऑलरेडी हम 10 पॉइंट का गैप चलिए हमें देखने को मिल रहा था बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, 10 या 15 पॉइंट का। एंड इस बार फिर से सेलेस्टियल उस गैप को और ज्यादा बढ़ाने वाले। लेट्स सी कितना ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस सेलेस्टियल क्रिएट करने वाले, बिकॉज़ इस पॉइंट सेलेस्टियल जितना भी प्लेसमेंट पॉइंट ले, फिनिश पॉइंट ले, वो एड अप ही होगा। फिलहाल यूपी50 रणवीर, यूएनडी विलन, ये टीम 11 फिनिशेस, अलग ही डोमिनेशन दिखाते हुए। एंड सबसे मेन बात है, अभी भी आप देखें तो हल्के से आगे जाना है, जोन उनके बिल्कुल कदमों पे है। वो अभी आगे इसलिए नहीं जा रहे बिकॉज़ एक ओपन जोन बन गया। दे नो दैट अगर इस टाइम पे ओपन जोन को आप कैपिटलाइज करने की कोशिश करोगे, आपको हर डायरेक्शन पड़ेगा। बट टीडी गोस कमिंग अप विद दैट नॉक, एक प्लेयर को डाउन करेंगे। अगर हम 2 फाइट की बात करें, ऑलरेडी एक फिक्स निकाल बैठा है उनके सामने 1v1, यहां पे चिकल सामने डोमिनिक काफी सारा डैमेज डील करेंगे। इसी के साथ पीछे से एग्जिस्टेंस के प्लेयर का लास्ट बुलेट आएगा एंड डोमिनिक को खत्म किया जाएगा। टूबू के स्किल को एक तरह से उनके मुंह में से स्टील कर लिया पूरी तरीके से सेलेस्टियल के एग्जिस्टेंस ने। बल्लू का एक अच्छा नेट, वेल एंड डाउन। एंड सामने अगर हम बात करें तो मिस्र वाईटी भी अपने पैरों पे नॉक हुए, फिनिश हुए। बट अभी सेलेस्टियल के एग्जिस्टेंस को यहाँ पे डाउन किया गया एमवाईएम के प्लेयर के द्वारा। Celestial, you sneaky little bugs. वो इतने सारे स्टील फिनिशेस स्टील कर चुके हैं ये लोग। I think 3 or 4 already, and they're still not gonna stop. Guja gets 1 more. Now look at the positioning coming in. Blaziken and Unknown are together. Existence is a bit far from their teammates, but Guja is all by himself. वो lurk that flank, वो थोड़ा scout कर रहे हैं। Madara gets another one onto Baloo, but Unknown Hardin to confirm karte hue 16 he's gonna get taken down as well with the G63. Once again, the outplay zone being the menace. Tubu, who actually, I think he was taken down by Existence, but confirmation to play zone ko milne wala hai. So no points for Celestial, unfortunately. Well, Kenos is gonna get taken down by Celestial once again. Existence coming out on top, but Gujar is gonna get taken down by the explosion. The airdrop is right in the center. I don't think anyone's gonna be dead. Oh, wait a second. Hyperkid actually was tempted for a second. Is he going for it? Does he have the nerve? Can he go for it? I mean, maybe a couple of smoke grenades and he might just come out. क्योंकि इस time पे अगर airdrop मिला, कुछ अच्छा मिल जाएगा, obviously, because high risk, high reward, and he is actually going for it. We usually talk about teams not going for it, but here he's not just taking the loot from the airdrop. He's also using it as cover, which is really smart coming in from him. But Akash is going to be the one taking down Gujar with the grenade. I'm not going to get taken down as well. Celestia, what are you doing? They get taken down. Now in the top 3 here, BB. I'll just say one thing, Celestial यहाँ पे पूरी तरीके से पिन डाउन हुई। From the right उनको 7 sins की तरफ से shots है, from the left and straight even मैं कहूँगा यहाँ पे Hyperkid and Villain ने उनको इतना परेशान करके दिया। Right now Existence is the last player surviving from the team and I think उनकी भी position revealed because of the smoke। एक अच्छा नेट गया, रणवीर को ये नहीं पता था कि लेफ्ट साइड में ऑलरेडी 7 sins के प्लेयर मौजूद हैं। एक अच्छा स्प्रे आएगा, जरूर से रणवीर को भी डाउन किया जाएगा, बट मदारा उन्हें डाउन करके पूरी तरीके से फिनिश किया गया। 2 टीममेट्स, 3 2v, I'll say 3, even 2v4 है, but रणवीर नॉकडाउन है, उनको रिवाइवल नहीं दिया जाएगा मोस्ट प्रोबब्ली बिकॉज़ वो ऑलरेडी बहुत आगे की ओर मौजूद है। 2v3 एंड मैनेजेबल 2v3, बट नहीं, इसी के साथ राइट की ओर से एक स्प्रे आएगा। Celestial, even though they played really well, just look at the finishes by both the top 2 teams. UP50 Ranveer with 6 finishes, Hyperkid with 5 finishes, UND Villain coming up with that 4 finish, and Akash 2. भाई गिनने लग जाऊं तो 17 finishes with chicken dinner, 32 points from a single game. But just look at Celestial Esports, they've got 12 placement points and I think 14 finishes. I think so, if my math is not wrong, 8 और 12, 8 और 6, 14 होते हैं। 14, yeah. Oh भाई, 14 finishes and 26 points from a single game. Both the top teams, मैं कहूंगा जो अभी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे एज, इन दोनों टीमों ने लॉबी डोमिनेट किया। अगर इन दोनों के फिनिशेस को करो तो 30+ फिनिशेस तो इन दोनों टीमों ही ने निकाला। एक अलग ही मैं कहूंगा गेम प्ले जहां पे बाकी की टीमों ने सिर्फ फिनिश देने का काम किया है, ना कि लेने का।
Team United. What a United. game! What a game coming in. Now, देखिए सेलेस्टियल को पहले आई मीन इफ दैट वाजंट टीम यूनाइटेड कोई और होता तो इट वुडंट हैव अफेक्टेड देम दे स्टिल वुड हैव बीन हैप्पी कि वो टॉप 2 में आ गए हैं एंड दे वुड हैव हैड एनफ पॉइंट्स एज वेल दे स्टिल दे सिटिंग ऑन टॉप बट सिंस इट्स टीम यूनाइटेड उनका और सेलेस्टियल का आई थिंक इट वाज लाइक आई थिंक 20 पॉइंट डिफरेंस बस 20 पॉइंट्स डिफरेंस एंड नाउ वो डिफरेंस और भी कम होने वाला है इट्स गोना बी समथिंग अराउंड 15 सो next game, the game that's gonna. I mean, not just that. I mean, one more thing. I think maybe they overtook Flossie. I think so. क्योंकि 30 points. तो Flossie को overtake कर चुके हैं United, I guess. If my math is, if my imaginary scoreboard is not wrong. But I want to see how the last game goes. That last game, BB. अगर वो United के हाथों चला गया वो भी. It is gonna be a really good day for us tomorrow. बिल्कुल मैं तो ये सोच रहा था एज कि हमें एक बस तीसरी टीम मिल गई चैलेंजर के रूप में बड़ी चैलेंजर नहीं एक मैं कहूंगा एक सका पंच देते हुए ऊपर उठ रही है और मैं आप देख सकते हो इस मैच के बाद एक साउथपॉ तो दे दिया है ऊपर की दो टीमों को बिकॉज गैप तो सिर्फ 10 पॉइंट का था बिटवीन यूनाइटेड एंड फ्लॉसी जो इस गेम के बाद डेफिनेटली फ्लॉसी के ऊपर आ चुके हैं फाइनली यूनाइटेड बट इस गेम के बाद मैं कहूंगा इवन दो डिफरेंस था 15-20 पॉइंट का तो डिफरेंस था बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15-20 पॉइंट तो होगा तो कहीं ना कहीं अब क्लोज भी आ जाएगी इस गेम के बाद यूनाइटेड एंड वी हैव द लास्ट मैच ऑफ द डे स्टिल जो अभी खेला जाएगा ओवर द मैप ऑफ इरैंगल सो वी नेवर नो जिस तरीके से हाइपरकिड रणवीर यूएनडी विलन एंड आकाश ये लोग खेल रहे हैं अलग ही गेम प्ले दे रहे हैं भाई कल के दिन पे आई नो इनका एक एवरेज डे था बट आज ये फट के बाहर आए हैं जहां पे इन्होंने एक अलग ही तरीके की कंसिस्टेंसी तो हमें इनके तरफ से कुछ अलग ही देखने को मिली जहां पे आप सोचो ये सीधा टॉप 2 में एंटर कर चुके हैं इवन तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना ज्यादा कंपटीशन था एंड ये उसमें एंटर कर गए Yeah, I mean, if you look at Ranveer's card right now, there's one thing I really love. 0 knockouts. 0 knockouts and 6 finishes. He doesn't leave the job half done. He either steals the finishes or he finishes the job that he takes. That is absolutely brilliant. That is something you usually don't see. I mean, kabhi kabhi aap dekhte ho. I mean, at least एक knock to hota hai and then the finish, is taken by someone else. But Ranveer, I mean, Hyperkid was the one was the star of the show for me क्योंकि वो fight बहुत important था United के लिए and Hyperkid बहुत अच्छे getting those entries into the building अगर if Hyperkid would have gone down there Ranveer भी बहुत low थे and things would have gone south for Team United so that was a really good fight Hyperkid stepped up really huge and then coming in Ranveer obviously उनका तो फायर पर अलग ही चल रहा है अभी तो उनका दिन चल रहा है तो चलने दो but Team United I am excited for this last match I mean it's gonna be Miramar if I'm not wrong so let's see क्योंकि it's gonna be a Rangel is it okay I might have confused myself there I'm really sorry but अगर Erangel हो ये Rangel दे बस आएगा I mean I was like आपका favorite match है तो मैप है तो एक और बार कर लेंगे but जो भी हो कैंपस से बात गुड नेशन से बात करके कि यार 2 मीरामार भी आप करवा दें तो इरैंगल क्यों बट ऑब्वियसली इरैंगल इट्स लाइक ना एक चीज होती है इरैंगल सबका है मीरामार कुछ लोगों का होता है वीकेंडी कुछ का होता है बट इरैंगल सबका है दैट्स व्हाई ऑब्वियसली इन एवरी टूर्नामेंट वी सी दैट इरैंगल गेट्स द प्रायोरिटी द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ऑब्वियसली दैट्स व्हाई द मोस्ट लव्ड चाइल्ड बट यार जो कंपटीशन की तुम बात कर रहे हो अब वो कंपटीशन और ज्यादा टफ हो गया नो डाउट मुझे बस लग रहा था कि ठीक है फ्लॉसी एंड सेलेस्टियल्स हैं इन्हीं के बारे में आज भी मुझे बात करनी है एंड मैं दिल से चाहता था कि एक और टीम जुड़े नाउ आई कैन से यूपी 50 रणवीर का मतलब अब टीम यूनाइटेड नाउ दे मेड देयर नेम बाय देयर परफॉर्मेंस एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दे एंटर्ड इन द टॉप 2 राइट नाउ बट लास्ट मैच है एंड आई थिंक इस चीज को बहुत ज्यादा पर्सनली आपके सोल स्पेंसर लेंगे एंड उनके जो टीममेट है बिकॉज़ दे आर फ्लॉसी डी टॉक and I don't know what is happening with Dutok right now yesterday he was giving a really great game with a team game and I
मुझे पता चला था चैट में कि Retalk is the IGL who loves to die and then lead the team from the comms. So I think that आज थोड़ा कुछ हो नहीं पा रहा, but I know last match अभी भी है, and I'm expecting a really good gameplay by Team Flossy, because Flossy कल उनके फैंस बहुत थे चैट में, and I think आज थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर हुए, बिकॉज उन्हें पता है फ्लॉसी आज दिमाग में लेके आई थी हमें फर्स्ट जाना है, बट वो थर्ड आ चुके हैं. सो लेट्स होप, बिकॉज मुझे तो यही चाहिए, लड़ाई चाहिए, बूम बाम चाहिए, आग लगता हुआ देखना चाहिए, जो हमें अब मिल रहा है. एंड हम कल का दिन जो फाइनल डे उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से जो रेडी हो रहे हैं हल्के हल्के. I mean, सही बात है. I mean, Flossie, their mental game is affected after that first game. I mean, first game actually did really go well. सेलेस को उन लोगों ने थोड़ा डैमेज कर चुके थे वहाँ पे. सेलेस को डाउन सेकंड पोजीशन में लेके गए थे. I mean, हमें we don't have the exact numbers, but we knew Flossie took down Celestial. But उसके बाद Celestial came back. एंड उसके बाद दे डिडंट लेट गो. वो उन्होंने मतलब वो क्राउन छीन लिया उनसे, एंड दे आर लाइक यू नो व्हाट, वी विल जस्ट कीप इट, वी आर नॉट गोना गिव यू, ऐसा पकड़ के रख दिया. एंड नाउ फ्लॉसी, वेल दे ट्राइंग टू मेक देयर वे टू द टॉप, बट एक और टीम ऐसा ऐसा आराम से ऊपर आ रही है, टीम यूनाइटेड. मैन दे आर रियली गुड. Edge, you dropped something. Oh, did I? I mean, I'll go pick it up. Until then, I think you can carry it. Don't. Edge, तूने मेरे जोक को खराब कर दिया यार. Guys, Edge, I know what it is. something. But I wanted to, I wanted to just take an opportunity. You dropped something. Just look there. It's your crown because you're a king. Damn. I knew it. I knew that was coming. But then I was like, let's just take advantage and pull up something that we were saving something for the end, baby. We were saving something from the end. When you're in South, never do these things when you're in North. बहुत मारेंगे लोग, लेकिन यार, it's fun to be honest यार. या नहीं कर सकते आप. जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ आपको ना सुबह सुबह इंसान पकड़ के ऐसे उठा के कोने में डाल देंगे. But yes, apart from the jokes, हमें इस टाइप के jokes मारने में मजे आते हैं थोड़ा. लेकिन हाँ, we were talking about these things and Flossie is the only team I'll say जो एक ही दिन में नंबर 1 पे आई है, फिर नंबर 2 पे गई और नंबर 3 पे आई है. And I know नंबर 4 पे तो आज वो नहीं जाने वाले, but क्या वो दोबारा से नंबर 1 पे जा पाएंगे? The difference between first and third, and we know that Flossie third पर है, अब वो बढ़ेगा. But जब end result आएगा ना स्कोर कार्ड, तो it's gonna be very much like जो मैं अब वेट करूंगा. Obviously हर मैच ओवरऑल शेड्यूल के लिए हम हमेशा वेट करते हैं, बट स्पेसिफिकली I'll say मैं इसके लिए वेट करने वाला हूँ, बिकॉज फ्लॉसी की तो मुझे पोजीशन देखना है. आई नो कहाँ पे सेलेस्टियल है, कहाँ पे यूनाइटेड है, बट आई रियली वांट टू सी दैट फ्लॉसी कहाँ पे एंड करती है. I mean, अभी तो we know they're in the third position, but end of the day, पता नहीं कहाँ पे. I mean, if they're in, I mean, they wanna be in number 2. I mean, they wanna be in number 1 to be honest, but they'll take number 2. They will be really pissed at themselves if they're in number 3. They're gonna be mad. I mean, I'm pretty sure they're gonna be mentally disturbed if they're in number 4. Right now, that's gonna be an issue coming in for sure. Because one thing is that if you beat the opponent's mind, if you win the mind game, मोबाइल में तो आराम से मार लोगे आप, तुम लोग गेम में मैप में तो आराम से मारो. If you break the other's mind, that's game over. And right now, Celestial is doing that to 10 teams. 10 goddamn teams. There are only 3 teams. I'm pretty sure Flossie competition में अभी भी, United competition में, and there's one more team. I'm not really sure which one. I think it is SVF or I think it is Hitman. I think one of these teams. Yeah, they're trying to slowly climb up that ladder. So I want to see end of the day, which team is going to be in number 4, top 4. I mean, you wanted top 5 Blackbear. I mean, kal you wanted like top 5 में competition. But I'll promise you one thing: top 4 में तो पक्का there's going to be a टक्कर. कोई नहीं, 5 नहीं 4 ही मिल जाए, बस खुशियां चाहिए यार जिंदगी में कि कल आज जब मैं गेम खत्म करके जाऊं, जब मैं सुबह सुबह उठ के सोचूं कि यार आज भी एक आखिरी दिन है कैंपस शोडाउन का, मजा चाहिए बस मुझे कि हाँ, आई एम गोना कास्ट अ गेम जहां पे ओवरऑल सारी टीम्स में बहुत एक कट थ्रोट कंपटीशन है. आई एम गोना मेक दैट इवेंट अ फन एंटरटेनिंग इवेंट विद लॉट्स ऑफ बूम बम एंड स्टफ. बट या, that's what I'm thinking. Obviously as a caster we always want to cast some entertaining games, and अगर गेम का रिजल्ट beforehand पता चल जाता है, so it's not fun. Obviously we still make it like fun and obviously with lots of datas and infos, but yeah, वो चाहिए था. अगर 4 भी आता है एज तो it's gonna be like okay ठीक है, 3 5 नहीं तो 4 सही. but हाँ,
अब आ चुके हैं हम हमारे आखिरी गेम पे. इरांगल once again. We know that Celestials इरांगल पे बहुत अच्छे हैं. We know that Celestials already top पे हैं. We know that Celestials they are in it to win it. To be honest, जिस तरीके से वो day one से खेल रहे हैं. But I really want United or Flossie to come back in the last game. Head on take the fight. Obviously you don't know कि सामने कौन है. But एक ऐसा moment आ जाए जहाँ Flossie United इस गेम में United ने Flossie को मारा है. Now I want either to Flossie or United to face like these three teams facing each other. That's gonna be something I'm looking forward to. And सबसे main चीज in the end zone, last zone. Let's imagine we have three teams and it's a 4v4 situation between these three teams. Oh my God, it's gonna be the cherry on the top after ending the day two of grand finale. But yes, now I'll add one thing. That's like it's like PS. The rest of the 13 teams, I really want them to do something because this is the last match and जब कल आप वापस दोबारा आओगे आपके पास सिर्फ मजे के लिए खेलने के लिए मैचेस रहेंगे. Okay, that we qualified, now we are just playing it for fun. कितना भी हो जाए. I really don't want that. I really want that कि आज जब आप सोओगे तो आप कल सोच के आओ कि I want to win. At least I want to give my best. So just give your best. It doesn't matter. Maybe आज आपका दिन नहीं है because one thing is जो हम लोग सभी सारे casters कहते हैं, it's very mainstream now. Form is temporary and class is permanent. You might not be a classy player till now because you're still studying in colleges and you're still grinding. I'll say that frankly. But एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे आप classy बन जाओगे. तो just maintain that form. Maybe not today, maybe tomorrow. So that's what I would like to say because अब हम कुछ देर में last game पे जाने वाले हैं. Edge. That is true, and I mean, we were talking about the 13 teams, right? I mean, मुझे देखिए आपको चाहिए था कि ये तीनों टीम लास्ट जोन पे फाइट करें. मुझे चाहिए ये तीन टीम्स स्टार्टिंग 3 टीम्स, आई मीन सेलेस्टियल एलिमिनेट हो जाए. एग्जैक्टली, आई वांट देम टू गेट एलिमिनेटेड द फर्स्ट. मतलब सेलेस्टियल इन पोजीशन नंबर 16 एंड देन सेकंड में कौन है अभी? यूनाइटेड. आई वांट देम आउट इन 15 एंड 14 में ओके मे बी यू नो व्हाट, थोड़ा फ्लॉसी को चांस दे देंगे बिकॉज दे आर फीलिंग अ लिटिल सैड. तो उनको थोड़ा विल कट सम स्लैक. विल बी लाइक थोड़ा खेल लो मे बी इन लाइक. तीनों टीम सुन रही होंगी. Edge, don't tell them your address because guitar है वो कल नहीं रहेगा for sure. So guys, it's for fun, no doubt. Obviously, I'm just like pulling his leg, pulling the leg of it. It's fun. It's fun. It is. I mean, देखिए, see, obviously we need that competition. We need that preparation and everything. And I'm ready for the final match already. I mean, BB, you are ready as well, and the players are ready as well. They're all ready. You know, they have their parachutes locked in. They have everything ready. The mindset, I'm pretty sure. But as we were talking about, even if you go down, guys, even if you're in 16th position today, by the end of today, don't be disheartened. Don't be disappointed. Tomorrow, you still have a chance. I mean, देखिए, you're still taking away 2,500 at least, right? I mean, already 2,500 मिल रहा है. So why not make it 3,000? Why not make it 3,500? I mean, it's not a lot, but it's something better than 2,500. I'll add one thing. It's not even, I'll say 2,500. At least आप top 16 में, and we know that कि ये phase 3 चल रहा है. Campus Showdown 3 phases में हुआ था. I know you qualified. That is one of the proudest moments that in your college or anywhere you can say that yeah, campus showdown हुआ था GoodGameNation का and हम वहाँ पे top 16 colleges में थे. इंडिया में हजारों लाखों colleges हैं. So उसमें थे and that's a big achievement. So just go all out, give your best. पर चलते हैं सीधा हमारे last match के ऊपर. क्या मीरामार हमें आज last देखने को मिल रहा है? I thought it's gonna be Erangel, but I'm really sorry. I told you. देखिए आपको मिरामर चाहिए था तो मैंने कॉल किया था गुड गेम नेशन को. डायरेक्ट मैंने बोल दिया कि देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस विद बीबी. पहली बार कर रहा हूँ मैं. प्लीज विल जस्ट कुछ भी करके मिरामर लगा दीजिए मेरे लिए. एंड दे वर काइंड इनफ एंड मिरामर मिल गया. ऑलरेडी सब स्नाइपर एक्शन ऑलरेडी. ये विंचेस्टर को मैं सस्ती स्नाइपर कहता हूँ जब से इस पे वो लग गया. Schofield coming out with that M4 in the beginning. Oh, lucky guy. यहाँ पे उनको मिल गया. उन्होंने 2 प्लेयर्स को डाउन किया बट कोई फायदा नहीं होने वाला. तरुण अपनी विंचेस्टर का एडीएस खोलते रह गए. बीटीएल के 2 प्लेयर्स डाउन है जिनको फिनिश करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं. स्कोफील्ड कार लेके लोग जा रहे थे. मुझे लगता है एक स्प्रे कार ही पे गया होगा एंड फ्लाइट पाथ इस तरीके क्या होगा कि इनका ड्रॉप स्पॉट कहीं और होगा. दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग दे ट्राई टू गो टू द ड्रॉप स्पॉट विद अ व्हीकल एंड
got caught off guard and that's why यहाँ पे इनको थोड़ा प्रॉब्लम है. बट आप देखिए टीम नंबर 2 उन्होंने क्लोजिंग कर दिया. पैंथर डाउन है स्कोफील्ड के पैरों पे, बट घोस्ट एंड हेडीज पीछे की तरफ से आ रहे हैं. इट्स अ 2v2 सिचुएशन जहां पे अगर हम बात करें हेडीज उनके पास स्कोफील्ड उनके पास एचपी नहीं है. सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट 2v2 फॉर टीम नंबर 10 एंड लेट्स सी क्या होता है. दोनों टीमों के पास ये तो बात पक्की है, कुछ के पास यहाँ पे हेलमेट्स नहीं है तो कुछ के पास हीलिंग्स नहीं है, कुछ के पास गन्स नहीं है. क्या लगता है यहाँ पे क्या होने वाला है एज? ये मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये फाइट क्यों ले रहे हैं इतनी जल्दी. मतलब लास्ट मैच ऑफ द डे दे नीड एज मेनी पॉइंट्स दे कैन. तो थोड़ा सेफ खेल लेते तो बेटर होता. बट नाउ सिंस दे हैव ऑलरेडी टेकन द फाइट दे कांट बैक ऑफ राइट नाउ. बट ओह नेवर माइंड, दे can actually back off क्योंकि वहाँ पे एक vehicle है. But Schofield, he's playing it smart. He's using that uneven ridges to actually heal himself up, taking some cover. And Hates and Ghost, well, उनको पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है. And Pawan, he's trying to distract. Look at this. वो व्हीकल लेके दूसरी तरफ वो स्पॉट होते हुए जा रहा है. बाय द वे बीबी, he's making sure that everyone knows that the other team knows कि यहाँ पे back off हो रहा है. And now Schofield also going into that vehicle, taking cover. But Team 7 spots out a couple players, but he does have a Mac in his hand. That Uzi, okay, I don't think it does a lot of damage mid-range, but that's not the only thing I'm worried about. वो अकेला survivor है अभी. If he goes down, that's the worst performance you can get map number 5 of day number 2. Yep, let's see. Tens गन यूजी है और 2 यूजी है, दोनों यूजी है. देखते हैं वो क्या करने वाले. फिलहाल ही जस्ट वेटिंग राइट नाउ. वो अपनी पोजीशन नहीं देंगे एंड ऑब्वियसली ही नोज दैट he can't take 1v4 fight right now and that's why he'll just wait for the other team to go and we can see that the other team they are going because ये कोई जगह ही नहीं है लूट करने की. पहली बात तो यहाँ पे अभी ये लोग सिटी की तरफ आगे की ओर जाएंगे एंड जो टीम नंबर 2 है they've got few finishes in their bag and अब वो उसको खुशी खुशी लेके इस गेम में आगे बढ़ने वाले. अगर हम सेलेस्टियल की बात करें द टेबल टॉपर राइट नाउ एंड ये काफी लगता है मुझे फ्लाइट पर थोड़ा अजीब से बन गया था राइट नाउ. एग्जिस्टेंस उनको आवाज आई है सामने से गाड़ी की एंड दैट्स व्हाई उतरे, बट उन्होंने कॉल आउट दिया होगा कि मेरे आगे गाड़ी है तो मैं क्या फाइट लूं. उनके टीम में से कहा होगा नहीं वापस आ जाओ एंड दैट्स व्हाई एग्जिस्टेंस टाइम पे सही उन्होंने डिसीजन लिया. वो वापस गुज्जर के पास जा रहे हैं. लेफ्ट साइड से ब्लिट्जकिन भी आ रहे हैं, वो भी स्पॉटेड है एंड फ्यूरी ने कॉल आउट दे दिया थग को कि आपके सामने भी एक प्लेयर है एंड दैट्स व्हाई हम देख सकते हैं कि उनपे पूरी तरीके से एडीएस है. ब्लिट्जकिन एंड डूम्सडे दोनों की एचपी कम है जरूर से. बहुत ही ज्यादा ओपन ग्राउंड 4v क्या ये 4v3 फाइट है? बिकॉज़ आई थिंक टीम नंबर 3 के सिर्फ 3 प्लेयर्स जुड़े हैं यहाँ पर. Maybe वही देख रहा था actually. Looks like maybe थोड़ा split up हो चुके हैं. Not really sure. But Blaziken is out in the open. He's got to be careful here. He does use a smoke to screen his positioning coming in. But look at that. He's gonna get taken down. Oh no, that mini 14. Doomsday, the last tick. Actually, somehow managed to take him down. And Blaziken is out in the open, as I said. And there's nothing he can do. Celestial, this is not the kind of start they wanted. Blaziken को कोई भी revive नहीं कर सकता. कोई भी revive नहीं कर सकता अभी. There's no way that they can actually, even make it work. And हाँ, बीबी, यहाँ पे सिर्फ 3 player है. Team 3 की तरफ से. मैं एक चीज कहूंगा कि अगर सेलेस्टियल यहाँ पे पिटी तो तुमने ही कहा. मैं कुछ नहीं कहा. मैंने कुछ नहीं कहा. पे we know that Celestials किसने आप पे कास्ट कस लगाया, बट फिलहाल के लिए गुज्जा ही इज कुकिंग अ रियली कुक्ड नेट. थक के ऊपर फेंका. लेट्स सी डैमेज थक को गया ऐसा ज्यादा तो नहीं गया. 3v3 एक अच्छी बात है. चलिए मैन पावर इक्वलाइज हो गया. आई विल से जिस पूरे फाइट की एक की पोजीशन होल्ड करते हुए हमें फ्यूरी देखने को मिल रहे हैं एंड मुझे बुरा इस टाइम पे ब्लिज़िकन के लिए लग रहा है बिकॉज़ हल्के हल्के वो ड्रेन आउट हो रहे हैं. उनके आंखों के आगे काला काला सा अंधेरा छा रहा होगा. वो ये भी नहीं कह पा रहे होंगे कि मेरे पास आ जाओ. अगर वो बोल रहे होंगे तो गुजर एंड एग्जिस्टेंस का यही कहना होगा कि हमारे सामने ओपोनेंट्स है, व्हाट टू डू राइट नाउ. एंड ये मौत बहुत बुरी होती है जहां पे आप बिल्कुल ब्लीड आउट कर जाते हो, वो भी स्टार्टिंग में. एंड में अगर 5-6 बार आप 2-3 बार नॉक होने के बाद ब्लीड होते हो तो आप तेज होते हो. सो एग्जिस्टेंस यही वाली बात मैं करना. जस्ट लुक एट ब्लिज़िकन, उनको बचाया गया अननोन के द्वारा. इसके लिए तो तालियां बिल्कुल बनती है. एज दैट टाइमिंग भी देखो एक बार. इज लाइक 1-2 सेकंड और लेट होते तो वो खत्म हो जाते. बट राइट नाउ एग्जिस्टेंस अनफॉर्चुनेटली लुक्स लाइक वो खत्म होने वाला है. ही इज ऑन हिज नीज नाउ. यहाँ पे देखिए टीम 3 दे आर गोना बी मैड एट देमसेल्फ क्योंकि they had the chance to take Blaziken down, but it's not going to be the case. Existence back on his feet, but he's going to get taken down instantly again. That's a 1v2 taken by Dog. What a way to start things off for them. And Celestial, well,
They might be mad at me because I did say something before, but unknown. He's got to be careful right now. Blaziken, where is he? They're not going to be making this. I mean, इस बार तो revival नहीं आने वाला because the M249 is going to take those two players down on the side of Celestial, and it's going to be a 2 versus 3. बिल्कुल, let's see. मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इस टाइम पे जीवन दान के बाद भी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाती सेलेस्टियल तब बहुत मजा आता, बट फिलहाल के लिए जो हमारे लीडर बोर्ड की टीम है वो थोड़ा सा परेशानी में आ गया। आई विल से दैट एक अच्छा कॉल था नोन का, वो ब्लेजिकन को रिवाइवल देने का, दैट वाज अ रियली गुड कॉल टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ सामने से थक के टीम पुश नहीं कर रही थी, बट जिस तरीके से एग्जिस्टेंस वहां पे नॉक हो गए तो वो गलत हो गया कहीं ना कहीं। एग्जिस्टेंस ही आई थिंक वहां पे नॉक हुए थे जो रिज के ऊपर। सो अभी फिलहाल के लिए आई डोंट नो टीम नंबर 3 वो जाने देगी या नहीं जाने देगी, क्योंकि सेलेस्टियल को आप देखें अभी भी दो कंपाउंड्स में दोनों प्लेयर हैं। फ्यूरी वेट करें कोई ओपन में, ब्लेजिकन ओपन में आए, बट फ्यूरी उस टाइम पे ड्रिंक लगा रहे थे, अगर उनके हाथ में उनकी स्कार रही थी मे बी वो शॉट्स कनेक्ट कर सकते थे, बट नाउ अगेन ही विल वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। मीनवाइल अननोन विद दैट M16 टैप 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 डूम्सडे को 30 एचपी पे जरूर से छोड़ा क्या डूम्सडे ने अपनी बगी को सही टाइम पे घुमा लिया। एंड लेट्स सी, जोन है ठीक है, कब तक रहेगा ये नहीं पता। ये वाली बात तो पक्की है कि इस जोन को बनते जैसे ब्लू जोन ऑलरेडी टच करने वाला है प्ले जोन को, एंड विल हैव अ सेकंड जोन एट द मोमेंट वो आता है ये दोनों टीमें जोन के बाहर जाएंगी। ज्यादा देर तक जोन के बाहर फाइट लेंगे प्रॉब्लम है, बिकॉज ये नहीं है कि जोन आपको डैमेज ज्यादा देगा, बट बाकी की टीमें जोन में चली जाएंगी। लेट्स सी क्या होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पे अभी भी एक स्क्वाड एलिमिनेशन नहीं हुआ, which is something that I really like right now. We're about to hit that 10-minute mark. The first zone, well, it's just gonna come into play. Second zone भी आने शुरू होने वाला है. But look at the position coming in. Now यहाँ पे अगर zone drastic turn ले लिया 1.2 kilometers away, but 2 minutes time बहुत है, 2.5 minutes to be exact. So this is going to be a really interesting fight. Now team 3, they are waiting for Celestial. इन्हें पता कि ये Celestial है अभी, because they did take 2 players down, so they know Celestial के players है, and for them to even have a chance to make it to top 1, Celestial को down करना पड़ेगा. And it's not just going to be them who's going to be having a chance. Team Flossie and Team United एकदम खुश हो जाएंगे बाद में. I mean, right now they wouldn't know, but बाद में they'll be really happy that Celestial went down. And अगर Celestial अभी down हो जाते हैं baby, not only that they're going to be the first team to go down, they will not get any points. Finishing points be 0 है. And look at that zone coming in as well. Picado, Power Grid, Graveyard, San Martin. Hacienda थोड़ा है उसमें. And Los Leones be they're like the borders, the edges there. And La Bendita भी थोड़ा है map में. So a lot of different areas are still in play. And Thug, there you go. This is what I wanted, and that's exactly what Team 3 is delivering. Blaziken is out in the open as well. He takes a bit of damage, down to 50% of health, and it's going to be a 2 versus 1 situation right now. He does get the information that 2 players are running right in front of him, and Blaziken, he has to swing wide open out in the open. He's behind the compound wall. He gets taken down. He gets taken down. Celestial, the team at the top, are going to be the first one to drop, unfortunately, but it's not going to affect their position. I mean, they're still going to be in 1, 2, 3 for sure, but that's not the way how they wanted to end things today. Yep. Let's see. Oh, Nani Panda बस पीक किया ऊपर, एंड एक अच्छा खासा डैमेज उन्हें यहाँ पे जरूर से लगा। फिलहाल अगर मुस्कान गुप्ता की बात करें तो देखते हैं वो क्या कमाल करेंगे, बट इताची उन्होंने जरूर से अभी मदेश की कार को ब्लास्ट किया, मदेश पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। फिलहाल टीडी घोस्ट ही इज जस्ट लाइक वो भी एक एंगल लेके खड़े हैं। जोन के बाहर इस टीम को जाना है, जोन के अंदर इस टीम को मैं बाहर क्यों भेज रहा हूँ, अंदर जाना है। बट जस्ट लुक एट टीम नंबर 16 पूरी तरीके से रिच को लेके खड़े हो गए, एंड दे आर लाइक हम तो नहीं जाने देंगे। और ये वाली बात पक्की है, अगर आप यहाँ से कार भी लेके जाओगे ना तो पूरा ओपन ग्राउंड है एज, एंड टीम नंबर 2 के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है कि बहुत देर तक जोन का डैमेज लेके वेट आउट कर दे, इतना वेट आउट कर दे कि टीम नंबर 16 खुद को जोन में जाने के लिए मजबूर कर दे, बिकॉज वो उन्हें पूरा हाइट मिला हुआ है, एंड जिस तरफ टीम नंबर 2 है ओवर फ्लैंक आप कर ही नहीं सकते, इवन फ्लैंकिंग एंगल भी आप नहीं ले सकते, तो एक डीप ट्रबल में ये टीम। बट मीनवाइल हार्डन डाउन करेंगे सिंह के निर्वाणा को, एक और फाइट छिड़ती भी हमारे इस मीरामार के लास्ट मैच में। Oh, this is
बहुत interesting अभी तो Tarun actually managed to take down Muskan. Unfortunate for him, but doesn't really matter. Now the zone coming into play as well, which means it's good. The side of team number 2, they gotta make their way. And now this is gonna be interesting because they do have the high ground advantage on team number 16 as well. But positions देखिए एक बार. Hits is actually closing in. He's gonna be the first one coming in. He's gonna be the scout coming in as well. It's gonna be Detox on the other side of the map. It's gonna be taking down Dana. Nirvana goes down as well, but Pierce, and now there you go. Team United. A couple of players actually. Polar going down, unfortunately, but Nani Panda. What can he do here? Hayes in position reveal karte hue, unfortunately. But Nani Panda, he's preoccupied by Hayes. Smart move coming in because sare focus un pe. Now everyone else on their team, they're making their way back into the zone. A really smart move, but can be dangerous. क्योंकि अगर एक बार भी उन लोगों ने अपनी मुंडी दूसरी तरफ कर दिया, they will spot multiple players, but doesn't really matter because Hayes actually takes down one with the UMP mid-range fight. Muskan goes down on his knees, but the Ghost is still really close to Panda. And Panda, is he the Kung Fu Panda? No, sir, he's not. He's not as mobile as he is. And Trigger, he gets the trade, and he actually finishes him off as well. And now 2 players on their knees, and actually, you know what? Scratch that. Make it 3 players on their knees. Ghost is the only one standing right now for team number 16. What can he do? Tens might come into picture. He might actually steal that finish. You never really know. Nanny Panda actually goes down as well now. Hates. He gets taken down. Trigger. Red. Oh no, he gets that finish as well. Pulling that trigger. And now he might just, manage to take this 1v2 in his favor. I'll say that both the team, they suffered a big casualty because दोनों team के दो players down. I'll say one thing, team number 16 जो थी Nani Panda की, they've got the height, and I was expecting that कि वो एक easy एलिमिनेशन दे सकते हैं, बट फिर भी जिस तरीके से यहाँ पे टीम नंबर 2 ने खेला, बट ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए दोनों टीमें। आई से दैट दोनों टीमों ने इस फाइट में गलती की, एंड सामने वाले ने उस गलती पे मैं कहूंगा कि सीधा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, एंड बोथ द टीम मेड द मिस्टेक्स, एंड उसकी वजह से उनके प्लेयर्स डाउन हुए। अभी फिलहाल के लिए स्नेप ओपी बचे हुए हैं विद तरुण, एंड जोन के बिल्कुल एज पर हैं इस टाइम पे। they've got 1.5 minute to go into the zone. Okay, चले, अच्छी बात है, व्हीकल्स है, बहुत सारे लूट बॉक्सेस हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि टीम नंबर 2 को एज सच लूट की अब ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, because they've got the full bag right now. Spencer, now here comes one of the favorite team in this campus showdown, that is Team Flossie. Finally, I really want to see some good gameplay from them. उनके सामने है Six Sense की टीम. It's a 4v3 right now. I think क्या एक प्लेयर डाउन हुआ है, ऑनिक्स को, पोलार को तो हमने नॉक होते हुए देखा था, बट उनको रिवाइवल आ चुका है। डिटॉक है, आई थिंक आयुष इज द प्लेयर, नो एक और प्लेयर, इट्स आयुष, पीयूष, यस, जो पीयूष, नाउ आई कैन सी हिम। इट्स अ 4v4 बैटल, एंड इन्हें पता है ये वाली बात कि सामने उस ग्रीन कंपाउंड में एक टीम है, एक साथ स्लैमिंग करते हैं, एटलीस्ट एक साथ जाते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। बस मैं कहूंगा एक प्लेयर रिज पे रह के कवर देता चला जाए, 3 प्लेयर चले जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा। लेट्स सी क्या हमें ये फाइट यहाँ पे ओपन ग्राउंड्स में होने को, मतलब होते हुए देखने को मिलता है, नहीं मिलता। बट मीनवाइल सिंक टाइटन के प्लेयर को डाउन करेंगे, निताची भी अभी डाउन हुए हैं कुछ देर पहले। देखिए, आई मीन आई वांटेड सेलेस्टियल टू गो आउट, चले गए। अभी फ्लॉसी भी अगर चले गए ना अभी 15th पोजीशन में, मुझे शायद एड्रेस चेंज करना पड़ेगा अपना इंस्टेंटली। बट let's see. I mean, it's a 4v4. I mean, देखिए, 4v4 is always fun, and the side of Team Flossie direct approach नहीं कर रहे. You can see Pollard going in for that long flank. It's gonna take a while, but gotta be careful as well. On the other side, Titan and Sync going at it, and they actually are going in for trades. Two trade अभी, but finishing बाद में देखते हैं अभी right now. Let's see. There's a bit of damage being dealt on the players of Team 15, and Six Sense takes a huge amount of damage, down to 10% of health, actually up to 75% now क्योंकि उन्होंने heal कर लिया, and the smokes will be deployed, which is going to help them come closer to each other. That's actually Team 14, I'm talking about Flossie, because they are not afraid. They want to take this fight, but on the other side of the map, Thug with the Scarel managed to take down one down. Knock है, finish अभी तक confirm नहीं हुआ। बिल्कुल यार, थर्ड की वही टीम जिसने स्टार्टिंग में फिनिशेस ब्लो दिया है बहुत बड़ा सेलेस्टियल को, एंड अगेन वंस अगेन फाइट में बटो पीयूष, उन्होंने हाइपर किड को नॉक कर तो दिया है अभी फिलहाल के लिए किसी और डायरेक्शन में। ओके, अभी पिकाडो के
बिल्कुल नीचे यहाँ पे हाइपर किड थे, वो एक अकेले आए थे। ओके, हाइपर किड को भी हमने देखा, दैट्स व्हाई ज्यादा ग्रीडी होना गलत है। उन्होंने लास्ट मैच में भी लास्ट जोन में ड्रॉप लूटा था, इस बार फिर से वो ड्रॉप लूटने अकेले आए थे अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर। एंड यूनाइटेड अपना पहला प्लेयर यहाँ पे जरूर से खोने वाला, आई थिंक सो। एंड सबसे मेन चीज, अपने आर्च नेमेसिस मैं कहूंगा, आर्च राइवल्स है कहीं ना कहीं ये लोग, उनके हाथों ये झटका लगा। फिलहाल जो टीम यहाँ पे ऊपर की ओर मौजूद है वो जाना नहीं चाहती नीचे। फ्लॉसी कोई भी गलती नहीं कर रही, फ्लॉसी को ये बात पता है कि एक गलती मे बी वो टॉप 3 में आज के दिन पे एंड करते करते रहेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई नो फ्लॉसी फॉर वन थिंग एज, एंड वो एक चीज है एग्रेशन। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई से उस एग्रेशन को कंट्रोल किया। एंड नाउ आई कैन सी एक अच्छा गेम हमें निकलता हुआ देखने को जरूर से मिलेगा इनके द्वारा। वो तो हाँ, मतलब ये लोग पक्का डिलीवर करेंगे, but let's see. D-Talk is actually on his knees as well. Hug, gotta be careful though, and that Molotov confirms a finish, confirms a knock. I'm sorry, but then Thug with the Scarl confirms another one. Thug, कितने knocks मिल रहे हैं इसको Molotov से? That's just beautiful to watch. And Thug confirms that finish. Finally gets himself another point. And with the AKM confirms another one, and just like that, the entire squad eliminate. Exactly. पूरे टीम के 8 है बीबी, और इनके अकेले 7. आई थिंक इट्स 95%. 1v3 और 1v4 जो यहाँ पे थाग ने किया है, मिनिमम 1v3 तो है कहीं ना कहीं। एक अलग ही गेम ये 3 मैन स्क्वाड दे रही है एज। Insane plays coming in from him. But let's see, it looks like another fight between Team A12 and Titans here. But Bizarro on the other side of the map, उन्होंने Snake को down कर दिया है. But Titans, why are they in the open? Why the hell are they in the open? Gotta be careful. Akash deals a lot of damage. Bizarro एक फिनिश तो मिल गया, दूसरा भी मिल गया उन्हें तरुण को डाउन करते हुए. We're down to 38 players and 12 teams. 20-minute mark about to hit, and the first zone is now coming into play. Yup, to YT with that M16 डाउन करेंगे एक प्लेयर को। ट्रिगर इज द आई थिंक लास्ट प्लेयर, एंड या इसी के साथ 12वें पोजीशन पे उनकी भी टीम एलिमिनेट। सुबह का लास्ट फाइनल ब्लो आया था, डैमेज वॉल्केनिक्स ने दिया पीछे से, शुभा ने जरूर से अपने उस फिनिश को सिक्योर किया। बट फिलहाल के लिए एक फिनिश के साथ ये 4 मैन स्क्वाड आगे जाके बिजारो यहाँ पे नॉक होंगे, मादारा नॉक होंगे टीएफ जॉनथन के द्वारा। एंड 7 सेंस मुश्किलों में थोड़ी सी है, एक प्लेयर पूरी तरीके से खत्म है, अभी भी 3 मैन स्क्वाड है उनके सामने। जेसीपी गेमर, टीएफ जॉनथन, ये सारे लोग हैं। एंड अब जोन काफी ज्यादा छोटा है। पिकार्डो स्टिल इन द जोन, बट आई डोंट थिंक सो इट्स जोन के बाद यस जो बोला वो हुआ, बनने वाला है। जो पिकार्डो के नीचे आपकी नदन सदन साइड का एरिया, वहां पे जोन खींच तो गया डोप्यू। शी गॉट अ वेरी गुड एंगल, अ गुड आई से रिज एंड इवन हाइट, एंड यहां से काफी ज्यादा डैमेज डील कर सकते हैं। फाइनली फ्लॉसी वो वेट कर रहे थे, उस चीज का उनको फायदा होने वाला है। उनके पास जोन है, उनके पास हाइट है, उनके पास रिजेस है, उनके पास मैन पावर है। तो देखते हैं उस चीज का कितना ज्यादा फायदा अब उठाएगी यहाँ पे टीम फ्लॉसी। पूरा फायदा उठाने वाले वो तो पक्का है, बिकॉज देखिए पोलर नाउ इज स्टेपिंग अप, बट वन थिंग बीबी, one thing that I cannot take my eyes off is Tensa. BB's in there. I have no goddamn clue how. Lekin, to be honest, they should have been the first team to get eliminated. But Celestial, unfortunately for them, they were the ones. And now Ten's already in top 11. If he somehow makes it to top 5, I'm going to be impressed. Finishes ho ya na ho. Agar wo zinda rahe top 5 tak, that is really impressive. But right now, let's see what happens here, because the Doomsday is on his knees. He's actually bleeding. Never mind, he's going to get revived. Hence, gets the knock. Okay. He gets the finish as well. But how wise of a decision is that? Because 1 point to mil gaya, but now unka position bhi reveal ho gaya. So he has to be really careful. Zone se bhi bahut dur hai. 5th zone, 10 seconds in, and wo zone bhi close hone wala hai, which means he has to make his way in. But look at that, 1v3 क्यों लिया इन्होंने, वो मेरे दिमाग में मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को।
ये तो अब उनसे ही पूछा जाएगा। टेंस, लेट्स सी क्या वो थक को डाउन कर पाएंगे। काफी ज्यादा कम एचपी पे टेंस के पास, हाइट है, थक को पता नहीं है टेंस वहां पे मौजूद है। एक स्प्रे अगर दे दिया टेंस ने तो ज्यादा सही रहेगा, बट राइट नाउ ही इज हीलिंग हिमसेल्फ। दैट्स अ गुड कॉल फ्रॉम हिम, लाइक उनके साइड से, बिकॉज़ ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है थक को हील करने का मौका ना दें, बट थक ने भी हील कर लिया। वंस अगेन इट्स अ 1v1 बिटवीन थक एंड टेंस। स्पॉट किया, हाइट का फायदा, हेड 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 एंड इसके साथ टेंस डाउन करेंगे, नॉक करेंगे पूरी तरीके से, फिनिश। बट हील कर लें तो ज्यादा सही रहता। अपने आप ऊपर नॉक करने के बाद अगर वो बैंडेजेस लगाना भी शुरू करते तो माइट भी पॉसिबल था वो अपने आप को और हील कर सकते थे बाद में थग के क्रेट को लूट के। कॉज हेल्थ किट तो वहां पे नहीं था उनके पास, बट फाइनली थग यहाँ पे खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। अभी डूम्सडे की अगर हम बात करें तो वो एक लौते प्लेयर है फ्रॉम टीम नंबर 3। फ्यूरी उनके पैरों पे नॉक है, रिवाइवल आ सकता है स्मोक करके आराम से, ऐसा भी नहीं कोई टीम उन पे पुश करी है। सो स्पेंसर को अगर हम बात करें ऊपर, फ्लॉसी नाउ फाइनली वो इस बार प्लेसमेंट पॉइंट तो लेंगे ही लेंगे, फिनिशेस भी लेंगे। एंड हालात की अगर हम बात करें जोन से वो खत्म होंगे, टाइटन मनी यहाँ पे खत्म किए जाएंगे। एंड इस टाइम यही टाइम है जहां पे फ्लॉसी एक कमाल कर सकती है। They've got the मैन पावर एंड फ्लॉसी के सामने आ रही है यूनाइटेड। रणवीर आ चुके हैं अपनी कूप लेके, मजा बढ़ने वाला है, आग लगने वाली है इस गेम में, क्योंकि हम आ चुके हैं बिल्कुल आखिरी क्षणों में इस मीरा मार के मैप पे। एज वो तो है, आई मीन रणवीर अभी तक मतलब सिर्फ 2 फिनिशेस हैं इनके टीम के पास. That is not something you usually see. But Flossie, this is the time for them to step up. And there you go. D-Talk actually takes a star play on the side of United down. Ronvi's on his knees, but the cover isn't there. D-Talk goes down, but an instant trade comes in from Doomsday. Hyper Kid is on his knees as well. Polar gets another knock on Mr. YT. Pawan down होते हुए पीयूष के हाथों में, and Doomsday gets another one onto our cars. There's a lot of knocks, but can they actually get those finishes is the question. Then make it 13 finishes! Team 3, 13 finishes, and so there were like some really big names as well. I mean, by big names, I mean Celeste players go down karte hue. They all also took down on the players on the side of United. But right now, all eyes are on Flossie because they do have one player down. That's G-Tar, but they still have 3. Actually, they only have 2 right now because Spencer be down ho chuka hai. But can they get the revival is the question. The smoke screen, I don't think Polar is going to be daring to get that revive happening. But right now, we're down to top 10 players and 4 teams surviving right now. And the zone is really close. We're about to hit that 25-minute mark. Spencer down out the way as well. Dina goes down. Piyush and Polar. These 2 players have done a lot for the side of Flossie. And if they can get a couple more, it's going to be interesting. But that Molotov is crucial. Piyush is down. There's no way he can survive that. But look at that. Doomsday taking a bit of damage. Third party coming into play there. दूसरे साइड से डैमेज लेते हुए, and then he's smart. He goes down, back, retreats himself, and now he's going to be healing himself, BB. लेट्स सी, डोप पीयूष उनको लग रहा है कि उनको रिवाइवल दिया जा सकता है। आई थिंक दिया जा सकता है फिलहाल के लिए, अगर वो बगी के पीछे आ जाते। एक स्मोक अगर ऑनिक्स के पास है तो, बिकॉज़ लेफ्ट साइड में यूज टीम नंबर 15 को मैं देख रहा था स्टिल लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग आई विल से इस कंपाउंड को, ग्रीन कंपाउंड को वो होल्ड किए हुए थे, टिल द एंड वो होल्ड किए हुए 4 मैन स्क्वाड, जहां पे अगर वो थोड़ा सा बाहर पीक करे तो बहुत सारी टीमों को प्रॉब्लम दे सकते थे। नाउ वी हैव गॉट 4 टीम्स, 9 प्लेयर्स अलाइव। किसी के भी खाते में इस टाइम पे जोन नहीं है, जोन पूरा ओपन है, जहां पे पूरा एक ओपन, मैं कहूंगा रिजेस भी नहीं है, बिल्कुल ओपन माउंटेन पे बन गया था साहब बैटल, जहां पे मुझे लगता है जो टीम आपकी उस ग्रीन कंपाउंड में, they've got the manpower so they can easily win. पीयूष यहाँ पे डाउन होंगे, पोलार इज द लास्ट पे फ्रॉम टीम फ्लॉसी, लेट्स सी वो कितना ज्यादा डैमेज दे सकते हैं, या वो अभी भी चाहेंगे पीयूष को रिवाइवल देने के लिए। सो हाथ रख रहे थे, बट अब जोन आ रहा है, रिवाइवल इज नॉट एन ऑप्शन। ऑनिक्स यहाँ पे डैमेज डील करेंगे, बट वो कितना ज्यादा बचा पाएंगे खुद को, क्या वो अपनी टीम को टॉप 2 में लेकर आएंगे? बट जेसीबी गेमर यहाँ पे डाउन करेंगे, टीना को पूरी तरीके से खत्म करेगा, और वो भी जोन में खत्म होके जाएंगे। आई रियली वांट टू सी कि कौन सी टीम यहाँ पे विनर चिकन डिनर लेके गई है, वो है बल्लू की टीम। एंड अगर हम बात करें तो इस बार फ्लॉसी तीसरे पायदान पर है। एक वक्त को मुझे लगा पोलार अपनी टीम को टॉप 2 या टॉप 2 तक लेके जा सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पे फ्लॉसी देव गॉट द थर्ड पोजीशन विद 5 फिनिशेस। अगर हम बात करें डेस्टॉम जेसीपी गेमर की तो उनके पास भी 3 फिनिशेस एंड दूसरा पायदान, बट आईएनवी डीना फिनिशर्स तो ज्यादा नहीं है इनके पास भी, बट आई थिंक किसी भी टीम के पास ज्यादा फिनिशेस नहीं एक्सेप्ट द टीम जिसमें आईएच थग है। जस्ट लुक एट द फिनिशेस, आईएच थग he got 7 finishes, Doomsday got 6 finishes, overall 14 team finishes, and सबसे important चीज एज 3 मैन स्क्वाड, जहां पे इन लोगों ने सेलेस्टियल्स को मारा, इन लोगों ने यूनाइटेड को मारा। एक क्रेजी गेम प्ले दिया है 3 मैन स्क्वाड ने। मतलब अभी मतलब क्या बोलूं मैं, फ्लॉसी देखिए, इनके पास चांस था
to make it onto the top. They do have the rank points, but finishing points I don't know अगर ये काफ़ी है कि नहीं है. देखिए एक बात तो है क्योंकि Celestial पहला पहला टीम था एलिमिनेट होने का, एंड दे हैव नो फिनिशर्स एज वेल, तो 0 पॉइंट्स तो है उनके पास. तो there's a I don't know how what kind of let's say they have like at least 25% chance कि ये number 1 पे आ जाए वापस Flossie, and they'll be really happy because United they also had a not they also had a decent game. इतना भी खराब नहीं गया पर इतना भी अच्छा नहीं गया जितने कि प्रीवियस गेम्स जा रहे थे इनके. सो आई वांट टू सी दैट ओवरऑल स्कोर कार्ड में कहाँ पे पोजीशंस हैं. उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कौन चैन के नींद सोने वाला है और कौन नहीं. One thing's for sure, Flossie, United, and Celestial, all these three teams are gonna have a really fun time tomorrow. और हमें भी थोड़ा फन मिलने वाला है कल. कंपटीशन तो होने वाली है, बट डू यू थिंक एक और टीम आ गई है पिक्चर में बीबी? यार मैं इन तीनों का तो पक्का कह सकता हूँ, बाकी में तो मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या होगा. अगर आज जाती है तो इट्स गोना बी फन, बट ये सारे मैचेस ग्रैंड फाइनल डे 2 केसी के साथ हो चुके हैं. अगर थक की बात करें, गोइंग ऑल आउट ऑब्वियसली 7 फिनिशेस में सेलेस्टियल एंड यहाँ पे अपने यूनाइटेड के प्लेयर्स को अलग ही मारा है. पवन की अगर हम बात करें तो बेस्ट कंपेनियन 3 रिवाइव्स देते हुए होप उन्होंने जगाई थी अपनी टीम के लिए. 3 रिवाइवल देके उनका नाम है होप पवन. बट हाँ, सारे मैचेस आज के हमारे कैंपस चैंपियनशिप, आपका जो कैंपस शोडाउन है उसका हो चुका है. एंड इट्स लाइक आई विल से कॉलेज चैंपियनशिप जहां पे डे 2 हो गया, फाइनल डे रह गया है बस, जो कि कल होने वाला है. एंड अब आने वाला है ओवरऑल स्कोर कार्ड. एंड आई थिंक एज यही वो एक चीज है जिसके लिए अब मैं और तुम बहुत ज्यादा इंतजार करेंगे. एंड सबसे मेन चीज जो ये सारे कॉलेजेस खेल रही हैं, इनके जो दोस्त हैं, इनके भाई बहन हैं, इनकी जो फैमिली लेट्स से देख रही होगी इनको खेलते हुए यूट्यूब पे. सो अब वो भी वेट करने वाले हैं कि कौन है टॉप पे, हमारी टीम किस जगह पर है. क्यों? वो तो है, मतलब आई डोंट नो इफ यू आर रेडी फॉर दैट. आई मीन आई डोंट नो इफ वी आर रेडी फॉर दैट स्कोर बोर्ड, बट बीबी आई डोंट थिंक यू आर रेडी फॉर दिस आइदर. I'm telling you, you're not ready. No one is ready for this, baby. No one is ready for this. See, this is the kind of things I wanted to do in my college, but unfortunately, college में तो पहन के नहीं जा सकते थे ऐसा, I think I'll just say this in Hindi. Edge, तुम पूरे कॉलेज टाइम में सिंगल रहे हो ना? तुझसे नहीं है जिंदगी, हैरान है तू. देखिए ऐसा पर्सनल नहीं बन सकते हम ऐसा मतलब देखिए आप सही हो, बट देखिए हम हक से सिंगल है. हम सिंगल थे क्योंकि हम सिंगल रहना चाहते थे. मैं बस यही बोल रहा हूँ. एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा एज, बिकॉज़ आफ्टर अ वेरी अमेजिंग फियर्स बैटल और थ्रिलिंग पूरा गेम हमने देखा. आई जस्ट से वन थिंग, कितना भी आप कह लो कि इट वाज माय चॉइस, not your choice bro, that's for sure. मतलब थोड़ा तो सपोर्ट कर लेते यार बीवी. But I'll tell you one thing. I'll tell you, the moment you'll enter in your masters and you'll tell everyone that I'm an English commentator and I cast for this good game nation, big orgs, definitely you'll get something. नहीं, मैं तो बस बोल दूंगा मैं ब्लैक बियर्ड का फ्रेंड हूँ. मैं मतलब आपको चाहिए तो ब्लैक बियर्ड का नंबर दे दूंगा बस, लाइक ऐसा सेटिंग कर लूंगा. तो आपको ब्लैक बियर्ड का नंबर दे दूंगा, आपके फ्रेंड से मेरा सेटिंग करवा दो. This looks good, but I'll say that this looks good. So ये तुमने कब कहाँ से निकाला? तो एक्चुअली क्या है, मतलब मैं थोड़ा पागल हूँ, तो ऐसा 4-5 वीक्स पड़े मेरे पास, तो ऐसा if you're ऐसा casting मतलब with me ऐसे tomorrow, we'll do something like you have to come up with some other wig. It looks good. I have yeah. a blonde If wig. I have a blonde wig. I'll say if I don't know you, for example, and अगर तुम suddenly appear, I'm like, yeah, good hair, curly hair. But because I know you, that's why जो मैंने पहले कहा वो सारी चीजें थी. अगर मैं कल ये शेव उड़वा के आ जाऊँ, I'm telling you, you're gonna be like, oh my god, इतना हंसेगा ना यार तू. लेकिन ना, चलो हंसी मजाक करके आने वाला हो कर शेव? बिल्कुल भी नहीं. मैं अपने गर्दन कटवा लूंगा उससे पहले. मैं वहां पे Okay, ये चीज okay. Let's have a bet. ब्लैकबीयर्ड अगर कोई भी नहीं, अगर देखिए सेलेस्टियल, यूनाइटेड और फ्लॉसी, अगर इन तीनों में से नहीं, सुनिए पूरा सुनिए. अगर इन तीनों में से विनर नहीं निकला, कोई और टीम विनर निकला, तो आप क्लीन शेव कर लोगे?
नहीं क्लीन शेप बोल तो रहा हूँ, ये जो एक डील है ना ये बहुत बड़े चीज के लिए करो, मतलब मिलियंस के लिए करो तुम, तब बात आएगी। सेलेस्टियल कौन सा जीत के मुझे पैसे देगी? सेलेस्टियल से बात कर लो। लेकिन like getting back to the game, I'll tell you one thing. I can do one thing. That's like पहले तो यार ये ना बियर्ड इट्स योर आइडेंटिटी। मैं क्या कल कैंपस True, वालों को true. कहूंगा, आपका कैंपस नाम ही है। नेशन को, हाँ वही 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 मैं कह रहा था कि एक्स बियर्ड कर दो भाई इसको, या नो बियर्ड कर दो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो सीजीस चेंज नहीं करेगा जीबी बिल्कुल भी। क्यों जीबी? वरना मैं कर देता है तुम्हारे लिए। I mean, exactly. I mean, GB, yaar, kya yaar, GB? What is this behavior? But talking about the game again, which team do you think is on top? Flossy, United, or Celeste? Dekhiye, I'll tell you my pick. Right now, Okay, sure. I have United on number 1 spot. Okay. Okay, you complete first. RE scorecard जल्दी बोल, एज जल्दी जल्दी, come on. नहीं, मुझे बस लगता है कि यूनाइटेड नंबर 1 पे। आप बताओ। मुझे लगता है यूनाइटेड, सेलेस्टियल एंड देन फ्लॉसी। यूनाइटेड बोलने से पहले जो आपने इधर देखा है, आपको कुछ दिखाया, एंड देन यू लाइक मुझे ऐसा लगता है ये यूनाइटेड। ये आप है, ये मैं आपको देख रहा हूँ, ये आप। अच्छा मैं हूँ, ठीक है। So I'll be like, हाँ। I know it's gonna be Celestial on the top for sure. I think so. अगर मैं गलत हुआ मुझे खुशी होगी। United second and obviously Flossie on third. Let's go with the scorecard overall and देखते हैं एज जीता है या मैं। And obviously as usual Celestial on top. Edge, you're long way to go for this. Long way. But I really love one thing though. United का finishing points देखिए आप एक बार। The highest in the entire server, the पूरे competition में। They beat Flossie. Flossie had the number 1 spot for that, but they did beat. And here's one thing. Team Celestials and United, they're gonna sleep peacefully. But Flossie को नींद नहीं आने वाली, क्योंकि third position में है। But look at the deficit now. It's almost 21 points for number 1 spot. Now that is not something Flossie wanted, क्योंकि आज जब day 1 खत्म हुआ था, same score था दोनों का, Celestial and Flossie, दोनों 80 पे थे, and now Celestial managed to get 70 more. Unfortunately, Flossie only got like what 49 points, so that is not a good thing. But another, if you take a look at Team Virtue, they came up 7th पे आ गए वो लोग अभी, 76 total points. And Hitman Official, मैं बात कर रहा था उनके बारे में, 100 क्रॉस नहीं कर पाए, but 88 not a bad position. बिल्कुल, मुझे याद है वर्चू के 12 पॉइंट्स से, नाउ दे हैव गॉट 76 राइट नाउ टुडे। आज के दिन पे उन्होंने प्लस 60 पॉइंट्स यहाँ पे निकाल दिया। और क्या चाहिए? एक अच्छा गेम, इवन तो आप बॉटम पे थे। यप, एक चीज तो फ्लॉसी आज इवन थोड़ा डिसअपॉइंट हुई है, बट एक चीज है, 21 पॉइंट्स गैप। आई नो दैट इट्स लाइक पीस ऑफ केक फॉर फ्लॉसी। एक अच्छा मैच, 30 पॉइंट्स, 30 बॉम्बर एंड सीधा वो भी टॉप पे आ सकते हैं। एंड वी नो दैट फ्लॉसी इज दैट टीम जो टक्कर देते हुए आई है सेलेस्टियल को, नो डाउट। अब सेलेस्टियल एंड फ्लॉसी के बीच में एक और टीम ऐसी आ गई है जो अब इस कंपटीशन को और ज्यादा आई से दैट इंटेंसिफाई करने वाली, दैट इज टीम यूनाइटेड, नो डाउट। सबसे बजर्कर गेम आज के दिन पे यूनाइटेड ने दिया। रणवीर, हाइपरकिड और पीयूष, इन लोगों ने, पीयूष आई थिंक सो, रणवीर, हाइपरकिड, फ्लॉसी में से फ्लॉसी में आयुष होगा फिर, पक्की बात है। तो पीयूष आयुष थे, लेकिन यार ये दोनों ने जो आज कमाल का गेम खेला है, यूनाइटेड नो डाउट, नो कैप, शानदार गेम। बट हिटमैन ऑफिशियल अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ, 4th, 5th एंड 6th। हिटमैन, रेप्यूटेशन एंड 7th सेंस, सिर्फ मात्र 7 पॉइंट का गैप है, 81, 82 एंड 88। इवन इफ विल टॉक अबाउट वर्च्यू जो अभी 7th पोजीशन पे 76 पॉइंट्स। एंड रेड डॉट डाउट क्यों हुआ? ये डाउट तो मुझे हुआ करता था, बट रेड डॉट यहाँ पे 8 पॉइंट के गैप से 8 पॉइंट। Let's move on to the second page. Let's see 9th से 16th पे कौन-कौन सी टीम है और किसके चांसेस अभी भी हैं कि वो कुछ कमाल कर पाए। Starting from the bottom, I'll say that कि टीम TDE, RRLM, WVF08 and Spark, इनके जीतने के चांसेस तो 0 हैं। Even I'll say पूरे 9 से लेके 16 के जीतने के चांसेस 0 हैं, because 120 पॉइंट तक का गैप हमें देखने को मिल रहा है। एक जगह पे टॉप पे जहां पे टीम्स 180 और 150 पॉइंट्स, नो नॉट 180, 140, 150 पॉइंट्स ली हुई है, यहाँ पे 60, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का, 90 पॉइंट्स का हम गैप देंगे। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, बट यस, जैसे कि मैंने एक चीज कही थी एज कि एटलीस्ट कल ये अपना बस 100% दें और मजे के लिए खेलें, फॉर द लव खेलें। True, देखिए जो भी हो, even if you lose, one thing you take away from a tournament
is experience, right? And अभी बहुत experience मिलने वाला है इनको कि I mean, yeah, they're not like, you know, really professional teams, but once again they understand what I mean. देखिए, now you go back, the day is done, you have your dinner or whatever, and then you go back to the drawing board. Make sure that you understand what you've done wrong. I'm pretty sure ये लोग देखेंगे. I mean, इतना serious भी नहीं खेलते ये लोग. I know they're still college students, they're not like into esports, but I'm pretty sure कल Yep. क्योंकि कल के matches last 5 matches है, they want to be, you know, jitne bhi 13 16s hai, at least I mean all 9 to 16 to be honest, they want to make it to number 1 page. And मैं बात कर रहा था कि जो आज चैन की नींद सोने वाला है, I'll tell you, Celestial, Flossy, and what was the other team, United, इनको छोड़ो, United. टीम वर्च्यू को नींद आने वाली है सबसे पहले. They were in 16th position, they were somewhere like they were at the bottom. Exactly. Yep. आज नंबर 1 पे आ गए पेज. आई मीन नंबर 1 मतलब पेज, फर्स्ट पेज पे आ गए. एंड अगर somehow by a miracle of God उन्होंने अगर नंबर 4th पोजीशन ले लिया by the end of tomorrow, I'm gonna be the happiest person. I mean number 1 तो नहीं होने वाला because Celestial is just dominating. I think Celestial, Flossy and United now obviously they're gonna be the ones coming out on top. Celestial might just be the first team to cross that 100 rank points. United might be the first one to cross that 100 finish points. But I want to see who actually, you know, I want to see if any other team can get somewhere around 90 100 finishes, because Flossy और United के finishing points तो मतलब अगले लेवल का, नेक्स्ट लेवल का. See, I'll say one thing. आज का हमारा डे 2 भी खत्म हो गया पूरी तरीके से. हमारे गुड गेम नेशन कैंपस शोडाउन ग्रैंड फिनाले डे 2 एंड. हमारे 10 मैचेस हो चुके हैं, मात्र 5 मैचेस रहे. सबसे मजेदार चीज आप पता क्या हो गई? बिकॉज एज अ कास्टर अगर हम ही क्वेश्चंस पूछने लगते हैं ना क्या होगा इसमें क्या होगा, तो वहां से गेम और मजेदार होता है. दैट मींस जब कल हम फाइनल डे 3 हमारे आएंगे लेकर, तो वहां पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे हैं. लेट्स सी कौन सी वो टीम्स होंगी जो उन क्वेश्चन मार्क्स का आंसर बनती है. कौन सी वो टीम होगी जो गुड गेम नेशन प्रेजेंट्स कैंपस शोडाउन बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का वो क्राउन लेके जाती है. एंड लास्टली ऑब्वियसली दैट मैसिव प्राइस पूल, और जो सबसे बड़ा चंक है 30K का, एंड इवन द MVP, द IGL और द मोस्ट फ्रैगर जो बजर्कर रहेगा, जो सबसे ज्यादा फिनिशेस लेगा. सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज़ एज ऑफ नाउ आई विल टेल यू, आईजीएलिंग की अगर मैं बात करूं तो टीम्स तो टॉप की सेलेस्टियल ही चल रही है, एंड यूनाइटेड नो डाउट. बट अगर मैं फ्रैगर की बात करूं तो फ्रैगर तो कहीं ना कहीं हो जाएगा एक बेस्ड ऑन द फिनिशेस, वो हमारे मैनेजमेंट कर लेगी. बट अगर हम बात करेंगे एमवीपी की, वो जो टाइटल है उसमें बहुत सारे लोग इस टाइम पे स्टैंड करते हैं. आई नो इट्स गोना बी वन फ्रॉम सेलेस्टियल, इट्स गोना बी वन प्लेयर फ्रॉम मे बी फ्रॉम यूनाइटेड, फ्लॉसी. सो उसका चैलेंज ना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला. मुझे देखना है कल कौन एमवीपी बनेगा, बिकॉज़ इन 3-4 टीमों में से एक प्लेयर उन्होंने तो आग लगाई है, चाहे वो रणवीर हो, चाहे वो हाइपरकिड हो फ्रॉम यूनाइटेड, चाहे वो सेलेस्टियल से आपका अननोन हो, या लेट्स से गुज्जर हो मेन. एंड अगर हम बात करें हमारे इसके तीसरी जो हमारी टीम है फ्लॉसी, उसमें से भी बहुत सोल स्पेंसर हो गया लेट्स से, तो ये बहुत, या पोलार हो गया लेट्स से, पोलार ने भी आज बहुत फिनिशेस निकाले. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज, एंड डे एंड करने का वक्त आ चुका है. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप सबसे? देखिए, आई गॉट व्हाट आई वांटेड टुडे. वो पहली बात है कि मुझे स्नाइपर एक्शन चाहिए था, मुझे स्नाइपर एक्शन मिल गया. मुझे ग्रेनेड्स चाहिए थे, और ग्रेनेड, इतने सारे ग्रेनेड नॉक्स, फिनिशर्स. एंड देयर वाज दिस वन प्ले फ्रॉम टूबू वाईटी, एक स्मोक में थे, देयर वाज लाइक अ कपल ऑफ पिक्सेल्स दैट यू कुड सी. एक मॉलोटोव, लो टॉस मॉलोटोव किया, एकदम ब्यूटीफुली नॉक किया, एकदम. दैट वाज लाइक द बेस्ट फिनिश ऑफ द डे फॉर मी. मतलब ऐसा गन प्ले कुछ नहीं था, बट दैट पोजीशनिंग दैट ही हैड, एंड वो माइंडसेट जो था उनका कि ऐसा लो टॉस करके इजी मॉलोटोव ले एंड देन गेट दैट फिनिश, क्योंकि उन्हें पता था कि ही इज गोना गेट टेकन डाउन एनीवे. उनका एलिमिनेशन तो पक्का था, बट ही गॉट दैट one knock and finish with the help of a Molotov. Beautiful play. And coming tomorrow, I expect nothing less. I mean, the map pool is going to be different. Kal, I believe, Erangel se start hoga, Erangel se end hoga. But it's going to be really exciting. One thing's for sure, jo bhi 4, 5, 6 mein hai, guys, please try to take down the top 3 teams. And you might just, you know, it's not like it's not like it's going to be easy. Kyunki hame, obviously, Celestial, I think the first time, वो फर्स्ट, आई मीन 16 पोजीशन में एलिमिनेट हो गए. मैं अपना इंस्टाग्राम थोड़ा अर्जेंटली डीएक्टिवेट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए. बट भैया नहीं करने की जरूरत है. Nobody will able to search you. I'm really sorry for that. मतलब आई थॉट कैसे भी लोगों के डीएम नहीं आते, एटलीस्ट हेटर्स के तो डीएम आ जाए. बट एनीवे, here's what I want to say at the end,
कि Celestial great job, Flossie भी powerhouse है, but थोड़ा unfortunately they couldn't their positioning was not that good, but United was a surprise element. आपको surprise element चाहिए था, United ने आपको दे दिया. तो I'm done with mine, but आपको क्या चाहिए? क्योंकि you are also going to be there tomorrow, I'm pretty sure. So what are you expecting coming in tomorrow? I just want a boom bam गेम प्ले. कोई भी जीते कुछ भी हो, बस मुझे चाहिए खूब सारी गोली बारियां जहां पे फनी मोमेंट्स होते हैं और हमें मिलते सी. बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इज द गेम जहां पे ना I always say one thing, मुझे नहीं पता कितने कास्टर्स कहते हैं, that you have to expect the unexpected every time, all the time, जहां पे भी कुछ भी कभी भी हो सकता है. And I have witnessed some of the moments, क्योंकि कास्ट करा तो देखने को मिलता है, जितना खेलो जितना कास्ट करो मिलता है. So I know कि कल भी इवन इतना ज्यादा खेलने और कास्ट करने के बाद भी जब मैं कल इस स्टूडियो पे इस स्टेज पे दोबारा से आऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे गुड गेम नेशन कैंपस शोडाउन का हम डे 3 कास्ट करेंगे, आई नो आई एम गोना विटनेस समथिंग न्यू. एंड दैट्स द ओनली फैक्टर जिस चीज के लिए आई कास्ट द गेम्स, दैट आई can witness some new things in my life, because my life is too monotonous and it's too boring. I'll tell you, Edge. I mean, we don't live that far apart. I mean, if you could meet, maybe I can make you, have some fun. Are you But we sure? can have some fun later on. You, me, and GB as well. I mean, we can call him over. But with that, I think we are done for the day. And it's been a really good, really good day as well. Day one was brilliant. We had two teams dominating the day, but day two ke baad, now we have three teams dominating the scene. Maybe by day three, we'll have another team. Maybe some other team will come out on number one position. But all that is a story for us to tell you another day. Yeah, Edge Yeah, पनवेल yeah. निकलना था. सबको पनवेल I जाना mean, है. yeah, I'm sorry, guys, for stressing it out. It's already like almost 10 p.m., so I'll let you guys leave. And with that, me, Edge, I'm going to be, taking a break as well alongside Blackbeard. It's been a wonderful day. We'll see you tomorrow, same time, same page. Until then, good night, take care, and stay safe.